So good evening to all of you. Welcome to RAYACADEMY IAS भुवनेश्वर. समस्त को RAYACADEMY भुवनेश्वर को बहुत बहुत स्वागत आज मोर क्लास को. Today we will have a marathon class on history of Odisha. Odisha history पर आज आमे करबा गोटे marathon class especially for your forthcoming prelims exam. ता भीतर आमे डिस्कशन करबा ए सब रहला कंटेंट. ए कंटेंट आमे डिस्कशन करबा sources of ancient Odisha history, then we will go to ancient Odisha territories, Kalinga war, then Mahamegha Bhavana Kharavela, Odisha during post-Gupta period, then came Bhauma dynasty, Somavamsi, Gangas, their achievements, their roles in the history of Odisha. Then we will discuss about the essence of Lord Jagannath, that is the cult of Jagannath. We will discuss also the Suryavamsi dynasty, the Chalukyas, the Bhoi dynasty and the decline of kingdom during medieval times. तापरे हमर अच्छी डिस्कशन करिया पई Bhakti movement in medieval Odisha, advent of the Afghans, Odisha under Mughal administration, Muslim administration in Odisha, then came the Marathas and advent of the British. Tachada we will also discuss about the society and economy in medieval Odisha. मध्ययुग ओडिशा रे सामाजिक और अर्थनैतिक अवस्था कोनला से विषय में डिस्कशन करिवा. तापर अछि advent of the British rule in Odisha, economic impact of the British rule in Odisha. It was after the advent of the British, what are their impact on so far as their economy is concerned in Odisha. Then pre-1857 revolt in Odisha against British rule, that means the tribal movement, tribal rebellion which took place prior to the 1857 revolt in Odisha. Then we will discuss about the Sipai mutiny or the revolt of 1857, role of Odisha in the 1857 revolt. Then tribal movement, educational development in the 19th century Odisha. After the advent of the British, what role was played by the British for the educational development in Odisha. Then role of press, how it brought about a sense of consciousness, a sense of unity, a sense of uniformity. What are the role of press and newspapers, journals and magazines? They played a very significant role in the 19th century Odisha in creating a sense of political awareness, political consciousness among the people. That will also we'll discuss. Then came the great famine of 1866, jaako ame कहउचंती नौंक दुर्भिक्ष बोली. Socio-cultural transformation in the 19th century, then unification of Odisha, the creation of Odisha, that means the creation of separate province of Odisha in 1936. Then role of Odisha in the national movement. So far as the national movement is concerned, what role did Odisha play so far as the non-cooperation movement, civil disobedience, scrutiny movement is concerned? ए सबुथिरे असहयोग आंदोलन, आईनमान आंदोलन, भारत छाड़ आंदोलन ने ओडिसा रा कोन मुख्य भूमिका थिला ताको मध्ये डिस्कशन करिवा. हु आर द लीडर्स आउट ऑफ देयर रोल. देन प्रजामंडल मूवमेंट एंड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो गडजात राज्य जो मिश्रण होइथिला ओडिसा सहित से विषय रे अछि. एंड finally we will go to discuss about Odisha's art, architecture and culture. So this is about your content, about your syllabus which we will discuss today so far as the history of Odisha is concerned. So first we will take up the sources of ancient Odisha history. So what are the sources? ता पूर्व मुझे कहि दिए what is the necessity or what are the necessity of the sources for the study of history. जहाँ आगुरी कही क्लास रे आ 2 मिनिट रे खाली कहबी तापर हम जीवा सोर्सेस ए चैप्टर को जीवा सोर्सेस ऑफ एंशिएंट ओडिशा. अच्छा, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री फॉर कॉमन मैन, फॉर ए लेमैन, हिस्ट्री समथिंग व्हिच इज एसोसिएटेड विथ द पास्ट ओनली, जहाँ अतीत को घटना ताको हम इतिहास रे पढुचंती. एंड द टास्क ऑफ द हिस्टोरियन इज टू फाइंड आउट द ट्रुथ बिकॉज़ नोबडी हैज सीन, बिकॉज़ ऑल द इवेंट्स दे हैव ऑलरेडी taken place. So अतीतर घटना, the past politics, the past society, the past religion, the past culture, they are all included in history. But the task of the historian is to find out the truth behind the particular event that took place during the past. अतीतर जो जो घटना घटिछि तार सत्यता को परीक्षा करिया पई historian को किसी उपादान पर निर्भर करिया पड़िबो. So they are the sources of history. As it is said that history is always backed by truth. इतिहास सब सत्यर अनुसंधान करिथाय. Unless and until there is any truth behind a particular event, we cannot include that event in the chapters of history. जदि कोनसी घटना पछरे ऐतिहासिक सत्यता नै त हम इतिहास रो अंतर्गत करि परिबा नाही. से सत्यता को उन्मोचन करिया पई in order to find out the truth behind a particular event, we have to depend upon some sources. So the sources, they play a very significant role in bringing about the truth behind a particular event. So far as the sources of history are concerned, we have to depend upon various sources in order to find out the truth. For example, गोटे देवी तुमको कहि परिबा हम कलिंग वार विषय पढुचंती.
if I ask the question, what is the chief source of information regarding Kalinga war which took place in 3rd century BC? In 261 BC Kalinga war हेतला, Kalinga युद्ध हेतला, आमे समझ जानि छथि, but what is the chief source of information? तुमे को सर डॉक्टर हरिहर पन्ना का बहिरे सब जैसे लिखाई छी, that is the source of information, but that is not the source of information because हरिहर पन्ना he has not seen the Kalinga war. तेनु original source कोन अछि? The rock edict achi, pillar edict achi, ba Ashokan inscriptions achi, which are found in different parts, different places. So they give us the information that what led to the Kalinga war and how the Kalinga war took place, how many people are killed, how many imprisoned, how many injured, then what change entered into the minds of Ashoka, how he has turned into from Chandasoka to Dharmasoka, how he declared himself as how he declared that all are my children. So what are the changes that occurred in the life of Ashoka, in the thoughts of Ashoka after the Kalinga war? So we have to depend upon the rock edicts, the pillar edicts or the stone edicts of Ashokan inscription, which are found in different parts of the country or different parts of various places. So that is the source of information. Similarly, in order to find out the truth behind a particular event, so far as history of Odisha is concerned, we have to depend upon some sources. The sources are mainly the archaeological source, the literary source and the foreign accounts. So we can divide the entire historical sources into 3 categories: archaeological source, literary source and foreign accounts. What is archaeology? Archaeology is the systematic study of excavation. जहाँ माटी तलु भू खनन द्वारा बाहरी ची तार अनुधान करिवा, ताको पढिवा, पाठ करिवा, that is known as archaeology. अच्छा, लिटरेरी सोर्स कोन? ता आर्कियोलॉजी रे कोन अछि? इनस्क्रिप्शंस अछि, कॉइन्स अछि, मॉन्यूमेंट्स अछि, बस आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स अछि. दे गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. तासा कॉइन्स भी अछि, न्यूमिस्मेटिक्स एविडेंसेस, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द चैप्टर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भीतर मुद्रा वा कॉइन जो सार को बाहर छि ताको मध्ये हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स भाबरे ग्रहण करि परिबा. आई विल गिव अ एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड ए लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स आर इंट्रोड्यूस्ड. Large number of gold coins are found. And the conclusion, what conclusion we can draw? So why during the Gupta period a large numbers of gold coins are introduced, gold coins are found? It is because of the political or economic prosperity of the people. There is economic affluence, there is economic prosperity. As a result of which the Gupta rulers, especially Chandragupta II, he has introduced a large number of gold coins. So coin is also a source of information. So कौन हमें जानिए coin रूपनी? Political history, social history, economic history, religious history. So पूरा coin depict ही था. So they give us information. So archaeological source, literary source को हमें divide करी परिबा. गोटे होची religious literature और secular literature. Religious literature भीतर कौन अछि? रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, उपनिषद, they are all included in religious literature. And secular literature बाकी जहाँ रही गला, हस चरित्र, रत्नावली, कादंबरी, जहाँ जहाँ रहिला सब लिटरेरी क्रिएशन सब कालिदास, they give us information, they give us information regarding the history of particular period. सेगुडा सब रही गला लिटरेरी सोर्स भीतर गोटे रिलीजियस और सेकुलर लिटरेचर. ता छया लिटरेरी सोर्स और रहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स पुणे रहला कोन? Foreign accounts. The foreign travelers, they have visited our country, especially Odisha. They have also visited. So whatever they have seen in Odisha, they have written down in their accounts. जहाँ देखी चंदी से foreign travelers के भीतर से माने जहाँ देखी चंदी ताको निज अकाउंट रे लिखि जाई चंदी. And that is the most authentic source of information. Eyewitness account. तेनु एई सबुडा से मुख्य source of information. So we have to depend upon all these sources in order to know about the history of a particular period. So I mean, literary source, so far as the history of Odisha is concerned, literary source भीतर हमें कौन अच्छी हम पाखरे ना key text from epics, Jaina literature अच्छी, Buddhist literature, other significant ancient text. एमती क्वेश्चन गोटे गोटे आसे जो literary source भीतर एटा Buddhist literature भीतर गोटे Ceylonese chronicle दीपवंश महावंश देथिबो. ये deals with which religion? दीपवंश महावंश ए deals with Buddhism. एमती गोटे क्वेश्चन भी आसी छि आगुरु. Ceylonese chronicle, सिंहल chronicle जाके हम कहउछंती. So key text from the epics रामायण और महाभारत रहिला. तापर जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन धर्मर धर्म ग्रंथ कोन रहिला? अंग that is the religious text of the Jainas. Similarly बुद्धिस्ट लिटरेचर, बौद्ध मान धर्म ग्रंथ कोन रहिला? त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक. They also give us information regarding the history of a particular period so far as Buddhism is concerned. So we have to depend upon the Jaina literature. एपिक्स भीतर रहला रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद और पुराण. दे आर नोन एज द एपिक्स बा ग्रंथ बोली हम जाव कहउछंती. महान ग्रंथ बा महाग्रंथ जो कहउछंती सेउडा सब रामायण महाभारत. रामायण कोन होइছে? रामायण कोन केवल रावण आसी सीता चोरी कर नेगला अछि? तो कंटेम्पररी पॉलिटिकल हिस्ट्री अछि, इकोनॉमिक हिस्ट्री अछि, सोशल हिस्ट्री अछि, फैमिली रिलेशन, फैमिली हिस्ट्री अछि.
the attachment or the role of his son towards his father. Bapa promise kale, but it was followed by his own son. How dedicated the son was towards his, how obliged he was towards his father. The role of his wife towards her husband. Ramachandra gale, तांका पछरे सीता भी गले. लक्ष्मण गले to save them. सेमानकु काले किसी असुविधा पहुंचियो, तांका protector, as a protector, Lakshman, he also participated. The role of a brother towards the brother. The role of a wife towards her husband. So these are the descriptions in the Ramayana. Ramayana Mahabharata. Other significant ancient text रहिला, तापरे गंगा period, गंगा literature रहिला, तापरे आसला foreign accounts. The Greek writers कोमन आस्थिले, Chinese pilgrims, Ashokan edicts रहिला, आ भितरे एगुडा सब आसला inscription भितरे. Ashokan edicts, खारबेड़ा हाथी गुम्फा inscription, that is the only source of information regarding खारबेड़ा. और किसी source हम पाखे नहीं. It is situated in the Udayagiri hills near Bhubaneswar, very near, close to here. अच्छा, ताछड़ा 5 marked coins भितरे गुप्त gold coins रहिला, Nora coins रहिला. मेन कैटेगरी सोर्स प्री हिस्टोरिक डिस्कवरीज मटेरियल रिमेन्स प्री हिस्टोरिक डिस्कवरीज रहिला एक्सकावेशन बाय एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो जगह कौन खोलिक से बाहर करछंती फॉर एग्जांपल मन कर आमे देखिबा जे गोल्डन डायमंड ट्रायंगल हम जो कहउछंती डायमंड नगर ललितगिरी रत्नगिरी उदयगिरी इट इज द वर्क ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई सेमे तो एक्सकावेट करछंती सो दे हैव excavated the remainings of Buddhist remainings, the Buddhist caves, the Buddhist statues in Lalitagiri, Ratnagiri, Udayagiri. ताको हम कहउछंती डायमंड ट्रायंगल बोली हीरा त्रिभुज बोली कहउछंती एक्सकावेशन साइट्स बाय एएसआई की साइट्स लाइक द डायमंड कहउछि डायमंड ट्रायंगल एठी अछि डायमंड ट्रायंगल अच्छा तापरे ए यूनिक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल तापरे हला मादळा पांजी दैट इज द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कल्ट ऑफ जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर रा संस्कृति बा जगन्नाथ संस्कृति रा जो इतिहास ताको जानिया पे वी हैव टू डिपेंड अपॉन द मादळा पांजी त ना कहीं मादळा पांजी हिची बिकॉज़ इट इज you cannot keep it static, it is in a roll form, in a rolling form it is preserved. मादळा पांजी गोटे रोलिंग फॉर्म में ताको प्रिजर्व करा हैछि गुडे रखा जायछि सो दैट इज नोन एज मादळा पांजी दैट इज द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द कल्ट ऑफ जगन्नाथ जगन्नाथଙ୍କର जो पूजा पद्धति जहां पर्व पर्वणी जहां रहिछि हिस्ट्री एसो हम मादळा पांजी देखि परिबा सो दीज आर द चीफ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सो फार एज ancient Odishan history is concerned. Literary source भितर रहिला हमर एपिक्स कहली महाभारत रे we find the river Baitarani गोटे क्वेश्चन आसीथिला the river Baitarani in which source it is found, in which source it is mentioned about the river Baitarani. Baitarani नदी कोठी अछि ओडिसा रे अछि ओडिसा रे को जिल्ला जाजपुर जिल्ला रे अछि बिरजांग क्षेत्र Baitarani ताको नाभि गया बोली कहउछथि पवित्र नदी the most sacred river that is the river Baitarani. Question आस्थिला which is the chief source of in among all these sources where we find that the name Baitarani it has been mentioned. महाभारत रे Baitarani नदी विषय लिखाइछि. The Mahabharata offers the earliest glimpse of Kalinga and Odra mentioning the sacred Baitarani river and goddess Viraja. Goddess Viraja के विषय रे महाभारत रे लिखाइछि. महाभारत it gives us information regarding Baitarani river and goddess Viraja. ता छडा आउ कोन ना कलिंग आ ओड्र कलिंग ओड्र तापरे ओडिसा रे जो प्राचीन नाम सब रहिछि कलिंग रहिछि उत्कल रहिछि ओड्र रहिछि आ कोन अछि कोशल रहिछि ओडिसा रे प्राचीन नाम सब तेबे ता भितर कलिंग आ ओड्र कोठी मेंशन करा हिछि कोशल मेंशन करा हिनि कलिंग एंड ओड्र इट इज फाउंड फ्रॉम द महाभारत दैट इज द एंशिएंट एपिक सेमति रिवर बैतरणी नदी रे काहे बैतरणी नदी लिखा हिछि कोन तार इंफॉर्मेशन कोन अछि लोमस ऋषि द सेज लोमस ही एडवाइज द पांडवस टू have their holy bath in the river Baitarani in order to make them free from the sins which they have committed during the Mahabharata war. महाभारत युद्ध रे जो पाप से करचंती जो अपराध करचंती जो दोष करचंती से दोष रो मुक्ति पाया पय ताको लोमस ऋषि पंचु पांडव पांच जन को परामर्श देथिले जे यू गो एंड टेक योर होली बाथ इन द होली रिवर दैट इज बैतरणी दैट इज मेंशन्ड इन द महाभारत. सो इन द महाभारत वी फाइंड अबाउट द रिवर बैतरणी गॉडेस विरजा कलिंग एंड ओड्र এই পাণ্ডব এ লেখাইছি द एपिक इवन नरेट्स लोमस एडवाइजिंग द पांडवस टू सीक प्यूरिफिकेशन इन द बैतरणी तेनु बैतरणी नदी स्नान करिकि पाप मुक्त होगा पई ताको परामर्श देइथिले सेमति तो रामायण रेफर्स कलिंग नगर वेस्ट ऑफ द गोमती रिवर एंड कनेक्ट्स गंधमार्दन एंड उत्कल विथ द रीजन्स ऑफ मेकला एंड दशार्ण. अच्छा ए जो गंधमार्दन रे कोन हिस्ट्री अछि हम पाखरे लक्ष्मण जे लक्ष्मण को सरबिद्ध होइतिला सेते बेले वैद्यराज कहले जे गंधमार्दन पर्वत रे अछि विशल्यकरणी ताको आनिया पई हनुमान गले से सब गछ देखि डाल देखि जानि पल्लेनी लास्ट गंधमार्दन पर्वत को नहीं आसिले
से जो गंधमार्दन पर्वत को जो हनुमान नहीं कहुच्छी रामायण वर्णना रही रामायण में गंधमार्दन दैट इज सिचुएटेड आल्सो इन ओडिशा वेरियस पुराण केते पुराण रही वायु पुराण मत्स्य पुराण भागवत पुराण हरिवंश पुराण विष्णु पुराण दे आल्सो थ्रो ए गुड डील ऑफ लाइट ऑन द अर्ली रूलर्स एंड जियोग्राफिकल एंटिटीज कलिंग एंड उत्कल तेणु पुराण गुड़ा कहते दैट इज आल्सो अनदर सोर्स ऑफ इनफॉरमेशन रीजनल टेक्स्ट लाइक कपिल संहिता एंड प्राची महात्म्य कपिल संहिता प्राची महात्म्य आल्सो कंट्रीब्यूट टू द हिस्टोरिकल नैरेटिव्स ऑफ ओडिशा ये सब रहला एपिक्स माने पुराण सब रहला रामायण महाभारत पुराण ये सब रहला तापर आसे जैन लिटरेचर दे आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ओडिशा प्राचीन ओडिसा रो इतिहास को हमको जैन टेक्स्ट ऊपर निर्भर करे पड़िबो गोटे होची आवश्यक नियुक्ति सजेस्ट रायपुरा पॉसिबली कैपिटल ऑफ कलिंग विटनेस्ड अरानाथ द 18th तीर्थंकर आमे जानि नै ताको विषय रे आमे केवल जानि फर्स्ट तीर्थंकर 23rd तीर्थंकर 24th तीर्थंकर अन्य माने किछि इंफॉर्मेशन नाही ए पर्यंत आमे जानिथिले जे द रिमेनिंग द फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ तापर आसिले 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ 24 हेले महावीर द लास्ट तीर्थंकर किंतु इन बिटवीन 1 एंड 23rd बाकी जो रहिले 21 तीर्थंकर ताका विषय आमे किछि इंफॉर्मेशन नथिला किंतु आमे जानि पारुचंती जे 18th तीर्थंकर जणे थिले ताका नाम होची कोन तीर्थंकर का नाम कोन हां अरानाथ ही वाज द 18th तीर्थंकर तांको विषय रे हमकु आवश्यक नियुक्ति जे जैन लिटरेचर सेथि मध्ये लिखिबा को मिलुची द टेक्स्ट आल्सो रिकाउंट्स द मिसट्रीटमेंट ऑफ महावीर इन तोसाली एंड हिज सब्सिक्वेंट रेस्क्यू बाय द तोसाली क्षत्रिय एलोंग विथ मेंशनिंग द सिटी ऑफ दंतपुर जो माने तांको किछि मिसट्रीटमेंट करथिले तोसाली रे बोली कि से जो मेंशन करछन्ती सेटा मध्ये हमकु देखिबा को मिलुची जैन टेक्स्ट रु आ कोन अछि जैन हरिवंश that is another text Jaina text it provides a genealogy of Chedi dynasty in the Kosala region naming Abhichandra as its founder अभिचंद्र बोली चेदी डायनेस्टी जने फाउंडर बोली ए इनफॉरमेशन जैन हरिवंश रे मिलुची किंतु प्रकृत चेदी वंश फाउंडर के थिले महामेघवाहन चेदी वंश रे फाउंडर खारबेल ताकर डिसेंडेंट चेदी राजवंश बदनेन लिखाई खारबेल इनस्क्रिप्शन रे तो चेदी राजवंश से आसीथिले किंतु ए जो जैन हरिवंश से इट प्रोवाइड्स ए जेनियोलॉजी ऑफ द चेदी डायनेस्टी जेनियोलॉजी कहां कहां पर द लिस्ट ऑफ द चेदी रूलर्स कहां पर किए आसिले दैट इज नोन जेनियोलॉजी राजवंशावली ओडिया रे हम देखो राजवंशावली सो जेनियोलॉजी ऑफ द चेदी डायनेस्टी मेंशन करचंदी जैन हरिवंश रे ये जैन लिटरेचर आमे लिटरेचर सोर्स डिस्कशन करचंदी तापर हम जा बुद्धिस्ट लिटरेचर सेमति कोन रहिची द बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट सूत्र पिटक विनय पिटक अभिधर्म पिटक दे आर द बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट त्रिपिटक so similar to Jaina text the Buddhist writings illuminate the history of Odisha ता भीतर कोन अछि महागोविंद सुत्तांत that is from दीघ निकाय गोटे अछि दीघ निकाय और अछि मध्यम निकाय उपाली सूत्र it is from मध्यम निकाय सेभरा जातक स्टोरीज जातक टेल माने कोन द प्रीवियस बार्थ जातक माने हम जो जातक देखुचंदी सेटा न जातक माने जातक टेल्स जातक स्टोरीज दे गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रीवियस बार्थ ऑफ गौतम बुद्ध जन्म पूर्व की जन्म नहीं चंती सेगुडा का जातक टेल्स बे जातक स्टोरी रु पाउचंती तो जातक कौन थिला कुरु धर्म जातक तापरे बेसंतर जातक कुंभकार जातक कलिंग बोधि सर्वांग जातक सो दे कंटेन द प्रीवियस बार्थ ऑफ गौतम बुद्ध और रिगार्डिंग ओडिशा रिफर सेथरे सब ओडिशा विषय मेंशन करा हिची तेन बुद्धिस्ट टेक्स्ट ओडिशा मेंशन करा हिची कलिंग मेंशन करा हिची कोशल मेंशन करा हिची सेमती आउ कोन रहला महापरिनिर्वाण सूत्र ये आउ गोटे बुद्धिस्ट टेक्स्ट दत्तवंश दीघ निकाय एंड महावास्तु दे आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन उत्कल एंड कलिंग तेन उत्कल और कलिंग विषय मनकर गोटे क्वेश्चन पड़िबो उत्कल और कलिंग विषय आउट ऑफ दी सोर्सेस इन व्हिच सोर्स देयर इज द मेंशन ऑफ उत्कल एंड कलिंग और व्हिच सोर्स एमती चारटा सोर्स देथिबो किबा गोटे सोर्स पर जोथरे कि नाही से भया सोर्स मेंशन करथिबो जोथरे कि कलिंग विषय माने प्रीलिम्स कथा हम कहूची जदि सेमती क्वेश्चन पड़े तेन महापरिनिर्वाण सूत्र अछि तापरे दत्तवंश अछि दीघ निकाय और महावस्तु सेथिरे मध्ये उत्कल कलिंग विषय मेंशन करा हिची ता छडा आउ कोथरे अछि बुद्धिस्ट टेक्स्ट भितरे द मध्यम निकाय और महाभाग कोन डिस्क्राइब करचोंदी द एनकाउंटर बिटवीन लॉर्ड बुद्ध एंड टू मर्चेंट्स फ्रॉम उत्कल दे आर तपस्वी एंड भल्लिक गौतम बुद्ध केबे आसीथिले उत्कल को एटा क्वेश्चन मनकर मु पचारली परीक्षा रे पढिछ ना जाननी व्हेन गौतम बुद्ध विजिटेड ओडिशा और उत्कल जाति में कहूछ नेवर
गौतम बुद्ध आसी ना किंतु कलिंगरू दुई जन थिले तपस्वी एंड भल्लिक दे आर द मर्चेंट्स दे मेट गौतम बुद्ध से माने कलिंग जाइथिले बा उत्कल जाइथिले फ्रॉम उत्कल उत्कल दुई जन तपस्वी एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे हु आर द ट्रेडर्स हु आर द मर्चेंट्स दोज हु बिलोंग टू उत्कल उत्कल को मर्चेंट बा बणिक थिले ताका नाम होची तपस्वी एंड भल्लिक दे आर द टू मर्चेंट्स फ्रॉम उत्कल दे मेट गौतम बुद्ध बट गौतम बुद्ध ही नेवर केम टू ओडिशा और उत्कल तापर आउट कहला गंधव्यूह दैट इज आल्सो अनदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट गंधव्यूह मेंशन तोसर आर द प्रॉस्परस किंगडम इन कलिंग ड्यूरिंग 3rd सेंचुरी एडी 3rd सेंचुरी एडी कथा कहूची 3rd सेंचुरी बीसी नाही 3rd सेंचुरी बीसी से अशोकଙ୍କ विषय पढ़िबा ये 3rd सेंचुरी एडी सेतबेले गंधव्यूह बोली आ गोटे बुद्धिस्ट टेक्स्ट से कलिंग बा तोसर दोची इट वाज वेरी प्रॉस्परस किंगडम ड्यूरिंग दैट टाइम श्रीलंकन क्रॉनिकल तो कहले दीपवंश महावंश दीज आर द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स ऑफ सिलोन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स ऑफ सिलोन सिंहल जो बौद्ध साहित्य से होची दीपवंश और महावंश दे आल्सो हाइलाइट द फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन कलिंग एंड सिलोन ट्रेड रिलेशनशिप केमती थिला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सहित उत्कल बा कलिंगर द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सहित जाभा सुमात्रा बाली इंडोनेशिया बर्मा सिलोन these are the South East Asian countries. It had got Kalinga, it had got trade and commercial relationship. এই যে জিনিসটা আমি কোড পাউচন্তি পুনি শ্রীলঙ্কান ক্রনিকল সে হচ্ছে দীপবংশ আর মহাবংশ দুইটা দা বুদ্ধিস্ট টেক্সট শ্রীলঙ্কান বুদ্ধিস্ট ক্রনিকলস দে আর দীপবংশ আর মহাবংশ সেথুরে আমি জানি পারছি যে কলিঙ্গর কেমতি সিলোন সহিত থিলা রিলেশনशिप ট্রেড এন্ড কমার্শিয়াল রিলেশনशिप বাণিজ্য ব্যবসায় থিলা বা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কেমতি প্রতিষ্ঠা হইতিলা আচ্ছা আর কোন থিলা এ কানেকশন ফর্দার এলাবোরেটস ইন দ চোল বংশ হুইচ अकाउंट ऑफ कलिंगन किंग्स विजिटिंग द आइलैंड चोल वंश बोली आ गोटे सोर्स अछि सेते जणा पड़छि जे कलिंगन किंग जे कि श्रीलंका बुलिया पे जाइथिले विजिटर जाइथिले ताको मते मेंशन करा हेछि चोल वंश रे आउट ऑफ व्हिच सोर्सेस वी फाइंड दैट द कलिंगन किंग ही विजिटेड श्रीलंका बा और ही विजिटेड सिलोन जहां भी क्वेश्चन पड़िबो जदी एमती सेट चोल वंश एटा होछि टेक्स्ट अच्छा आउ कोन रहला आंसर टेक्स्ट भीतर रहला ये सब लिटरेरी सोर्स प्रथम डिस्कशन करछथि प्रथम गला रिलीजियस लिटरेचर गला एपिक्स गला रामायण महाभारत तापर आसिला बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट तापर हमें आसिला आउ कोन आंसर टेक्स्ट कोन अछि अदर सिग्निफिकेंट आंसर टेक्स्ट व्हिच मेंशन रिगार्डिंग कलिंग जानिया पई आउ कोन रहिछि आंसर टेक्स्ट कौटिल्यଙ୍କ अर्थशास्त्र इट वाज रिटन इन 4th सेंचुरी बीसी कौटिल्य ही बिलोंग टू 4th सेंचुरी बीसी एंड हु वाज कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री आंसर इंडिया पढ़िया से सुविधा बुझा ये खाली मन रखि था कौटिल्य ही द कौटिल्य को कौन कहूला विष्णुगुप्त बोली कहूला चाणक्य बोली कहूला कौटिल्य ही वाज अदरवाइज नोन एज विष्णुगुप्त एंड चाणक्य तेणु कौटिल्य अर्थशास्त्र दैट इज आल्सो अनदर मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेथिर मध्ये हम जानि पाउछन्ती जे कलिंग विषय रे कौटिल्य अर्थशास्त्र रे कोन लिखछन्ती कौटिल्य एटा गोटे क्वेश्चन सप्तांग थ्योरी तो अच्छी with what अर्थशास्त्र डील्स विथ स्टेट क्राफ्ट अर्थशास्त्र समस्त इकोनॉमी लिखिथिबो ऑप्शन देथिबो स्टेट क्राफ्ट देथिबो पॉलिटी देथिबो इकोनॉमी देथिबो कल्चर देथिबो सब देखियो अर्थशास्त्र अर्थ मान तो इकोनॉमी सब इकोनॉमी रे ठीक मारी पळे आसीबो दैट इज रॉन्ग अर्थशास्त्र इट इज अ स्टेट क्राफ्ट पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासनिक पद्धति ए अर्थशास्त्र रे वर्णना कराइछि 4th सेंचुरी बीसी अच्छा सेथिरे मध्ये कलिंग विषय रे मेंशन कराइछि अर्थशास्त्र रे कोटले मेंशन करछन्ती आ कोन तो लीगल टेक्स्ट अछि स्मृति मनुस्मृति नारद स्मृति बृहस्पति स्मृति कात्यायन स्मृति याज्ञवल्क स्मृति एंड कामांडक स्मृति सेथिरे मध्ये सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा इट हैज आल्सो बीन मेंशन स्मृति तो लीगल टेक्स्ट आईन ग्रंथ होची स्मृति तक बोल कह स्मृति मान मेमोरी नुह स्मृति अर्थ होची आईन ग्रंथ द लीगल टेक्स्ट ताकू कह जाउची स्मृतिज के लिखिछन्ती मनु लिखिछन्ती नारद लिखिछन्ती बृहस्पति लिखिछन्ती कात्यायन याज्ञवल्क एंड कामांडक दे हैव इंटरप्रिटेड द लीगल प्रोसीजर्स द लॉज नियम आईन कानून ताकू निजर इंटरप्रिटेशन कोन ताकू सेमाने मेंशन करते सेमान को निजर नाम अनुसार स्मृति सब नामकरण कराइछि मनु द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर बोली कह जाय सबटार विशिष्ट आईनज्ञ होचन्ती मनु द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर सेमती आउ कोन रहला सोर्स वर्क सच एज बराहमिहिर का बृहत संहिता रे कोन अछि ही इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन बराहमिहिर कहा समय थिले कालिदास बराहमिहिर घटकर्पर क्षेपणक शंकु बेतालवट बररुचि अमर सिंह धन्वंतरी सो दे आर द 9 jewels who adorn the royal court of Chandragupta II
दिस द गुप्त पीरियड जो गुप्त जुग कहीं सुवर्ण जुग बोली कह हम कहउछन्ती पढुथिले जेंती स्कूल बेले व्हाई द गुप्ता एज इज नोन एज द गोल्डन एज इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इट इज बिकॉज ऑफ लिटरेरी डेवलपमेंट ये गोटे पॉइंट से लिटरेरी डेवलपमेंट को मतलब नवरत्न थे से कहउतला दे आडोन द रॉयल कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड कालिदास बरामीरा घटकर्पर क्षपणक शंकु बेताल भट्ट बरौलसी अमर सिंह धन्वंतरी इन डिफरेंट फील्ड्स ताके भितर जणैथिले के ना बरामीरा कालिदास बरामीरा ही आर द ऑथर ऑफ बृहत संहिता ही इज ए ग्रेट मैथमेटिशियन अच्छा आउ कोन थिला पाणिनि कर अष्टाध्यायी और पाणिनि एंड बात्स्यायनस कामसूत्र ऑफर वैल्यूएबल इनसाइट इनटू द सोशियो रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंशिएंट ओडिशा प्राचीन ओडिशा रा सोशियो रिलीजियस हिस्ट्री ए सब ग्रंथ गुडा को जना पड़ी जाउछि दैट इज आल्सो अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बरामीरा बृहत संहिता पाणिनि कर अष्टाध्यायी एंड बात्स्यायनस कामसूत्र ता छडा आउ कोन होइछि बौद्ध जैन धर्मशास्त्र describe Kalinga as an impure country reflecting varying perspectives on the region बौद्ध ज्ञान धर्मशास्त्र describe Kalinga as an impure country Kalinga टा गोटे ताकू डिनाउंस करछन सेतरे से इट इज नॉट ए प्योर कंट्री impure country बोली कहछन्ती Kalinga टाकू से ए जो Kalinga नेम Kalinga तो मेंशन कराइछि एटा मतलब बौद्ध ज्ञान धर्मशास्त्र बुद्धिस्ट टेक्स्ट सेतरे मध्ये अछि आ कोन भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भरत मुनि भरत बोली लिखाई भरत नाट्य शास्त्र कैटेगरीज कोशल तोशल एंड कलिंगा साउदर्न टेरिटोरीज ठीक अच्छे कालिदास रघुवंश कालिदास लिखिले रघुवंश कालिदास लिखिले मेघदूतम रघुवंश कुमार संभव अभिज्ञान शकुंतलम मालविकाग्नि मित्रम तो दीज आर द लिटरेरी क्रिएशंस किरीट अर्जुनियम सो दीज आर द लिटरेरी क्रिएशंस ऑफ कालिदास अच्छा कालिदास जो रहिला ग्रंथ ता भितर रघुवंश रे मध्ये नारेट्स इवन रिलेटेड टू कलिंगा एंड उत्कल रघुवंश रे से कलिंगा उत्कल को रिलेट करी मध्ये सेथिरे रघुवंश रे मध्ये हमें कलिंगा उत्कल विषय रे किछि सूचना हमको मिलुछि अच्छा कहिबे मेघदूत कालिदास लिखछथि को लिखथिले मेघदूत रे भी उत्कल कथा मेंशन कराइछि मेघदूत कालिदास को लिखथिले वेयर ही हैज रिटन मेघदूत महाभारत रे मेघदूत कालिदास लिखनि जानते नहीं कोठी लिखथिले बसी से को पहाड़ रे लिखथिले गोटे पहाड़ रे बसी लिखथिले पहाड़ मेघ को देखि कि लिखथिले दैट इज द रिलेशनशिप दैट इज द लव स्टोरी इन बिटवीन द लवर एंड द बिलवेड मेघ को देखि कि से लिखुथिले मेघ थ्रू रे ही कन्वेन द मेसेज पठौथिले परस्पर भितर जो मेसेज मेघ को देखिला पर ताका भितर जो फीलिंग्स आस्तला से फीलिंग्स को एक्सप्रेस करथिले मेघदूतम रे रामगिरी पहाड़ कोठी कोरापुट मालकानगिरी से एरिया रामगिरी पहाड़ सेठी लिखिथिले से मेघदूतम तेनु रघुवंश जो कालिदास रघुवंश सेथिरे मध्ये कलिंगा उत्कल कथा मेंशन कराई ता छडा बाणभट्ट हर्षचरित बाणभट्ट कोन लिखचंती हर्षचरित आ कोन कादंबरी नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लिखचंती बाणभट्ट लिखिचंती नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका और हर्षचरित ना बाणभट्ट लिखिचंती हर्षचरित और कादंबरी हर्षवर्धन निजे लिखिचंती नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका थ्री डामाज हर्षवर्धन निजे भी जन साहित्यिक थिले पंडित थिले ज्ञानी थिले आउ बाणभट्ट लिखिते हर्षचरित सेटर ही मेंशन्स किंग ऑफ कलिंग एंड हर्षवर्धन रत्नावली आल्सो रेफर्स टू द रीजन कलिंगर राजा एवं कलिंग विषय मध्ये बाणभट्टकर हर्षचरित और हर्षंकर रत्नावली सेथिर मध्ये हमको मिलुची सूचना तापर आसला पोस्ट संगम लिटरेचर शिलापदिकरम पोस्ट संगम 3rd सेंचुरी एडी बेलको शिलापदिकरम सेथिरे मध्ये रहिछि मणिमेकलाई सेथिरे 2nd सेंचुरी एडी बा 3rd सेंचुरी एडी पाखापाखि दीटा जिंस आल्सो मेंशन कलिंग विषय तो सेन मेंशन करछथि आ कोन बागपति राजा सेरा होछि गौड़ बाहो इन 8th सेंचुरी एडी 8म शताब्दी रे सेथिरे मध्ये रहिछि व्हिच डिटेल्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जशोवर्मन ऑफ कनौज तेणु सेथिरे मध्ये गौड़ बाहो जोटा सेथिरे मध्ये जशोवर्मन कनौज का रहिछि इंफॉर्मेशन ता छडा आउ लिटरेचर सोर्स भीतर हमर कोन अछि ई तो आंसर लिटरेचर सोर्स तापर तमिल लिटरेचर हां एटा पर ए जो शिलापदिकरम कलिंगर सेतरे मेंशन कराइछि मणिमेकलाई दे आल्सो मेंशन कलिंग रिगार्डिंग कलिंग लिटरेचर सोर्स भीतर आसे गंगा वंशर कोन लिटरेचर सोर्स था मेनली संस्कृत लिटरेचर कौन से एम्फसाइज करे गंगा लिटरेचर इट एम्फसाइज ऑन द कंटेम्पररी सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस लाइफ ऑफ ओडिशा ओडिसा रा तत्कालीन गंगा राजवंश गंगा राजत्व काल रे कोन थिला सेही समय रे सेमानकर सामाजिक और धर्मगत अर्थनैतिक अवस्था तापर सेमती आउटला अनारग्रह नाटकम यस
अनार्घ राघव, अनार्घ राघव ए नाटक नाट होची अनार्घ राघव, स्टेज इन पुरी ड्यूरिंग जगन्नाथ कार फेस्टिवल ऑफर्स द कल्चर इनसाइट। श्रीहर्षंकर निषाद चरित्र ए सुगला सोर्सेस गंगा पीरियड रो। तापर फॉरेन अकाउंट्स भितर आसला जो ग्रीक राइटर्स, ग्रीक हिस्टोरियंस प्लिनी थिले, डाइडोरस थिले, कटियस थिले, प्लूटार्क थिले, दे आल्सो मेंशन कलिंगा एंड कलिंगन पीपल। मेगास्थेनिस लिखिसंती गंगारिदम कलिंगारम रागिया, तामाने गैंजेटिक कलिंगा रीजन। कलिंगर जो सीमा थिला गंगा आरंभ करी गैंजेटिक रीजन ताकू से मेंशन करचंती मेगास्थेनिस। से भली प्लिनी से लिखिसंती गंगारिडाई, गैंजेटिक भली को से गंगारिडाई बोली कहउचंती। मिडिल कलिंग को मैसियो कहउचंती और कलिंग को कलिंग कहउचंती। गंगारिडाई मैसियो कलिंग ताकू मेंशन करचंती। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी दैट इज अनदर टेक्स्ट बट ऑथर इज अननोन। किए ताकू लिखिसंती विषय की सूचना नहीं हम पाखरे। दैट इज आल्सो अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एथरे ट्रेड रिलेशनशिप रहिछि अबाउट कलिंग। इज एनोनिमस ग्रीक सेलर जने सी ज्योग्राफिकल एंड पॉसिबली ट्रेड रिलेशन विथ कलिंग ताकू मेंशन करचंती। टोलेमी लिटिल पोर्ट ऑफ कलिंग, कलिंग कौन कौन बंदर सब थिला से टोलेमी सेकंड सेंचुरी एडी ग्रीक राइटर्स से मेंशन करचंती। चाइनीज पिलग्रिम आसले किए हुएनसांग आसले का समय आसले इन 7th सेंचुरी हर्षवर्धन के समय रे। इट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन दैट हुएनसांग ही केम टू ओडिशा। हर्षवर्धन सर 629 ख्रीष्टाब्द हुएनसांग ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम चाइना। चाइना रे आरंभ कले जर्नी 629 ख्रीष्टाब्द पादरे चली चली करी ही क्रॉस्ड द हिमालयाज देन एंटर्ड इनटू इंडिया। 630 रे पहुंचले ही केम टू ओडिशा इन 638-39। ताकर मुख्य उद्देश्य कोन थिला टू स्टडी द बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बौद्ध दर्शन अध्ययन करिवा। तन हुएनसांग ही केम टू ओडिशा, चाइनीज पिलग्रिम हुएनसांग ही आल्सो विजिटेड ओडिशा इन 638-39। हुएनसांग से कोठी आस्तिले पुष्पगिरी जोटी से बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढिथिले। पुष्पगिरी जो बौद्ध विहार सेठी से बुद्धिस्ट फिलॉसफी बौद्ध दर्शन अध्ययन करथिले। आउ जो टाइनी टाइम होचंती आइसिंग records of the Buddhist religion as practiced in India and the Malaya archipelago ताकू सेथरे मध्ये से मेंशन करचंदी ओडिसा विषय रे। ता छडा इंस्क्रिप्शन रहला कोन इंस्क्रिप्शन दे आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ कलिंग। अशोकन रॉक एडिक्ट सेपरेट, अशोकन रॉक एडिक्ट कोठी अछि ओडिसा रे कोठी अछि अशोकन रॉक एडिक्ट ताकू सेपरेट रॉक एडिक्ट बा स्पेशल रॉक एडिक्ट बोली कहउचंदी। कलिंग वार रा हम कहउचंदी द मेन इंफॉर्मेशन कलिंग वार दैट इज द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक, दैट इज रॉक एडिक्ट 13। कलिंग वार होछि रॉक एडिक्ट 13। हियर इट इज कलिंग वार हितला धोली पहाड़ रे रॉक एडिक्ट 13 कोठी अछि। हां रॉक एडिक्ट 13 धोली रे नहीं समस्त ना समस्त माइंड पूरा चली जीव सेठी की कलिंग वार होइछि धौली पहाड़ रे। धौली रे अछि रॉक एडिक्ट 13 बोली समस्त कहउछंती किंतु रॉक एडिक्ट 13 धौली रे नहीं। दैट इज इन पाकिस्तान, सारसगढ़ इन पाकिस्तान। देयर द कलिंग वार डिस्क्रिप्शन इट इज देयर इन रॉक एडिक्ट 13 जोटा कलिंग रे अछि बा धौली रे अछि। ओडिसा रे दिटे जगह अछि गोटे धौली गोटे जौगढ़ सेतरे कलिंग वार विषय किछि नहीं। How a change entered into the minds of Ashoka, how Ashoka is completely a changed person after the Kalinga war। एटा मेंशन कराइछि धौली और जौगढ़ रे। एथे कलिंग वार रे डिस्क्रिप्शन नहीं। 1 लाख पीपल आर किल्ड, 1,50,000 इंजर्ड, मेनी मोर आर इम्प्रिजन्ड। ए जो घटना लाख लोक मले, 1.5 लाख बंदी हेले, बहु लोक आहत हेले, खंडिया खबरा जहा कलिंग युद्ध से कलिंग युद्ध विवरणी एठी नहीं। एठी अछि व्हाट चेंज एंटर्ड इनटू द माइंड्स ऑफ अशोक, हाउ ही बिकेम ए कंप्लीटली चेंज्ड पर्सन। कौन स्टेप्स नहीं थिले, वेलफेयर मेजर्स कौन नहीं थिले, शासन पद्धति केमती थिला, कलिंग युद्ध पर कौन परिवर्तन आसला सेटा अछि ओडिसा रे धौली और जौगढ़ रे। सो अशोक सेपरेट कलिंग रॉक एडिक्ट तक कहउछि। वन इज धौली अनदर इज जौगढ़। अच्छा तापरे खारवेल हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन सो फार एज आर्कियोलॉजिकल सोर्स इज कंसर्न। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन खारवेल दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। खारवेल इज किछि सोर्स नहीं। We have to depend upon Hathi Gufa inscription. There are Udayagiri hills that is written in 17 lines and 13 years achievement. खारवेल का 13 वर्ष achievement 1 2 3 4 कली serially लिखा हिची and 17 lines 17 धाडी रे लिखा हिची। हाथी गुफा inscription near Bhubaneswar that is it is written in Prakrit language, Prakrit भाषा रे लिखा हिची खारवेल का अनुशासन। That is the most authentic source of information regarding खारवेल achievements। ता छडा हम पाखर आउरी किसी सांस्कृतिक इंस्क्रिप्शन रही। भद्र इंस्क्रिप्शन महाराजा गण, अलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन, अलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त,
समुद्रगुप्त अलाहाबाद प्रशस्ति ताको हम कहउछन्ती के लिखछन्ती हरिसेन द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त राजसभार ता कोर्ट पोएट जे से कविराज बा श्रेष्ठ कवि से होचदी हरिसेन ही हैज रिटन द अलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन बा अलाहाबाद प्रशस्ति पुनी कोन प्रशस्ति माने कोन प्रशंसा इन हिज प्रेज समुद्रगुप्त को प्रेज करके प्रशंसा कर लिख समुद्र अचीवमेंट लिखछन्ती सेथिरे मध्ये ओडिसा विषय मेंशन कराइछि असनपट स्टोन इनस्क्रिप्शन ऑफ शत्रुभंज सेथिरे ओडिसा अछि माठार रूलर्स तांको सेमाने मध्ये मेंशन करछन्ती ओडिसा विषय रे सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री so where we find the mention of ओडिसा तापर हम आउ पढिया आउ टिके आगु आसीबा भौमकर इनस्क्रिप्शन रहिछि विभिन्न जगह रे तालचेर रू मिलिछि हिंदोल रू मिलिछि पेरुंडिया रू मिलिछि ढेंकानाल कॉपर प्लेट इनस्क्रिप्शन दे आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द भौमकर डायनेस्टी द भौमकर रूलर्स तापर सोमवंशी माने आसिले 9th to 11th सेंचुरी सोमवंशीकर विभिन्न जगह रे जन्मेजयकर विषय मिलिछि कटक रू मिलिछि कॉपर प्लेट मिलिछि so they also informed about the history of ओडिसा तापर परवर्ती डायनेस्टी जो आसला तापर आसले गंगा डायनेस्टी सोमवंश में गंगा डायनेस्टी तापर गजपति डायनेस्टी आसले 5 मार्क कॉइन्स दैट इज आल्सो अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन 5 मार्क कॉइन माने कोन पंच जोटा होल थिबे से कॉइन भितरे 5 मार्क कॉइन्स दे आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन 4th सेंचुरी बीसी रु 4th सेंचुरी एडी पर्यंत 800 वर्षर इतिहास ओडिसा रो हम से 5 मार्क कॉइन्स देखुचंती हम देखक मिलुची अच्छा ता छडा पुरी कुषाण कॉइन्स द अर्ली 6th सेंचुरी पुरी कुषाण कॉइन अर्ली सेंचुरी ऑफ क्रिश्चियन एरा 1st सेंचुरी बीसी बेलको 1st सेंचुरी एडी बेलको तो कुषाण कॉइन्स दे आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ ओडिसा ताछड़ा गुप्त गोल्ड कॉइन्स मु कहता गुरु कहतली गुप्त जुग रे जो गोल्ड कॉइन हिथिला विभिन्न जगह रे मिलिछि दे आर फाउंड फ्रॉम बाणापुर खिचिंग अनुगुल दे आल्सो गिव द कांटेक्ट बिटवीन ओडिसा एंड द गुप्त एम्पायर ओडिसा रो गुप्त एम्पायर से कोन संपर्क थिला जो जगह से कॉइन्स मिलिछि द गुप्त गोल्ड कॉइन दे आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिलेशनशिप इन बिटवीन द गुप्त एम्पायर एंड ओडिसा सेही भली नळ डायनेस्टी नळ राजवंश सेमान के समय 5th and 6th सेंचुरी वेस्टर्न ओडिसा मेनली द रूल ओवर वेस्टर्न ओडिसा तेनु वेस्टर्न ओडिसा ताको हम साउथ कोसळ बोली कहउछथि एबी कोसळ जे सान दाबी करथि पश्चिम ओडिसा सेमान के विषय मेंशन रहिछि आउ कोन रहिछि द गोल्ड कॉइन्स ऑफ सर्वपुरी डायनेस्टी गोटे राजवंश वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर जेनियोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी कहा पर किए राजा माने आसिले शासन कले सेमान मेंशन करछथि सोमवंशी तबर काला चोरीज माने रहिले नाग डायनेस्टी रो छिंडिक नाग तांकर बस्तर कोरापुट डिजनेशन रूल करथिले सेमाने मध्ये मेंशन करछथि पद्म टंका लोटस सेंटर्ड कॉइन्स जो पद्म फूल चित्र हित जो कॉइन ऊपर पद्म टंका तक कहउछथि सो दे आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द देवगिरी द यादवस ऑफ देवगिरी से माने मध्ये ताके विषय मेंशन कराइछि ता छडा गंगा डायनेस्टी रो जो कॉइन साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस आर फाउंड इन अनुगुल कटक एंड सोनपुर गंगा डायनेस्टी कोन इन्फ्लुएंस थिला सिंध गजपति पागोडा गजपति डायनेस्टी रो मध्ये हमको सोर्स अछि कॉइन्स ता छडा आउ किछि रहिछि हमरो मटेरियल रिमेन्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ओडिसा तापर एक्सकैवेशन शिशुपालगढ़ जो एक्सकैवेशन हिची सेथुर कोन हम जानिबा शिशुपालगढ़ दैट इज द कैपिटल ऑफ खारवेल जाके हम कलिंग नगर बोली कहउछंती शिशुपालगढ़ जो एक्सकैवेशन हला इन 1949 शिशुपालगढ़ बाय बीबी लाल तक एक्सकैवेट कले तापर हम जानियो पहिले जे खारवेलंकर एटा होछि ताकर मोनुमेंट सिटी अछि किंतु ताकर कैपिटल थिला शिशुपालगढ़ एई बाखरे भुवनेश्वर पाक निकटरे तेनु शिशुपालगढ़ जो रहिछि एक्सकैवेशन इट आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैपिटल ऑफ खारवेल बा खारवेल राजधानी थिला सेथरा हमको सूचना मिलुछि खंडगिरी उदयगिरी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर एथे कोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर अछि खंडगिरी उदयगिरी रो सेथे विभिन्न प्रकार गुंफा सब रहिछि 117 केव्स आर दे आर द रेस्ट हाउसेस फॉर द जैन मंक्स जैन साधु संत मानक पई विश्राम स्थली थिला जोडा कि तयारी करथिले 117 टा केव करथिले सेथे मंचपुरी गुंफा अछि मंचपुरी गुंफा अछि डबल स्टोरीड केव आ कोठी नाही नो हियर यू फाइंड द डबल दुई महला विशिष्ट गुंफा एटा इति खंडगिरी रे अछि एटा कोठी देखिବାକୁ मिले नाही मंचपुरी केव्स एक्सकैवेशन एट माणिकपाटना इट आल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंशिएंट ओडिसा तापर डायमंड ट्रायंगल जो कहउतिले बे रत्नगिरी उदयगिरी एंड ललितगिरी दे आर द बुद्धिस्ट रिमेनिंग्स बौद्ध धर्मर जो रिमेनिंग्स रहिछि जो ओडिसा जाजपुर जिल्ला रे इट आल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन ओडिसा रे केमति बुद्धिज्म कोन थिला तापर उदयगिरी ललितगिरी से रहला शिशु रहला तापर रहला मटेरियल रिमेन्स ऑफ वेस्टर्न ओडिसा रे सेमती ये जेमती ईस्टर्न ओडिसा रे रहला ललितगिरी रत्नगिरी उदयगिरी ताको डायमंड ट्रायंगल बा हीरक त्रिभुज बोली कहउछंती वज्रदान बुद्धिज्म बा तांत्रिक बुद्धिज्म जले इमर्ज हला सेतबेले सेटा तयारी हिथिला से जो केव सब बा बुद्धिस्ट बिहार
से भली रानीपुर एंड झरियाल वेस्टर्न ओडिसा रे रानीपुर झरियाल द इंपोर्टेंस ऑफ रानीपुर झरियाल कोन इंपोर्टेंस अछि तार व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ रानीपुर झरियाल व्हाई इट इज फेमस फॉर 64 जोगिनी टेंपल in two places in Odisha we find 64 जोगिनी टेंपल one is at रानीपुर झरियाल and another is at हीरापुर नियर भुवनेश्वर शिशुपालगढ़ तुम कहूँ आ टिके आगु से हीरापुर अच्छी तेणु रानीपुर झरियाल जो हूँ बलांगीर 64 जोगिनी टेंपल लिखी सो दैट इज द सोर्स ऑफ इनफॉरमेशन रानीपुर झरियाल बलांगीर डिस्ट्रिक्ट सेमती पोड़ागढ़ नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट बिलीव टू बी द नल कैपिटल से आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स देखा मिलूँ टेम्पल्स ऑफ ओडिशा कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ओडिशा टेम्पल है कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहुच्छी शिखर रही रेखा देवल रही कर्भिलिनर स्पायर रही डेवलप्ड भुवनेश्वर इन 6th and 7th century ओडिशा जो टेम्पल आर्किटेक्चर दे आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन टेम्पल आर्किटेक्चर कौन इंफॉर्मेशन पाउछंती द मिलिटरी हिस्ट्री से समय राजा मानकर मिलिटरी हिस्ट्री कौन थिला इन्फेंट्री अछंती सेतरे एलिफेंट्री अछंती कैवलरी भी अछंती जो आर्ट आर्किटेक्चर भितर सैन्य बाहिनी के चित्र सब रही कोणार्क मंदिर तुम गले देखियो सैन्य बाहिनी के चित्र माने पदातिक बाहिनी के चित्र रही हाथी ऊपर बसचंती युद्ध करबे से माने अछंती घोड़ा ऊपर बसचंती कैवलरी से माने अछंती कैवलरी एलिफेंट्री बा इन्फेंट्री से माने राजा मान को थिला एगुडा मध्ये हमको इंफॉर्मेशन मिलुची अच्छा जो लक्ष्मणेश्वर भरतेश्वर शत्रुघ्नेश्वर मंदिर रही भुवनेश्वर रे दे आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटेम्पररी हिस्ट्री ऑफ ओडिशा ता छडा लिंगराज टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगड़ा बोली कहउची ब्लैक जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पगड़ा बोली कहउची एबे हमसे चेंज हो गला कारण व्हाइट पगड़ा थिला एबे ताको व्हाइट पगड़ा बोली कहउनी कारण व्हाइट जो थिला ताको चुनर तार ओटे थिला लेप ताको छोड़ी दिजु देबे बाहर को टेम्पल टोटल मंदिरटा केते आर्ट आर्किटेक्चर लुचि थिला ताको ब्रिटिश पीरियड ताको से कवर करथिले काहे टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द सलाइन वाटर ये जो लुणी पानी जो हवा आस्तला सेथरो प्रोटेक्ट करबे तापर चूना दिया हितला अच्छा फाइनली मादला पांजी दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट इज द टेंपल क्रॉनिकल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ तेनु मादला पांजी रे लॉर्ड जगन्नाथ का टेंपल क्रॉनिकल विषय सब वर्णना रही ता छडा आउ कोन रही आमे देखले जिमती श्रीलंकार राज वंश काश्मीर राज तरंगिणी आसाम बुरुंजी दे आल्सो गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ दैट एरियाज राजवंश को राजा कहा पर के शासन करथिले रही जे मादला पांजी रे मध्ये सेमती जो राजा माने शासन करथिले द रूल्स एंड रेगुलेशन द रिचुअल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ टेंपल दे आर ऑल मेंशन्ड इन द मादला पांजी दैट इज आल्सो द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो एही भाबरे सोर्स गुडा कर डिवाइड कराई छै हमें जानि कि एही भाबरे सोर्स हम सब करि परिबा कौन सब लिटरेचर सोर्स कौन कौन रहला हमें देहा डिस्कशन कले हमें तार ओटे जिस्ट दे देला एथिरे तो सोर्सेस दे आर द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा तापर ज्योग्राफी भीतर हम देखिबा सेते कलिंगटा कोइ जगह थिला ज्योग्राफी का स्प्रेड केते जगह को कलिंग स्प्रेड करथिला पुराण रो कोन जणा पडुची कलिंग विथ अंग बंग पुंड्र एंड कलिंग को कहउतला एंशिएंट ओडिशा को कहउतला कलिंग बोली कहउतला पुनी उत्कल बोली कह जाउतला तापर तोसाली बोली कह जाउतला बा कोशल कह जाउतला तार इनफॉरमेशन सब हम कोठु पाउचंती पुराण रे केमती वर्णना कराई कलिंग को अंग बंग पुंड्र एंड सुषमा बोली कहउतला महाभारत वन पर्व रे मेंशन कराई जो रिवर कथा कहली बैतरणी इट इज फाउंड इन द वन एई वन पर्व क्वेश्चन ता पड़ितला जो कहली बैतरणी रिवर वेयर वी फाइंड द मेंशन ऑफ द रिवर बैतरणी दैट इज इन महाभारत को पर्व ने चैप्टर से वन पर्व महाभारत वन पर्व रे मेंशन कराई जो बैतरणी नदी कथा मेगास्थनीज कथा पढ़िले pilgrims they have information given their own information अच्छा तापर हमें देखिबा नॉर्दर्न कलिंग साउदर्न कलिंग केमि थिला अशोकन एडिक धौली रे जणा पडुची जौगढ़ रे जणा पडुची कोन कलिंग वाज डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव पर इनटू टू पार्ट्स नॉर्दर्न कलिंग और साउदर्न कलिंग अशोकन का दुईटा कैपिटल थिला गोटे होची तोसाली गोटे होची जौगढ़ रे कैपिटल कोन थिला समपा जौगढ़ होची गंजाम जिल्ला रो तो से साउदर्न ओडिशा और एपटे तोसाली रहिला भुवनेश्वर रे एटा हला नॉर्दर्न ओडिशा नॉर्दर्न कलिंग और साउदर्न कलिंग अशोकन समय कलिंग दुई भाग रे विभक्त हेतिला नॉर्दर्न कलिंग रे थिला कैपिटल तोसाली साउदर्न कलिंग रे थिला समपा तेनो अशोक ताको एम्पायर को कलिंग किंगडम को दुईटा भाग रे विभक्त करथिले तापर खारवेल कलिंगाधिपति जो टर्म खारवेलंकर कलिंगाधिपति बोली लॉर्ड ऑफ कलिंग उदयगिरी जो हाथी को इंस्क्रिप्शन सेठी वर्णना करे खाली खारवेल को कलिंगाधिपति भाबरे दैट इज आल्सो नोन फ्रॉम द हाथी को इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल
सेमती रघुवंश कथा मैं कहली जहाँ जो कालिदास रघुवंश समुद्रगुप्त अलाहाबाद प्रशस्ति ये सब गुड़ाक कलिंग विषय वर्णना कराई। दंतपुर पुणी कौन कहार कैपिटल था दंतपुर अर्ली कैपिटल इट्स एग्जैक्ट लोकेशन इज स्टिल डिबेटेड बाय स्कॉलर्स एंड अवेयर्स आर्कियोलॉजिकल को जगह दंतपुर थिला बोली किंतु ताकू कह दंतपुर काहाकू पुरी को कह दंतपुर बोली करी। It is believed that Puri it has been known as Dantapura. काहे कि ता नाम दंतपुर काहे कि it is also believed that the tooth relic of Gautam Buddha it is there in the Navi Brahma of Lord Jagannath. जो ब्रह्म परिवर्तन हुए सेते मध्ये विश्वास कराउची से होची गौतम बुद्धंकर दांत ता भितर अछि से अनुसार पुरी को दंतपुरी बोली कहउतला बट इट इज स्टिल इन कंट्रोवर्सी ए पर्यंत कंट्रोवर्सी रहिछि जे दंतपुर को जानि पाने तो कोई जगह प्रकृत दंतपुर बोली करी। सेति कलिंग नगर हम पढ़िले कैपिटल ऑफ खारबेल थिला कलिंग नगर। सेति कटक कैपिटल ओडिसा केते बेला हला चोड़गंग देवंग समय कलिंग इट बिकेम द कैपिटल ऑफ ओडिसा। कलिंग तो कटक बोली कहउतला एबा कटक बिकेम द कैपिटल व्हेन अनंत वर्मा चोड़गंग देव कंसोलिडेटेड हिज रूल इन 1110। तेनु कलिंगटा हला बा कैपिटल हला कटक सेते बेले चोड़गंग देवंग समय तार कैपिटल चेंज हेतिला। उत्कल पुणी उत्कल कौन अच्छी महाभारत तो मेंशन रही रामायण रे मेंशन रही कालिदास रघुवंश रे मेंशन रही उत्कल विषय रे। अढ़ाबर प्लेट सेटा होची महान नर राजा अढ़ाबर प्लेट ऑफ महान नर अढ़ाबर जगह सेथिरे मध्ये कुशल विषय मेंशन करा हिची। अच्छा ओडिसा रे पुणी कैपिटल नै किरी गोटे होची बिरजा थिला ओडिसा रा कैपिटल बिरजा कोठी जाजपुर हम जा कहउचंती बिरजा मॉडर्न जाजपुर भौमकर मानक समय रे थिला कैपिटल तार। सेमती आउट होची गुहदेव पाटक और गुहेश्वर पाटक भौमकर समय रे सेटा होची से एका जिंसटा गुहेश्वर पाटक बा गुहदेव पाटक दैट इज आल्सो नोन एज द कैपिटल ऑफ द भौमकरज। मनु संगीत हम तो पढ़िले मनुस्मृति पढ़िले पुराण विषय तो पढ़िले अशोकन धौल इनस्क्रिप्शन दक्षिण तोसाली गला क्वीनसंग अकाउंट समुद्रगुप्त अलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन एटा पढ़िले। अच्छा तापर आमी जिबा कलिंग वार। सो कलिंग वार कहीं की हितला कलिंग वार अशोक तापर आमी आसे अशोक चैप्टर को। So far as the political history of Odisha is concerned, Kalinga War it took place in 261 BC. So why Ashoka he invaded Kalinga? Ashoka Kalinga आक्रमण से कौन कारण थिला? He was the third ruler of the Mauryan dynasty. First Chandragupta Maurya, then his son he was Bindusara, and then came Ashoka. After the death of Chandragupta Maurya, बंद कर देबो एटा कोट एथरे नियो। So Ashoka he was the third ruler of the Mauryan dynasty. In 261 BC he invaded Kalinga. Kalinga आक्रमण करले ख्रीष्टपूर्व 261 रे। तापर से कौन कारण थिला? चंद्रगुप्त मौर्य he was the first ruler. Then came Bindusara, third ruler Ashoka. He occupied the throne in 273 BC, but his coronation took place in 269 BC after 4 years. Then he invaded Kalinga on the 8th regnal year. 269 ख्रीष्टपूर्व रे सिंहासन कले कि 261 रे कलिंग आक्रमण कले। तापर से कौन कारण थिला? द पॉलिटिकल कॉज जोटा कि चंद्रगुप्त मौर्य कहि पार नथिले। बिंदुसार ही डिड नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। थर्ड रूलर इज अशोक। तेन बिंदुसार जो कलिंग को अंतर्गत करि पारि नथिले और इट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य दैट कलिंग इट डिक्लेयर्ड इट्स ओन इंडिपेंडेंस आउटसाइड मगध रहि गला। तेन कलिंग मगध आक्रमण कले कलिंगटा को अंतर्गत करि पारि नथिले चंद्रगुप्त मौर्य। सो अशोक ही वांटेड टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ हिज ग्रैंडफादर। जे आप जो स्वप्न देखते कलिंग को अंतर्भुक्त करने मगध भितर साम्राज्य भितर ताकू से फुलफिल कले अशोक। सो पॉलिटिकल कॉज इन ऑर्डर टू एक्सपांड द टेरिटोरी ऑफ कलिंग कलिंग साम्राज्य सीमा विस्तार करने मगध साम्राज्य सीमा विस्तार करने कलिंग को चाहिए अंतर्भुक्त करने पॉलिटिकल कॉज। इकोनॉमिक कॉज भी थिला कलिंग इट हैड गॉट इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ इन कलिंग इट स्टोर्ड इन कलिंग। कलिंग रे बहुत परिमाण धन संपत्ति गच्छित हेकी थिला अशोक जानबा को पाइले। धन संपत्ति कोठी आस्तला कोठु? इट इज थ्रू द ट्रेड एंड कमर्शियल रिलेशनशिप। कलिंग साहसिका कलिंग साहसिका बोली वर्णना कराई प्राचीन भारतीय इतिहास रे साहित्य रे जे कलिंग लोक माने खूब साहसी। सो दे हैड एस्टैब्लिश्ड द मेरीटाइम ट्रेड रिलेशनशिप विथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र मानक सहित वाणिज्यिक संपर्क स्थापन करी कलिंग लोक माने खूब प्रचुर परिमाण रे वैदेशिक मुद्रा कलिंग को नै आसी पारुथिले।
ତେଣୁ in order to capture the wealth of Kalinga, he invaded Kalinga. That is another factor. Political cause, social cause, then military cause. Kalinga is backed by a well organized military forces. ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗର ଯୋଉ ସାମରିକ ବାହିନୀ ତାକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏକ ବିଶାଳ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଗଠନ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଅଶୋକ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ। ଆଉ କଣ ଥିଲା? ଇଟ୍ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ଇଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପୋଜିସନ। କଳିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଆର୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପୋଜିସନ। ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗଟା, ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ। From three sides there are states, land routes, land, and on the other side there are the water sources. ତେଣୁ ଚାରିପଟରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଇନ୍ 261 BC, 261 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ, ତୁମେ ଯୋଉ ଏଇଟାକୁ କହୁଛ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡା, ଅନେକ ପିଲା ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ପରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ, ଏଇଟା ପିସ୍ ପାଗୋଡା, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡା ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ପିସ୍ ପାଗୋଡା, ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ। এটা 1971 ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। আচ্ছা, এই যে কলিঙ্গ ওয়ার ହେଲା 261 BC রে, এই যে কোশ্চেন আছে, হু ওয়াজ দ কিং অফ কলিঙ্গ এট দ্যাট টাইম? নো ওয়্যার উই ফাইন্ড দ নেম অফ দ কিং অফ কলিঙ্গ। কলিঙ্গ রাজাଙ୍କ ବିଷୟରେ କୋଉଠି ମେନସନ ହେଇ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ରଜକ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ? ହାଉ ହି ବିକେମ୍ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍? So that is the question mark till now among the historians. Some say that Kalinga was an independent state. Others say Kalinga was a republic. In a republic we do not find a king. In an independent state we also do not find a king. गोटे गणतंत्र रे आमे राजा देखंदी नाही, गोटे स्वाधीन राष्ट्र मध्ये राजा के नथांती। सो इट इज बिलीव्ड दैट आइदर कलिंग वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट और कलिंग वाज ए रिपब्लिक, जहाँ पर राजा के विषय कौन सी मेंशन नहीं। सो इन द ग्रेट कलिंग वार व्हिच टुक प्लेस नियर भुवनेश्वर एलंग द रिवर दया ऑन द फुटहिल्स ऑफ धौली हिल, एरा धौली पहाड़ रे पाददेश रे दया नदी कूल रे भुवनेश्वर निकट रे ए कलिंग युद्ध हेतिला। इथे कोन हेतिला ना 1 लाख पीपल आर किल्ड। इट मेंशन कराइछि 6 लाख मेन बोली टोटल लोकन संख्या 6 लाख बोली कहउछथि। 150,000 वर डिपोर्टेड, 100,000 वर किल्ड एंड मेनी मोर डाइड फ्रॉम अदर कॉजेस। तेनु कलिंगर एते संख्यक लोक सेते प्राण हरैथिले, आउ लक्ष लोक से प्राण हरैथिले, 1.5 लाख लोक बंदी हिथिले, बहु लोक सेते आहत हिथिले। सो हैविंग सीन द वार साइट अशोक ही बिकेम विक्टोरियस, बट हैविंग सीन ए वार साइट a change entered into his mind. He realized, a realization came into his mind, into his heart, that the real victory it lies only with the hearts of the people. लोकंग हृदय जय करबा प्रकृत जय से अनुभव कले। तेणु से he discarded war, से युद्ध परित्याग करी, renounced war, युद्ध परित्याग करथिले। And he came to be known as or converted from चंडाशोक to धर्माशोक। चंडाशोक ରୁ धर्माशोक रे से रूपांतरित होइथिले। And he has been regarded in history as a great conqueror, as a great administrator, or as a welfare ruler, and as a patron of religion or patron of Buddhism. एमती गोटे क्वेश्चन आसे अशोक मेन्स कथा कहूँ जदि क्वेश्चन आसो परीक्षा केमती आसे तो प्रिलिम्स में तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत पढ़िबो से अलग जिंस क्वेश्चन आसे पढ़िबनी परीक्षा रे केबे भी कजेशन इफेक्ट्स ऑफ कलिंग वार एमती क्वेश्चन आसीबनी। से क्वेश्चन पढ़थिबो एस्टिमेट द प्लेस ऑफ अशोक इन हिस्ट्री, इतिहास रे अशोक स्थान निरूपण कर। सेते तुम कलिंग वार कजेशन इफेक्ट लिखि देले इट विल नॉट फेच मोर मार्क्स। से पचाउची प्लेस ऑफ अशोक इन हिस्ट्री, व्हाट इज हिज प्लेस? तमाने अशोक एज ए फर्स्ट पॉइंट हो इंट्रोडक्शन देला। फर्स्ट पॉइंट ला अशोक एज ए ग्रेट कंकरर, as a great conqueror in one paragraph you have to mention his victory in the Kalinga war. Ashoka as a conqueror, Ashoka as a empire builder, Ashoka as a welfare ruler, Ashoka as a patron of Buddhism. এই চারটা পয়েন্ট को তুমি লিখিলা পরে তোমার আনসারটাকে তুমি প্রুভ করিবো। দ্যাট ইজ হাউ অশোক হ্যাজ বিন রিগার্ডেড ইন হিস্ট্রি as a great conqueror, as a great empire builder, as a patron of Buddhism, as well as a welfare ruler. All men are my children, से को लिखिचंती सिद्धि अनुशासन रे all men are my children, समस्त होचंती मोर संतान बोली से निजे ताका प्रजा मानकु से मेंशन करचंती। जो राजा निजर प्रजा मानकु संतान पर देखुतला पर की वेलफेयर मेजर्स से नैथिले, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड टू आरंभ करी, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज टू आरंभ करी, प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज, बास हॉस्पिटल, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स फॉर द एनिमल्स एज वेल एज फॉर द पीपल, ए सबुडा साथे रहिला। तापर अशोक एज ए रिलीजियस प्रोपेगेटर, पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेन करथिले इन हिज कैपिटल पाटलिपुत्र। ऑन द 10th year of Kalinga war 251 BC रे मोगलीपुत्र तीसा he presided over the conference. Then he appointed a special class of royal officers, they are known as धर्म महामात्रस। धर्म महामात्र मान नियुक्ति थिले फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म इन एंड अराउंड इंडिया, इन एंड आउटसाइड इंडिया, भारत भीतर भारत बाहर, चाइना, तिब्बत, कोरिया, बर्मा, थाईलैंड, भूटान, ए सब को बौद्ध धर्म व्यापी गला। इट इज ड्यू टू द रोल ऑफ द धर्म महामात्रस।
এইগুলা হচ্ছে তাଙ୍କର ওয়েলফেয়ার আক্টিভিটিজ বা রিলিজিয়স আক্টিভিটিজ সেইভাবে তুমি প্রুভ করিব দ্যাট ইজ দ পজিশন অফ অশোক ইন হিস্ট্রি। তারপরে আসলে মহামেঘ বাহন খারবেଳ। মহামেঘ বাহন খারবেଳ ତାଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଚିଫ୍ সোর্স অফ ইনফরমেশন ইজ দ হাতিগুম্ফা ইনস্ক্রিপশন নিୟର ভুবনেশ্বর। কুমার পর্বত ও কুমারী পর্বত গোটে খଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରି, ଗୋଟେ କୁମାର ପର୍ବତ ଗୋଟେ କୁମାରୀ ପର୍ବତ। ଇଟ ଇଜ ଆନସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ ହଉଛି କୁମାର, ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମାର ପର୍ବତ, କୁମାରୀ ପର୍ବତ ହେଲା ଉଦୟଗିରି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେନସନ ମାନେ ସେଠି ରହିଛି ହାତିଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଓନ୍ଲି সোর্স অফ ইনফরমেশন ରିଗାର୍ଡିଂ ଖାରବେଳ। ଖାରବେଳ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି সোর্স অফ ইনফরমেশন ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ରିଟନ୍ ଇନ ପ୍ରାକୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ and it is written in 17 lines। ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଖାରବେଳଙ୍କ 13 ବର୍ଷର achievement। so it is believed that ଖାରବେଳ he only ruled for 13 years। 13 ବର୍ଷ ପରେ ଖାରବେଳଙ୍କ achievement କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଇନଫରମେଶନ ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ। so that is written in ପ୍ରାକୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। who deciphered or who for the first time excavated the or deciphered the ହାତିଗୁମ୍ଫା inscription? କିଏ ତାକୁ or କିଏ ପଢିଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ? ବିବିଲାଲ ନା, ବିବିଲାଲ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ତା ଯୋଉ ଶିଶୁପାଳ ଗୋଟେ ଥିଲା। ପ୍ରିନ୍ସେପ, ପ୍ରିନ୍ସେପ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ। ଅଶୋକନର କିଏ ଏଡିକ୍ଟ ଆଉ ଖାରବେଳଙ୍କର କିଏ? who deciphered the ହାତିଗୁମ୍ଫା inscription? ନାଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ମନେ ପଡୁନି। ହାତିଗୁମ୍ଫା inscription ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ ପାଠ କରିଥିଲେ, କିଏ ପଢିଥିଲେ? କହିବି ସେଟା କହିବି, ମୁଁ ତ ମନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବି ଯେ who deciphered the ହାତିଗୁମ୍ଫା inscription। so ଚେଦି ରାଜବଂଶ ବଦନେନ ବୋଲି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚେଦି ରାଜବଂଶ ବଦନେନ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଚେଦି ରାଜବଂଶ ବଦନେନ ମାନେ କ'ଣ? ଚେଦି ରାଜବଂଶରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। he belonged to ଚେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ମହାମେଘ ବାହନସ୍ୟ, there is a link between sanskrit, prakrit and pali। sanskrit language, pali language, prakrit language ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ଚେଦି ରାଜବଂଶ ବଦନେନ, ତେଣୁ ଚେଦି ରାଜବଂଶରୁ ଆସିଥିଲେ। ମହାମେଘ ବାହନସ୍ୟ, he was the descendant of ମହାମେଘ ବାହନ। ତାପରେ ଖାରବେଳଙ୍କ achievement ରହିଛି। what are the achievements of ଖାରବେଳ during his 13th regnal year? first year achievement କ'ଣ ଥିଲା ଖାରବେଳଙ୍କର? first of all he renovated କଳିଙ୍ଗ ନଗର, that was the capital of ଖାରବେଳ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ନଗର ରିନୋଭେସନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? at that time 35 lakhs of coins were spent for the renovation of the କଳିଙ୍ଗ ନଗର। କଳିଙ୍ଗ ନଗର ରିନୋଭେସନ ପାଇଁ 35 lakhs of coins were spent at that time। ସେଇ ସମୟରେ ରିନୋଭେସନ କରିଥିଲେ, ତାର ଗେଟ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ରାମ୍ପାର୍ଟସ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। এই ସବୁ ଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶତବାହନ କିଙ୍ଗଡମ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ଶତବାହନ କିଙ୍ଗଡମ, ତାଙ୍କ ରାଜା ହଉଛି ସାତକର୍ଣ୍ଣି। in order to expand his territory towards the south of Odisha he carried on his military expedition। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ରିନୋଭେସନ କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ଦ ରାମ୍ପାର୍ଟସ ବା ପାଚେରୀ, ଦ ଫୋର୍ଟସ, ଏଟା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ଇଟ୍ ଇଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସାଇକ୍ଲୋନ। ସାଇକ୍ଲୋନରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବା ରାଜପ୍ରାସାଦ বা ପ୍ରାଚୀର বা ଦୁର୍ଗ ତାର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ। 35 lakhs of coins were spent in that regard। then his achievement in the second year he carried on his military expeditions against Satakarni। Satakarni first, he was the ruler of Satavahana dynasty। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଖାରବେଳ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ହେଇଥିଲେ ନା ହାରିଗଲେ? ହଁ, he was defeated। so river Krishna, से कृष्णा नदी को क्रॉस कर जाई पारि नथिले सतवाहन का राज्य को। so river Krishna it became the southern boundary of Kharavela's capital, Kharavela's empire। तेनु सतवाहन राज्य विरुद्ध रे सातकर्णी का विरुद्ध रे तांका सामरिक अभियान। तापर थर्ड ईयर रे कोन करले? he provided entertainment facilities and royal feasts are organized। हां से कहूची पूरा जेम्स प्रिंसेप, हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। अच्छा, तापरे थर्ड ईयर रे कोन ताकर रोल थिला? एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज थिला। काहे की सेकंड ईयर रे से कैरिड ऑन हिज एक्सपेडिशन अगेंस्ट सतवाहन किंग, ही वाज सातकर्णी फर्स्ट, ही वाज डिफीटेड। सो रिवर कृष्णा इट रिमेन्ड द साउदर्न बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर। कृष्णा नदी क्रॉस करि थाते ताले साम्राज्य सातकर्णी का राज्य सतवाहन राज्य तांका साम्राज्य अंतर्गत हेई थाता। देन द अचीवमेंट ऑफ खारवेल इन द थर्ड ईयर रे कोन थिला? ही ऑर्गेनाइज्ड द रॉयल फीस्ट्स, मेरी मेकिंग्स बा राजकीय भोजी बा संगीत नृत्य आयोजन करथिले। काहे की so far as this merry making, so far as the royal feasts are organized,
there is a controversy among the historians, different of opinion among the historians. Some historians they say that in order to encourage his military forces, सामरिक बाहिनी को एनकरेज करिया पई से परवर्ती आक्रमण पई से तांको पई रॉयल फीस्ट आयोजन करथिले ए गोटे जिंस. सो खारबळ म्यूजिक डांस इस ऑर्गेनाइज करथिले. डांस परफॉर्मेंस थिला, वोकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक थिला, कॉन्सर्ट सब थिला, सेरेमोनियल सोशल गैदरिंग सब थिला. देन खारबळ हिज 4th ईयर दाक्षिणात्य अभियान थिला. ही साउदर्न एक्सपेडिशन राष्ट्रिक और भोजक रथिक बोली लिखिছে एका कथा, राष्ट्रिक बोली आमी राष्ट्रिक लिखि दे परिबा. राष्ट्रिक बा रथिक एका कथा. महाराष्ट्र आ गोटे भोजक हूँ नासिक, से महाराष्ट्र. रथिक एंड भोजक एक्नॉलेज हिज सॉवरेनिटी एंड ही गिव देम ट्रिब्यूट्स. निजर तांकर सार्वभौमत्व को से स्वीकार करथिले ड्यूरिंग द 4th रेग्नाल ईयर. 5th रेग्नाल ईयर कोन करथिले? ही रिनोवेटेड द कैनाल व्हिच हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बाय द नंद रूलर. जो नंद राजा द्वारा, नंदस दे रूल ओवर मगध पाटलिपुत्र. तेनु पाटलिपुत्र रु बा मगध रु शिशुपाल पर्यंत बा शिशुपाल गढ़ पर्यंत कैपिटल पर्यंत से कैनाल को एक्सटेंड करथिले. सो रिनोवेटेड ही एक्सटेंशन ऑफ कैनाल ओरिजिनली बाय नंद किंग 300 इयर्स एगो. 3 वर्ष सत बोली गोटे वर्ड सीट लिखाई छी. 3 वर्ष सत को लेकिरी केतक हिस्टोरियन कहउछंती इट इज 300 और इट इज 103. 3 वर्ष सतम 3 वर्ष एरम कहितला गुरु पढिला को ओडिसा हिस्ट्री रे 3 वर्ष सतम नै कंट्रोवर्सी अछि. किंतु 103 हेले हबो नाही. 103 वर्ष न 300 वर्ष पूर्व का नंदस दे रूल्ड ओवर मगध 300 इयर्स एगो. लास्ट रूलर होउछंती धननंद. ही वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य धननंद परास्त करथिले. तेनु जे महापद्मनंद ही बिलोंग टू, ही वाज रूलिंग ओवर द मगध एम्पायर 300 इयर्स एगो. तेनु महापद्मनंद का समय जो कैनाल खोला हितिला तार से ताको आउटिके प्रस्त विस्तारित करथिले. ही एक्सटेंडेड द कैनाल. इटा ना 5th ईयर रे. तापर 6th ईयर रे कोन थिले ताका अचीवमेंट? ही एग्जेम्प्टेड द पीपल फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस. तम कर प्रदान रो मुक्त करथिले. बेनिवोलेंस एंड टैक्स रिमिशन. राजतर 6th वर्ष रे 6th ईयर रे से टैक्स लोकन को कर मुक्त करथिले. 7th ईयर रे कोन थिला? 7th ईयर इट इज not known actually what happened during the 7th regnal year of Kharavela because that portion it has been destroyed. हाथीगोपा अनुशासन रो 7th वर्ष रे ताका कृतित्व से पोस्टर भांगी जाईछि. किंतु गोटे लेखा से देखिया को मिलुछि बजीरा घर रानी. बजीरा घर रानी माने खारबेला का रानी बजीरा. जो ता परे कोन लेखाई छि से विषय के वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन. बजीरा घर रानी अर्थात खारबेला का क्वीन जे रानी सी बिकेम ए मदर. ताको हम बिलीव करूछोंती जे खारबेला ही गॉट हिज फादरहुड बा खारबेला का पितृत्व लाभ होइतला बा ताकर पुत्र संतान जन्म होइतला. रॉयल बार्थ. ए बजीरा घर रानी लिखिछि बजीरा घरवती, बजीरा घर रानी एका कथा. तापर 8th ईयर थिला ताकर कोन नॉर्दर्न एक्सपेडिशन खारबेलांकर राजगृह गोरथगिरी एसु एक्सपेडिशन थिला. एटा गोटे क्वेश्चन भितर अछि खारबेला भितर गोटे क्वेश्चन जो होछि हे जो कलिंग जिन एटा गोटे क्वेश्चन आसे. तापर अछि कलिंग जिन अछि. नॉर्दर्न एक्सपेडिशन हैला गोरथगिरी और राजगृह विरुद्ध थिला परवर्ती सामरिक अभियान. 8th ईयर रे. तापर 9th ईयर रे द ग्रेट विक्ट्री पैलेस महाविजय प्रासाद ताका जो कैपिटल होची शिशुपालगढ़ से कैपिटल रे कलिंग नगर जाके हम कहउछंती. देयर ही कंस्ट्रक्टेड द महाविजय प्रासाद. दैट वाज द अचीवमेंट ऑफ खारबेला ड्यूरिंग हिज 9th रेग्नाल ईयर. 9th वर्ष रे कोन काहे की करथिले? आज मार्क ऑफ हिज विक्ट्री ओवर नॉर्थ इंडिया. जो उत्तर भारत अभियान 8th वर्ष रे करथिले नॉर्थ इंडियन एक्सपेडिशन. as a mark of his victory over northern India, he constructed the great victory palace. महाविजय प्रासाद तक निर्माण करथिले victory palace. अच्छा सेथिरे से खर्च करते 38 lakhs of coins. रिनोवेशन ने थिला 35 lakhs of coins. ए जो प्रासाद निर्माण करले सेथिरे से 38 lakhs of coins करथिले. तापरे खारबेला during the 10th regnal year he again he carried on his northern expedition. आउ थरे उत्तर भारत अभियान आरंभ करथिले. तापरे 11th year रे he subjugated the southern confederacy. दक्षिणात्यर जो छोटो छोटो कन्फेडरेशन थिला सेमान को ऊपर निजरा विजयत्व प्राप्त करथिले. सब्जुगेशन ऑफ साउदर्न कन्फेडरेंसी. चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी एस गुड़ाक छोट छोट राज्य सब. तापरे परवर्ती तांकर थिला अचीवमेंट कोन ड्यूरिंग द 12th रेग्नाल ईयर अम्बलिंग मगध एंड रिक्लेमिंग द कलिंग जिन. मगधर शासक के थिले से समय बृहस्पति मित्र.
द रूलर ऑफ मगध ही वाज बृहस्पति मित्र तांको डिफीट करथिले ड्यूरिंग द 12th regnal year he defeated the ruler of Magadha he was बृहस्पति मित्र and he returned back the Kalinga jina जाको कि नंद राजा नै जाइथिले कलिंगरु महापद्मनंद कलिंगरु महापद्मनंद नैथिले 300 वर्ष पूर्वे सेही जो थिला कलिंग जिन ताकू से पुणी प्रत्यावर्तन करथिले ड्यूरिंग द 12th regnal year he returned back the कलिंग जिन तापर लास्ट ईयर 13th year अचीवमेंट खारबणकर कोन थिला he completely engaged himself for the construction of the caves patronage of Jainism and cave construction 117 टा गुंफा तयारी करथिले कुमार पर्वत हैला खंडगिरी कुमारी पर्वत हैला उदयगिरी म कहितली कुमार पर्वत कुमारी पर्वत तेनु कुमारी पर्वत जो होची उदयगिरी पहाड़ सेठी 117 टा गुंफा करथिले जैन सन्यासी मानक पई कोन पई बिकॉज़ द केव्स आर द रेस्ट हाउसेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो वर्षा दिन चतुर्मास्य बोली हम जो कहती है आरंभ हो जगन्नाथ रथ यात्रा पर चतुर्मास्य तेरे कोन शुभ काम होइनी सब जिन हमर विश्वास अछि सेमती ड्यूरिंग द रेनी सीजन द caves were constructed as the rest houses for the Jaina monks for the Jaina arhats Jaina arhat बोली कह जाए से मानक में 117 टा गुंफा सेठी निर्माण करथिले ता परे खारबण अचीवमेंट कोन थिला से एटा जो मंच पुई कहउथली डबल स्टोरी केव्स दुई महला गुंफा एटा आउ कोड देखा मिलेनी नो हेयर so he completely dedicated himself for the construction of the caves and for the propagation of Jainism तने एही शॉर्ट रे देख लिखि दिछि नॉर्थर्न एक्सपेडिशन थिला तापर महाविजय प्रासाद 9th ईयर रे आउ थरे अगेन नॉर्थर्न एक्सपेडिशन साउदर्न कन्फेडरेसी चोल पांड्य केरल पुत्र सत्यपुत्र जमान रहले छोट छोट राज्य ताको डिफीट करले बा तांकर बसता स्वीकार करले से माने खारबणकर तापर 12th ईयर रे बृहस्पति मित्र मगध को परास्त करले रिटर्न बैक द कलिंग जिन और 13th ईयर हैला कंस्ट्रक्टेड द केव्स फॉर द जैन मंक्स एवरे खारबळ एमती खारबळ को पर एमती क्वेश्चन देबे आसे एस्टिमेट द प्लेस ऑफ खारबळ इन हिस्ट्री जेमती अशोक कहली अशोक ऊपर दीटा क्वेश्चन एस्टिमेट द प्लेस ऑफ अशोक इन हिस्ट्री गोटे क्वेश्चन आसे किबा गोटे कोटेशन देथिबो कलिंग वार वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोक जस्टिफाई कलिंग वार वाज अ लाइफ ऑफ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ टर्निंग पॉइंट माने अशोक का जीवन रा गतिपथ को कलिंग वार केमिति परिवर्तन करथिला तने से कलिंग वार कजेस इफेक्ट एते लिखे दरकार नै aftermath of the Kalinga war how he proved himself as a completely changed person कोन चेंज तांका भीतर आसिला रिमोर्स रे दुख असंग माने जो रिमोर्स आसिला प्रतिक्रिया आसिला परिवर्तन आसिला दैट विल बी योर आंसर खाली देखिबे क्वेश्चन रे बुझिबे से कोन पचारि छि एस्टिमेट द प्लेस ऑफ अशोक इन हिस्ट्री एस्टिमेट द प्लेस ऑफ खारबळ इन हिस्ट्री आ गोटे पढि पारे कलिंग वार एज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोक जस्टिफाई तापर ओडिसा ड्यूरिंग पोस्ट गुप्त पीरियड छोट छोट डायनेस्टी सब थिला मठार डायनेस्टी थिला हे मठार डायनेस्टी अछि तांका भीतर थिले विशाखा बर्मन श्रीपुर थिला तांकर कैपिटल मठार मानकर थिला श्रीपुर कैपिटल श्रीपुर कोठी बर्तन इट इज आइडेंटिफाइड विथ साउदर्न ओडिसा श्रीपुर ना होसी साउदर्न दक्षिणात्यर आमी जा क्वेश्चन देबे गंजाम जिल्ला पारलाखेमुंडी अंचल से थिला श्रीपुर मॉडर्न बाटिया श्रीपुर नियर पारलाखेमुंडी बा गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे दैट इज द कैपिटल अच्छा आ गोटे क्वेश्चन पढि पारे एमंग द फॉलोइंग मठार रूलर्स हु गॉट द टाइटल श्री महाराजा से होसुनी विशाखा बर्मन विशाखा बर्मन होचंदी से जो मठार शासक जे कि तार कैपिटल कोन थिला एटा आउट क्वेश्चन हे परिबो व्हिच आर द कैपिटल ऑफ द मठाराज श्रीपुर कैपिटल आउ तार थिले श्री महाराजा टाइटल अच्छा तांका परे आसले उमा बर्मन एटा तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन न हो एटा किंतु एमती गोटे क्वेश्चन आसी पारे जदी आसीबो तांका परे आसले उमा बर्मन like Visakha Burman's son likely he was an ambitious ruler expanded kingdom which includes Svetaka region modern Chikiti से गंजाम जिला रे lord of Kalinga कलिंगाधिपति by the 13th regnal year his domain covered the present Srikakulam district he then declared himself lord of Kalinga by कलिंगाधिपति और तांकर कैपिटल को सिंहपुर को से ट्रांसफर करथिले दैट इज विजय सिंहपुर ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल टू सिंहपुर
जेने बही तो पाइछ बही रे तक तमे बही पाइ नथियो बोधे मिलिबो देखियो कहि आउ हम तो पढिबा पडी तम भाई अच्छा ताका परे आसिले शंकर बर्मन से होजे उमा बर्मन का भाई तापरे शक्ति बर्मन महाराजा शक्ति बर्मन he extended from the Mahanadi river in the north to Krishna river in the south. He carried on his expedition, he expanded his territory. एटा केवल दाक्षिणात्य थिला बर्तमान पुनी पूर्व को आसिला महानदी रिवर आरंभ करी कृष्णा रिवर इन द साउथ पॉइंट एक्सपांड करथिले तांका परे आसिले अनंत शक्ति बर्मन एतर क्वेश्चन आसी नाही किछि पर्यंत चंद्र बर्मन प्रभंजन बर्मन नंद प्रभंजन बर्मन ए सब 18 रूलर्स द मठारा दे रूल फॉर 150 इयर्स 150 वर्ष मठारा डायनेस्टी करिथिला शासन तांका परे आसिले ए जो दंतपुर बोली कि के ताको पाल्लुर बोली कि बोधा कहउचंती पाल्लुर को दंतपुर वेस्ट बेंगल जोटा कहउचंती पाल्लुर बोली कहउचंती आमे ता कहउचंती पुरी बोली कि दंतपुर जेतु ताकर थिला दांत गौतम बुद्धक दांतरु ताके दंतपुर बोली कहउथिला तापर आसिले शैलधव डायनेस्टी शैलधव डायनेस्टी पे कोन हमर सोर्स अछि दीज आर द सोर्सेस एकाम्र पुराण जानिबा कपिला संहिता स्वर्णाद्री महोदय हुइनसांग अकाउंट सीयू की जो लिखते हुइनसांग सो दे गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शैलधव डायनेस्टी अच्छा शैलधव माने कोन पाइथले से माने तांकर सब आउ कोन इंफॉर्मेशन अछि शैलधव डायनेस्टी ऊपर आउ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कोन अछि न्यूमरस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस सुमंडल कॉपर प्लेट कणास कॉपर प्लेट सोरो खुर्धा गंजाम कॉपर प्लेट दे गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शैलधव डायनेस्टी शैलधव अर्थ कोन शैलधव द मीनिंग ऑफ द वर्ड शैलधव ताको शैलधव बोली काई कहै जाय व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शैलधव दे आर बोर्न आउट ऑफ रॉक्स शैल माने पहाड़ शैलधव बोली कहउची एई बोर्न आउट ऑफ रॉक्स शैलधव लिटरली मींस बोर्न आउट ऑफ रॉक्स हु बिकेम द डायनेस्टी फाउंडर को माने थिले पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हु आर द मेन रूलर्स धर्मराजा तापरे माधव राजा चरमपा राजा अयशोभित मध्यम राजा शैलधव डायनेस्टी कर गोटे टेम्पल आर्किटेक्चर अछि भुवनेश्वर रे कोन को टेम्पल दे आर द पैटर्न ऑफ शैविज्म शैलधव दे आर द पैटर्न्स ऑफ शैविज्म भुवनेश्वर को मंदिर से तयारी करछ परशुरामेश्वर भारतेश्वर लक ए गुटे लाइन रे अछि सबतक मंदिर टंकपाणी रोड जोटा तुम जाउछो सेई बापटे गुटे लाइन रे स्ट्रेट सबतक मंदिर सेठी गुटे जगह रे मुक्तेश्वर अछि ब्रह्मेश्वर एतुक अछि राइट साइड रे हां द पीरियड विटनेस सिग्निफिकेंट क्रिएटिविटी इन ओडिशा आर्ट एंड आर्किटेक्चर ओडिशा रा आर्ट आर्किटेक्चर रे से माने जो दे आर द पर्टिकुलरली शैव टेम्पल्स लाइक परशुरामेश्वर मंदिर भरतेश्वर लक्ष्मणेश्वर शत्रुघ्नेश्वर एंड स्वर्ण जलेश्वर टेम्पल इन भुवनेश्वर ब्राह्मणिज्म आल्सो फ्लोरिश्ड इन गंगा अंडर देयर पैटर्नेज तापर आसले ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी हु आर द फाउंडर ऑफ द गंगा डायनेस्टी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी the Gangas who ruled Kalinga are known as Eastern Ganga. They are different from Western Gangas of Mysore. Early traditions are their founder Kamar Nava. He was the founder of the early Ganga dynasty or Eastern Ganga dynasty. Kamar Nava. Foundation and key rulers. Indra Burman. He was the first ruler. The first historically confirmed ruler hele Indra Burman first. एटा पुनी कोठ हमर इंफॉर्मेशन कोठी अछि एते डिटेल पडिबनी जिर्जिन कॉपर प्लेट ग्रांट फाउंडर ऑफ द गंगा एरा कैपिटल था दंतपुर टाइटल से पाइथिले 3 कलिंगाधिपति बहुत शॉर्ट रे लिखि बहुत इंफॉर्मेशन अछि बहिटा बहुत एटा बहुत बढ़िया हिस एकदम शॉर्ट रे लिखा हिछि एतिके टिके मन नथि त हो गेला आ बेस्ता भीतर डिटेल पढिया दरकार नै किछि अच्छा आ गोटे क्वेश्चन पड़े issued in the Ganga era year 319 corresponding to 537 CE एमती गोटे क्वेश्चन पड़े गंगा एरा रा जेतेबे 39 वर्ष हिची 39 ईयर सेतेबे होची 537 CE गंगा एरा रा 39 वर्ष माने केते हला 498 हला नी 498 हला 1 गंगा एरा रा प्रथम वर्ष 537 प्लस 39 कल हला नी से क्वेश्चन एमती पचारि थिला लास्ट टाइम पचारि थिला क्वेश्चन एई गला वर्ष नहीं ओपीएससी रे क्वेश्चन पड़थिला गला वर्ष नहीं 2023 एटा 24 परीक्षा गला से 22 क्वेश्चन ता पड़थिला
गंगा एरा जोटा 39 ईयर सेटा होची करेस्पोंडिंग टू 537 सी शक तो अछि कुशल तो अछि शकाब्द हम जो ख्रीष्टाब्द कहउछथि शकाब्द 78 कनिष्क सेटा 78 एडी हां जेतले 78 एडी सेतले 1 शकाब्द बुझुछि बर्तमान 2026 एडी केते शकाब्द हेटा सकाळ एरा केबे हेबे केते चलछि एबे -78 2026 -78 एटा बुझि पाले तो जेते बेले शकाब्द माने कोन जेते बेले 78 एडी हमर बा 78 सीई तुमे जे कहउछ कमन एरा 78 सीई इज इक्वल टू 1 शकाब्द हला 78 सीई 79 2000 2026 तो 2026 बेलको केते शकाब्द होइतिबो -78 1 शकाब्द 78 सीई हला बा 78 सीई इज इक्वल टू 1 शकाब्द 2026 सीई इज इक्वल टू केते शकाब्द -78 जेमती एटा सेया इंदिरा बर्मन ए जो 498 ही ऑक्युपाइड द थ्रोन द फर्स्ट हिस्टोरिकल फिगर सेटा होची 39 गंगा एरा जेते बेले करेस्पोंडिंग टू 537 सीई जेते बेले 498 सीई हेसी सेते 1 गंगा एरा 440 499 2 गंगा एरा बा 500 3 गंगा एरा 537 सेटा 39 गंगा एरा बुझिछि त ना बुझिलानी 498 CE is equal to 1 गंगा एरा हैला सेमती 537 CE is equal to केते हबो 39 हैलानी 498 CE is equal to 1 गंगा एरा सेमती 499 2 गंगा एरा 500 3 गंगा एरा सेम 537 39 गंगा एरा डिफरेंस हां एबे केते हबो एटा किंतु होची करेस्पोंडिंग टू 537 CE एबे 2026 को केते हबो सेटा हिसाब कर दो ना 498 is equal to 1 2026 minus 498 जहां हला सेति की एबे बुझ परला 537 सी बेलु को सेटा डिफरेंस आसुची हमर 70 39 ईयर हला तने केते डिफरेंस से पचाछि कोन गंगा एरा ईयर केते से एडी ही पचारि सेटा पचारिबन ना माने वर्तमान को केते डिफरेंस अछि सेटा आ त्रिकलिंगाधिपति तांकर थिला टाइटल तांका परे सामंत बर्मन हस्ती बर्मन सकल कलिंगाधिपति हस्ती बर्मन से हेले सकल कलिंगाधिपति he also transferred his capital from Dantapura to Kalinga Nagara तांका परे subsequent rulers आसिले कि dynasty continued through long time एटा किसी इते इंपोर्टेंट जिंस किसी नहीं अर्ली ईस्टर्न गंगास आ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन ता भीतर हेई परिबो तापरे आसिले नेक्स्ट डायनेस्टी भौमकर डायनेस्टी भौमकर माने कोठी रूल करथिले भौमकरस देयर कैपिटल वाज गुहदेव पाटक और गुहेश्वर पाटक सेटा कहां से तो आइडेंटिफाई कराई छी गुहदेव पाटक बा गुहेश्वर पाटक दैट द कैपिटल ऑफ द भौमकरस भौमकर माने कोठी रूल करथिले जाजपुर रे तार सिग्निफिकेंस कोन थिला क्वींस रूल भौमकर माने क्वींस रूल दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट द सिग्निफिकेंस ऑफ द भौमकर डायनेस्टी अच्छा सेवरल क्वींस लिख दिबा इंक्लूडिंग द रूल ऑफ सेवरल क्वींस फ्लोरिशिंग इन महाजन वज्रजन बुद्धिजीवी अच्छा गुहदेव पाटक और गुहेश्वर पाटक इट हैज बीन आइडेंटिफाइड विथ व्हिच प्लेस जाजपुर दैट इज द कैपिटल अच्छा कौन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अछि इन ऑर्डर टू नो द हिस्ट्री ऑफ द भौमकरस भौमकर मान के विषय जानिया पे आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन अछि सो लिटरेरी सोर्स विथ असला विष्णु पुराण ब्रह्मांड पुराण हरिवंश पुराण श्रीलंकन क्रॉनिकल दत्तवंश एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट असला गंड व्यूह दे आर द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एपिग्राफिक सोर्स है खाली कॉपर प्लेट इनस्क्रिप्शन गुडा सब विभिन्न जगह रे कॉपर लेउलपुर मिलिची तापरे गणेश गुंफा इनस्क्रिप्शन धौली केव इनस्क्रिप्शन तेरुंडिया केव इनस्क्रिप्शन ढेंकानाल धराकोट तालचेर अंबागांव अनुगुल ताळातालिया ए सब है कॉपर प्लेट इनस्क्रिप्शन दे गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द भौमकर डायनेस्टी तेनु भौमकर डायनेस्टी सहित एई रहला हमर इंफॉर्मेशन
द भौमकर रॉयल लिनिएज फ्रॉम फाउंडर टू पावरफुल क्वींस किए थे प्रथम रूलर किए थे क्षेमांकर देव कंसिडर्ड विथ द फाउंडर ऑफ द भौमकर डायनेस्टी वाज क्षेमांकर देव ही आर द फाउंडर ऑफ भौमकर डायनेस्टी द फर्स्ट रूलर ही वाज क्षेमांकर देव ताका नाम क्षेमांकर देव एटा में कोठा में जानिले तार सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होची नेउरपुर कपर प्लेट इनस्क्रिप्शन बा नेउरपुर चार्टर नेउरपुर कोठी चंडीखोल जारका कटक परे परे कटक रु 50 60 किलोमीटर तारी भितरे चंडीखोल जारका पाखरे मेनली एबे जाजपुर जिला को से पळे आसलानी ता भितर जाजपुर जिला रे अछि एबे नेउरपुर कपर प्लेट बा चार्टर नेउरपुर चार्टर कोन आ कपर प्लेट कोन चार्टर डिक्लेरेशन कपर प्लेट अचीवमेंट हैला चार्टर डिक्लेरेशन राजा कोन डिक्लेयर करूचंती दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द चार्टर एंड द कपर प्लेट इज ताम्र फलक और चार्टर होची राजा घोषणा नामा डिक्लेरेशन चार्टर इज डिक्लेरेशन कपर प्लेट इज हिज अचीवमेंट अच्छा सेतबेले कोन थिला फोर फोल्ड कास्ट सिस्टम इट वाज आल्सो देयर ड्यूरिंग हिज टाइम फोर जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र सो फॉर द सोशल लाइफ इज कंसर्न ड्यूरिंग क्षेमांकर देव जेतबेले से क्षेमांकर देव सिंहासन कले अच्छा परम उपासक कोन दैट द टाइटल परम उपासक इज इक्वल टू परमोपासक he is the founder it is evident from Neulpur charter and he was a devout Buddhist जने बौद्ध धर्मावलंबी थिले बौद्ध धर्मर फॉलो करूथिले तेनु परम उपासक उपाधि ताको मिलिथिला तापर आसिले शिवकर देव कोन कहउतिला उन्मत्त सिंह बा उन्मत्त केसरी सिंह जे केसरी से सिंह पागल पूरा एकदम टू एक्सपांड हिज ओन टेरिटरी ताको तेनु उन्मत्त सिंह बोली कहउतिला बा उन्मत्त केसरी उन्मत्त ने पागल तेनु उन्मत्त सिंह बा उन्मत्त केसरी हुइज भौमकर रूलर गॉट द टाइटल उन्मत्त सिंह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग भौमकर रूलर इन चारटा ना देथिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग भौमकर रूलर ही गॉट द टाइटल उन्मत्त सिंह बा उन्मत्त केसरी सी होचंदी शिवकर देव एटा दैट विल बी योर आंसर शिवकर देव तांको परे आसिले शुभकर देव फास्ट से जो टाइटल पाइले तांको कहला परम सौगत ये थिले परम उपासक ये हेले परम सौगत माने कोन सौगत के से गौतम बुद्धिज्म फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म बौद्ध धर्मर से उपासक थिले परम सौगत तांको पर आसिले शिवकर देव सेकंड से पाइले टाइटल कोन सौगत आश्रय सौगतम को जी आश्रय करिछि ही वाज द फॉलोअर ऑफ सौगत फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म तेन बौद्ध धर्मर उपासक थिले बौद्ध धर्मर फॉलोअर थिले से माने से हेले सौगत आश्रय तांको पर शांति कर देव ही द नेक्स्ट रोल शांति कर देव देन शुभ कर देव सेकंड शुभ कर देव थर्ड तांको परे आसिला रानी मानकर शासन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट aspect of the Bhaumikar administration that a number of queens they came to the throne they came to administration अच्छा त्रिभुवन महादेवी तांको कह जाउतला गोस्वामिनी देवी त्रिभुवन देवी महादेवी को कहतला गोस्वामिनी देवी अच्छा सी कंपेयर्ड हरसेल्फ टू कात्यायनी के निजको एते पावरफुल थिले सी कंपेयर्ड हरसेल्फ आज कात्यायनी होचदी माने दुर्गा गॉडेस दुर्गा मदर गॉडेस तेन दुर्गा के सहित निजको से तुलना करथिले त्रिभुवन महादेवी एमती गोटे क्वेश्चन आसे हु इज भौमकर क्वीन सी कंपेयर हां लिखछि सी कंपेयर्ड हरसेल्फ टू कात्यायनी माने दुर्गा सहित अच्छा ही वाज ए फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म वैष्णव धर्मर से थिले उपासक तेणु से कोन उपाधि पाइथिले परम वैष्णवी ही गॉट द टाइटल परम वैष्णवी परम वैष्णवी किए ना त्रिभुवन महादेवी फर्स्ट प्रथम त्रिभुवन महादेवी ही गॉट द टाइटल परम वैष्णवी तापर शांति कर देव तांकर सेमति किछि बेसी बड़ अचीवमेंट किछि नाही शुभ कर देव फोर्थ देन शिव कर देव थर्ड पृथ्वी महादेवी त्रिभुवन महादेवी ही इज आल्सो नोन एज त्रिभुवन महादेवी थर्ड शांति कर देव द लास्ट भौमकर क्वीन हेले गौरी महादेवी दंडी महादेवी बकुल महादेवी धर्म महादेवी the rise of the Somavamsi particularly Jajati first the son of Janmejaya first अच्छा भौमकर डायनेस्टी भितरे आ इंपोर्टेंट जिंस रहिला कैपिटल तमे पढिले
गोहदेव पाटक गुहेश्वर पाटक नियर मॉडर्न जाजपुर एटा मन रखिबो। रिलीजियस टॉलरेंस सेमान थिला though they accepted Shaivism, Vaishnavism, they are also tolerant towards all other religions or religious sects. आ कोन आसिला सेमान कर ए जो रत्नगिरी ललितगिरी आ उदयगिरी एटा से भौमकर पीरियड रे जो आमी जाको कहउछंती डायमंड ट्रायंगल बोलिगिरी इट इमर्ज ड्यूरिंग द भौमकर पीरियड भौमकर शासन समय रे। So far the socio-economic system of the Bhaumakara period is concerned, वर्ण सिस्टम थिला। वर्ण सिस्टम होची चतुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारि जाति से माने व्यक्त होइतले कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम इट वाज देयर। ब्राह्मण्स दे प्रीस्ट थिले, क्षत्रिय माने वॉरियर थिले, वैश्य माने द मर्चेंट्स थिले, शूद्र माने द सर्विस दे प्रोवाइडेड सर्विस टू ऑल अदर सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी। तापरे प्रोमिनेंस ब्राह्मण्स ब्राह्मण मानकर बहुत थिला प्राधान्य समाज रे से समय से मान को कोन दउतला अग्रहार विलेज सब दिया होतला। द विलेज ग्रांट्स आर गिवन फॉर देयर मेरिटोरियस सर्विसेस। ब्राह्मण मानकर जो थिला राजा को सहायता करथिले से सब पई तांको सब भूमि दान करा होतला। से भूमि को कहउतला अग्रहार विलेज। सेमती क्षत्रिय माने दे प्रोटेक्टेड द एंटायर कम्युनिटी फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर। वैश्य दे ब्रॉट अबाउट द ट्रेड एंड द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ब्राह्मण माने दे एंगेज देमसेल्व्स इन रिलीजियस प्रोग्राम्स। दे आल्सो एडवाइज द किंग। राजा मान को से मुख्य परामर्शदाता ब्राह्मण मान थिले। तांको जो भूमि दान करथिले द लैंड ग्रांट्स दे आर नोन एज द अग्रहार विलेजेस। तेनु ब्राह्मण मान ग्राम दान कर दोथिले। अब जो शासन ब्राह्मण बोली कहउछ पुरी जात में देखिबो सब बहुत जो साखी गोपाल पाठे सब बहुत गा वीर हरसिंह हरे कृष्णपुर वीर नरसिंहपुर एसो ना अछि राजा का नाम अनुसार दोज विलेजेस दे आर ग्रांटेड टू द ब्राह्मण डोनेटेड टू द ब्राह्मण्स। अच्छा तेनु ब्राह्मण मान ले क्षत्रिय मान ले दे प्रोटेक्टेड द एंटायर कम्युनिटी फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर। तापर वैश्य कम्युनिटी दे ब्रॉट अबाउट द ट्रेडर ग्रुप दे ब्रॉट अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। सिलोन सहित वाणिज्यिक संपर्क था। सियाम बर्मा सहित मध्ये से माने वाणिज्यिक संपर्क ओवरसी ट्रेड से माने मध्ये स्थापन करते ड्यूरिंग द भौमकर पीरियड। द वैश्यस द ट्रेडर ग्रुप दे मेरीटाइम ट्रेड समुद्रिक वाणिज्य रे मध्ये से माने दृढ़ हस्त थिले। तेनु विभिन्न जगह को समुद्र रे जाई सिलोन सियाम बा थाईलैंड में कहउछथि बर्मा बा म्यांमार आ सुवर्ण द्वीप जहाँ हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहउछथि सेठी से जाई वाणिज्यिक संपर्क स्थापन करथिले। सो ट्रेड एंड कमर्शियल रिलेशनशिप वाज आल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग द भौमकर पीरियड। तापर शूद्र माने कोन दे कंप्लीटली डेडिकेटेड देमसेल्व्स फॉर द सर्विस ऑफ ऑल अदर कम्युनिटीज। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से मानकर सेवा क्षेत्र रे जो नियुक्त हला से मान हेले शूद्र कम्युनिटी बा सबकास्ट से मान को कहै जाउतला। लैंग्वेज आ लर्निंग लैंग्वेज एटा गोटे जो रत्नगिरी मोनास्टरी थिला। तापरे आ गोटे कोन उदयगिरी होची माधवपुर महाविहार तो एंशिएंट नेम दैट माधवपुर महाविहार एटा क्वेश्चन आस्थिला। माधवपुर महाविहार जका हम उदयगिरी बोली कहउछथि जो ललितगिरी रत्नगिरी उदयगिरी द बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल ता भितरे रत्नगिरी थिला वाज रत्नगिरी मोनास्टरी। मोनास्टरी कोन जोडी पढ़ा पाठ पढ़ा जाए मोनास्टरी। आ उदयगिरी सेमती सेठी थिला उदयगिरी गोटे थिला कोन उदयगिरी माधवपुर महाविहार। महाविहार माने यूनिवर्सिटी हम जो कहउछथि गोटे यूनिवर्सिटी थिला दे आर द सेंटर्स ऑफ लर्निंग। रत्नगिरी ललितगिरी उदयगिरी दे आर द सेंटर्स ऑफ लर्निंग। अच्छा तापर आसला पोजीशन ऑफ वुमेन। पोजीशन ऑफ वुमेन माने कोन दे आर वुमेन दे ऑक्युपाइड द हाईएस्ट स्टाटा इन द सोसाइटी ड्यूरिंग दैट टाइम भौमकर पीरियड। काहे कि कना रानी माने शासन करथिले एथो जणा पड़जी द वुमेन दे आर गॉट द हाईएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी। आ एजुकेशन आ पैट्रोनेज केमति वुमेन मानक पई भौमा क्वीन्स आर नोटेड फॉर देयर पीटी एंड पैट्रोनेज ऑफ टेंपल कंस्ट्रक्शन। भौमकर क्वीन माने टेंपल कंस्ट्रक्शन मध्ये पार्टिसिपेट करथिले एंड दे आर आल्सो एक्सपर्ट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षार विभिन्न विभाग रे मध्ये से मानकर मुख्य भूमिका थिला। अच्छा आउ कोन थिला रिलीजियस वैल्यू टॉलरेंस एंड सिंथेसिस। विभिन्न धर्म प्रति से टॉलरेंट थिले। दो सम रूलर्स एक्सेप्टेड बुद्धिज्म दे आर आल्सो टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल अदर रिलीजियंस। बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले भी अन्य धर्म प्रति से सहनशील थिले। अच्छा आउ कोन थिला लाटर रूलर्स शैविज्म वैष्णव शक्तिज्म थिला। टेम्पल डेडिकेटेड टू शिव शिशिरेश्वर मार्कंडेश्वर भुवनेश्वर एडा सब तयारी थिला भौमकर राजत्व काल रे। भौमकर शासक शासन समय रे शिशिरेश्वर मार्कंडेश्वर ए सब भुवनेश्वर शैव टेम्पल सब निर्माण होइतिला। आ शक्ति टेम्पल्स बैताल मंदिर मोहिनी टेम्पल्स भुवनेश्वर दे आर आल्सो कंस्ट्रक्टेड। बैताल दौड़ कोन जोटा हम कहउतिले एगुडा होची रेखा स्टाइल पीढ़ स्टाइल कखर स्टाइल। बैताल दौड़टा कखर स्टाइल रो मंदिर। लिंगराज मंदिर देखि से मंदिर लिंगराज मंदिर आसला बेलू रथ दांड डाण पटे पड़िया मंदिरटा अधा बुड़ी जाए वर्षा पानी हेले ता भितरे गणेश मूर्ति बुड़ी जाए पानी रे तळे मंदिरटा अछि रास्ताटा बहुत ऊपर अछि। सो शिशिरेश्वर मार्कंडेश्वर एंड भुवनेश्वर मंदिर गला से तयारी हिला सेही समय।
कहली परा एबे कहा समय भौमकर मान पूर्व को बनते शरधव 64 जोगिनी टेम्पल। अच्छा इकोनॉमी तमें पढ़िले ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज थिला से समय भौम एरा केबे इंट्रोड्यूस हेतिला एटा तमें पढ़िले 730 एटा मन रखथिबो। भौम एरा जेंति कपिलाब्द केबे इंट्रोड्यूस हेतिला 1435 कपिलेन्द्र देवंकर सिंहासन आरोहण। हर्षाब्द 606 हर्षंकर सिंहासन आरोहण। शकाब्द कनिष्कंकर 78 एडी 78 ख्रीष्टाब्द रे शकाब्द इंट्रोड्यूस हेतिला कनिष्कंकर सिंहासन आरोहण को मन रखिया पे शकाब्द। हर्षंकर सिंहासन आरोहण थिला 606 तेनु सेला हर्षाब्द। कपिलेन्द्र देवंकर थिला 1435 तेनु ताको कपिलाब्द बोली कहतिला। सेमति एटा होची भौम एरा दैट कमेंस इन 636। इंटरनल तापर सोमवंशी इंटरनल राइवलरी और सोमवंशी मानकर इन्वेजन जुगु से भौमकर डायनेस्टी इट हैज आल्सो डिक्लाइन। तापर सोमवंशी माने आसिले सोमवंशी मानक आउ कोन कह जाउथिला जो सोमवंशी रूलर्स अदरवाइज दे आर नोन एज द बिलोंग टू व्हिच डायनेस्टी। सोमवंशी मानक आउ कोन कहउथिला ना सूर्यवंशी नो केसरी डायनेस्टी। सोमवंशी डायनेस्टी दे आर अदरवाइज नोन एज द केसरी डायनेस्टी। ललाटेन्द्र केसरी मरकत केसरी उदयत केसरी दे बिलोंग टू सोमवंशी डायनेस्टी। सो तिबरा देव उदयन ही वाज द फाउंडर। सोमवंशी राजवंशर जे थिले प्रतिष्ठाता से होचंदी फाउंडर हेले उदयन। एथिरे आसिला सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। हाउ कैन यू नो अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ द सोमवंशी रूलर्स। इंफॉर्मेशन कौन कपर प्लेट ग्रांट्स कौन अछि वेरियस रूलर्स लाइक तिबरदेव महाशिवगुप्त जन्मेजय फर्स्ट एंड जजाति। तो जजाति केसरी हम कहउछंती जजाति फर्स्ट जजाति 2 दे बिलोंग टू द सोमवंशी डायनेस्टी। तापर स्टोन इनस्क्रिप्शंस लाइक कलंजर औरंग एंड सिरपुर इनस्क्रिप्शन। तेनु कपर प्लेट ग्रांट्स रहिछि स्टोन इनस्क्रिप्शन रहिछि और कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स नेबरिंग डायनेस्टी सच एज भंज भौमकर एंड गंग। सेमान जो कंटेम्पररी रिकॉर्ड रहिछि दे आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द सोमवंशी डायनेस्टी। को माने थिले मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स ऑफ द सोमवंशी डायनेस्टी। जन्मेजय फर्स्ट महाभवगुप्त तम कहउतला। सो जन्मेजय फर्स्ट he is the first significant ruler of the Somavamsi dynasty. Somavamsi राजवंशर जने प्रभावशाली शासक थिले से होची जन्मेजय first significant ruler in Odisha. He defeated the Bhanjas of Khinjili Mandal, annexed both Fulbani, initiated expansion towards Utkal, assumed title like Parameshwara three Kalinga अधिपति। ता कैपिटल थिला सुवर्णपुर। केते शॉर्ट रे इंफॉर्मेशन हेला टोटल जन्मेजय विषय जानिया पई आथरे कहि दोची। जन्मेजय he was known assumed the title परमेश्वर एवं त्रिकलिंग अधिपति। तांको परमेश्वर और त्रिकलिंग अधिपति मु केते थरा कहलेनी। त्रिकलिंग अधिपति कोन त्रिकलिंग कोन तीनटा कलिंग कोन से तीनटा कलिंगर अधिपति तो द मास्टर्स ऑफ थ्री कलिंगर्स। हां कोन से तीनटा कलिंग कलिंग उत्कल कौशल त्रिकलिंग अधिपति। अच्छा तापर आसिले जजाति फर्स्ट जन्मेजय फर्स्ट के पर जजाति फर्स्ट ही कंसोलिडेटेड द एम्पायर शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम बिनीतपुर टू जजाति नगर। बिनीतपुर हमें बिनका बोली भी कहउछन। त बिनीतपुर रु जजाति नगर को ट्रांसफर करथिले। तांको पर आसिले भीमरथ महाशिवगुप्त भीमरथ ही कंसोलिडेटेड सोमवंशी रूल। ओड्र हला कोस्टल ओडिसा बिकेम पार्ट ऑफ द कोशल किंगडम ड्यूरिंग हिज रेन। तांको पर आसिले धर्मरथ को कह जाउतिला सेकंड परशुराम द ग्रेट वॉरियर। धर्मरथ ही इज अ ग्रेट वॉरियर तेन ताको परशुराम बोली को सेकंड परशुराम बोली कहउतिला। ही एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर द भौमकर किंगडम। अच्छा तापर आसे नाहुसा के विषय बेसी इंफॉर्मेशन हम पाखरे किछि नाही। तांको पर आसिले इंद्ररथ तापर चंडीहार जजाति 2 कर विषय हम पाखरे इंफॉर्मेशन अछि। जजाति 2 किए से कोन तयारी करचंदी जजाति 2 हाउ व्हाई ही वाज फेमस। ही कंस्ट्रक्टेड द टेंपल ऑफ लिंगराज टेंपल। सोमवंशी परा केसरी डायनेस्टी तेनु जजाति केसरी व जजाति 2 माने जजाति केसरी
he started the construction of temple. He had not completed. He initiated. He had not completed. Then who completed? Huh? Jajati II, he started the construction of Lingaraj temple. He belonged to Somavamsi dynasty. तो जजाति II आरंभ करते तो कंप्लीट कर ले किए उद्योत केसरी. जजाति II आरंभ कर ले, it was completed by उद्योत केसरी. अच्छा ताका परे आसिले एटा उद्योत केसरी पर गला एपटे जजाति II कोडा चली गले हे चंडीहार जजाति II. तो चंडीहार जजाति II बोली कहजे एकादशी लिंगराज टेम्पल. ताका परे आसिले उद्योत केसरी. ही कंप्लीटेड द लिंगराज टेम्पल. कंप्लीटेड द लिंगराज टेम्पल. और नवमुनि केव्स जोटा 12 भुजा नवमुनि 12 भुजा केव्स जैन केव्स इट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय हिम. तापर जन्मेजय II कर कालाचुरी मान सहित थिला. गंगाज ऑफ कलिंग थिला. पुरंजय तापर कर्णदेव. सो फार एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोमवंशी आर कंसर्न द कैपिटल वाज शिफ्टेड वेरियस टाइम्स. विभिन्न समय कैपिटल परिवर्तन होइछि विभिन्न राजाक समय रे फॉर स्ट्रैटेजिक रीजंस. सुवर्णपुर केबे थिला, विनीतपुर थिला, जजाति नगर थिला, आइडेंटिफाइड जाजपुर. फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू various times the capital was transferred from one place to another during the Somavamsi rule. अच्छा monarchy kingship माने राजतांत्रिक शासन पद्धति थिला. kingship was generally hereditary. hereditary माने कोन वंश परंपरा अनुसार शासन करथिले. जण राजाक पर ताका ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन आरोहण करिया प्रथा थिला. रॉयल पावर पुनी का हाथ थिला. द किंग्स wielded significant authority but are generally benevolent, promoting trade and commerce, lording land grants to brahmins, religious activities ए सब थिला राजा मानकर काम. अच्छा so far as the council of ministers is concerned during the Somavamsi dynasty, मंत्री तिलक जेथिले ताको चीफ मिनिस्टर कहतला. एमती गोटे क्वेश्चन पड़े द टाइटल और जो डेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द सोमवंशी रूल. ही वाज मंत्री तिलक. मुख्यमंत्री को मंत्री तिलक बोली कहतला. महासंधि विग्रहिक. महासंधि विग्रहिक माने कोन? द मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस. दिस मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस. महासंधि विग्रहिक मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस. तापरे महाक्षेपतलिक. महाक्षेपतलिक होचदी इन चार्ज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रेकॉर्ड्स. रेकॉर्ड कीपर. जहां जहां अचीवमेंट होतला जंगर ताकु से माने रेकॉर्डिंग कर रखुथिले. रेकॉर्ड लिखित आकार रखुथिले. चार्टर प्रिपरेशन करथिले. आ ऑफिसर महासेनापति थिले कमांडर इन चीफ. समाहर्त्री कलेक्टर जनरल थिले. सन्निधात्री ट्रेजरर. दंडपसिक थिले पुलिस चीफ. तापरे रणक हेले फ्यूडेटरी चीफ और राजपुत्र हेले प्रिंस. सो दे आर participating in the general administration during the Somavamsi rule. तार आर्मी डिवीजन कौन थिला? जो एम्पायर थिला सोमवंशी मान जो साम्राज्य सी विभक्त होइतला को द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू मंडलस. मंडल को कौन कहउतिला? द मंडल दे आर नोन एज द प्रोविंसेस. गोटे साम्राज्य केते गोटे प्रदेश विभक्त होइतला. ईच प्रोविंस वाज नोन एज मंडल. देन भुक्ति डिवीजन थिला. भुक्ति अपनी भोग बा खंड सब डिवीजन. तापर विलेज दैट आर द ग्राम दैट आर द लोएस्ट यूनिट ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन. राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन राजनीतिक संगठन सर्वनिम्न संस्था है ग्राम बा विलेज. तापर जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन देखिबा वर्णाश्रम धर्म थिला. वर्णाश्रम कोन? से ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र दैट इज द प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द सोमवंशी पीरियड. स्टेटस ऑफ वुमेन. द वुमेन दे ऑक्युपाइड द हाईएस्ट स्टेटस इन द सोसाइटी. किंतु कोन थिला से समय? हाउएवर द क्वीन्स लाइक कोलावती देवी से कोन भुवनेश्वर ब्रह्मेश्वर मंदिर तैयारी करथि. कोलावती देवी she constructed the mother of उद्योत केसरी. she constructed the ब्रह्मेश्वर टेम्पल. भुवनेश्वर जो ब्रह्मेश्वर मंदिर ताको तैयारी करथि कोलावती देवी. से हो मां होचंदी कार ना उद्योत केसरी कर. अच्छा आउ कोन थिला? शैवजी मध्ये थिला. प्रोपागेट करथिले से माने शैव टेम्पल्स मध्ये तैयारी करथिले. द गंगा शैव बिल्ड सोमेश्वर टेम्पल एट रानीपुर झरियाल. जन्मजय फास्ट सपोर्ट अनुसार से माने तैयारी करथिले सोमेश्वर मंदिर रानीपुर झरियाल ले. तापरे रिलीजियस टॉलरेंस दे आर टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल अदर रिलीजियंस. आ गोटे जिंस थिला मुख्य जिंस छाडी गली ए जो थिला स्टेटस ऑफ वुमेन दे हेल्ड ए रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी. बट देवदासी सिस्टम इट वाज देयर ड्यूरिंग टाइम. देवदासी सिस्टम they occupied high status in the society, but Devadasi system they are dedicated to the deities, dedicated to the gods. It was also prevalent. ସେମାନେ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ ବି ସେମାନେ
ताका भितर देवदासी मध्ये प्रथाटा से समय प्रचलित थिला तेना आर्ट एंड आर्किटेक्चर पिनाकल ऑफ ओडिशियन टेंपल आर्किटेक्चर इट इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलप ड्यूरिंग द सोमवंशी मानक समय को मंदिर सब तैयारी हितिला मास्टरपीसेस इन भुवनेश्वर मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर तैयारी हितिला मुक्तेश्वर मंदिर कोन इट इज फुल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर द जेम ऑफ आर्किटेक्चर तो कह जाउची and the significance of the Mukteswar temple is its torana gateway the gateway of Mukteswar temple that is the best architectural text or architecture of the during the Somavamsi period ता छडा सेमाने राजा रानी मंदिर मध्ये निर्माण करथिले which is the god and goddess who are the deities inside the Rajarani temple की पूजा पाती राजारानी मंदिर रे मुक्तेश्वर मंदिर शिव अछंती राजारानी मंदिर की अछंती no gods and goddesses are there राजारानी मंदिर के नाहंती फेमस फॉर इट्स सेंसुअस स्कल्पचर एंड यूनिक नो प्रिजाइडिंग डीटी राजारानी मंदिर रे अच्छा राजारानी मंदिर रो सिग्निफिकेंस कोन आ गोटे सोफा टेंपल आर्किटेक्चर इज कंसर्न गोटे अछि तो पढले आर्किटेक्चर पढले म कहिबी गोटे अछि त्रिरथ पंचरथ सप्तरथ आ गोटे अछि पंचायतन माने कोन पंचायतन तर बेस रे सेंटर रे मंदिर चारि पटे चारटा मंदिर सेटा पंचायतन कि सब मंदिर सेमति नुह एटा राजारानी मंदिर रे अच्छा पंचायतन टेम्पल तासा ब्रह्मेश्वर मंदिर मध्ये तयारी करथिले बिल्ड बाय क्वीन कोलावती देवी ब्रह्मेश्वर मंदिर तयारी करथिले अच्छा आउ कोन थिला रॉयल पैटर्न लैंड ग्रांट्स आर गिवन टू द ब्राह्मण्स एटा थिला सब समय थिला से मानकर इमर्जेंसी ऑफ ओडिया लैंग्वेज रे मध्ये से माने प्रसार करथिला से समय सोमवंशी मानक शासन काल रे आउ कोन थिला सोशल स्ट्रक्चर अपहोल्डिंग धर्म एंड कल्चरल असिमिलेशन रिलीजियस लाइफ सर्वाइवड जील स्टेटस ऑफ वुमेन रेस्पेक्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटीज थिला रॉयल पैटर्नेज थिला एटा तो पढिले प्रमोशन ऑफ लर्निंग वेद वेदांग स्मृति पुराण ता ऊपर से मानकर बहुत they adopted various measures for the propagation of Vedas, Vedanga, Purana, Smriti and ancient Indian text. Royal patronage काको मिलुथिला ब्राह्मण मानको मिलुथिला for their meritorious activities. Land grants are given to the Brahmins. ब्राह्मण मानको सब भूमि दान राजा भूमि दान करथिले बा जमी दान करथिले आउ अर्ली ओडिया लैंग्वेज सोमवंशी मानक समय इनस्क्रिप्शन गोटे कथा होची जे से समय ओडिया रे इनस्क्रिप्शन मध्ये लिखा जायतिले सोमवंशी राजत्व काल रे we find the inscriptions inscribed in Odia language. Economic activities for land revenue थिला agriculture craft थिला textile jewelry making trade and commerce बहुत develop करथिला सोमवंशी मानक समय रे और डिक्लाइन महिला कोन बे तार कारण कोन हैला it is because of they are the first to bring the major regions of Odisha under a single rule administrative framework ठीक थिला cultural synthesis थिला architectural marvel थिला से मानकर किंतु डिक्लाइन हैला कोन पई डिक्लाइन caused by external invasion especially को माने ताका पर आसिले द गंगाज गंगा मानकर आक्रमण फल सोमवंशी मानकर पतन घटी आसिले इन द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा द गंगा डायनेस्टी कौन कह आसिले गंगा डायनेस्टी अच्छा गंगा डायनेस्टी सेमती सोर्स ऑफ इनफॉरमेशन कौन अच्छी चीफ सोर्स ऑफ इनफॉर्मेशन एपिग्राफिक एविडेंस एपिग्राफिक माने इनस्क्रिप्शन अनुशासन गंगा वंशर जो अनुशासन अच्छी दे आर द प्राइमरी सोर्सेस इनस्क्रिप्शन कोडी देखा मिलती द्राक्षाराम टेंपल इनस्क्रिप्शन केंदुली कॉपर प्लेट कर्णी कॉपर प्लेट नागरी प्लेट केंदुपाटना प्लेट जगन्नाथ टेंपल इनस्क्रिप्शन सो दे गिव अस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अचीवमेंट्स ऑफ द गंगा रूलर्स अच्छा अर्ली रेफरेंस टू नेम गंगारी डाई एटा में कोड पाइथिले गंगारी डाई मेगास्थनीस कर गंगारी डाई ए जो वर्ड गंगारी डाई बाय मेगास्थनीस गंगा डाई गोटे ट्राइब ए नाटा मेगास्थनीस जो इंडिका से से मेंशन करछंती आउ कोन सोर्स अछि इन्फॉर्मेशन लिटरेरी वर्क भीतर कोन अछि इंडिजिनस टेक्स्ट माधला पांजी इट आल्सो गिव्स अस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द गंगा डायनेस्टी गंगा राजवंश विषय हम माधला पांजी रो हमको मिलुची इन्फॉर्मेशन आउ कोन कंटेम्पररी इंडियन टेक्स्ट दिस इज आल्सो अनदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज रामचरित के लिखछंती रामचरित हां रामचरित के लिखछंती कालिदास के लिखछ रामचरित मानस के लिखछंती तुलसीदास लिखछंती रामचरित मानस कि रामचरित मो बहिटा ना होची रामचरित सब पिला 100% पिला कंफ्यूज करिवे रामचरित मानस को सेवन हबे रामचरित बोलिकरी रामचरित मानस तुलसीदास लिखछ राम रघुकुल रीति सदा चलिए प्राण जाय पर वचन न जाय से रामचरित मानस तुलसीदास लिखछंती
किंतु मोर प्रश्न होची रामचरित दैट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गंगा डायनेस्टी। रामचरित लिखिछन कि संध्याकर नंदी, रामचरित दैट इज आल्सो संध्याकर नंदी। तुम जो संध्याकर नंदी तुम जो कहूथिलो तमिल वर्क ना केमि काम दोची एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एटा कलिंगा टू परानी दैट इज आल्सो तमिल वर्क से संगम पीरियड रो इट आल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन। अच्छा तापर पर्शियन क्रॉनिकल तबाकती नासिर पढिचे तबाकती नासिर बाय मिनाजु सिराज तारिकी फिरोज शाह ए सबुडा मध्ये हमको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दोची गंगा डायनेस्टी विषय। ताले देखिबा अनंत बर्मन considered to be the first independent Ganga king अनंत बर्मन वज्रहस्त तांकु से मध्ये उपाधि पाइथिले महाराजाधिराजा त्रिकलिंगाधिपति लॉर्ड ऑफ कलिंग उत्कल एंड कंगोद। जो त्रिकलिंग जो कहउथिली कलिंग उत्कल एंड कंगोद हैला त्रिकलिंग। अच्छा तापर आसिले देवेंद्र बर्मन राजा राजदेव फर्स्ट तांकर थिला परसुड एंड एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी अगेंस्ट द सोमवंशी चालुक्य बेंगी तांकर सहित थिला तांकर सामरिक अभियान। ही मैरिड टू राजसुंदरी द डॉटर ऑफ कुलतुंग चोल चोल वंश जो कन्या थिले राजसुंदरी तांको से विवाह करथिले देवेंद्र बर्मन राजा राजदेव। तापर आसिले अनंत बर्मन चोड़गंग देव अनंत बर्मन चोड़गंग ए जो कुलतुंग चोल जो राजसुंदरी उनको बाहा करथिले तांको पुआ आसिले के चोड़गंग देव। चोड़गंग देव काहे he was attached with the Chola dynasty as well as with the Ganga dynasty। बापा थे गंगा डायनेस्टी रो मा थे चोल डायनेस्टी रो। कुलतुंग देवंकर से थे कन्या थे राजसुंदरी तांका मा थे। सो अनंत बर्मन चोड़गंग देव द नेक्स्ट रूलर ही रेन्ड फॉर 70 इयर्स 70 वर्ष शासन करथिले अनंत बर्मन चोड़गंग देव। ही अनेक्स्ट उत्कल डिफीटिंग कर्णदेव द लास्ट ऑफ द सोमवंशी रूलर। अच्छा ही वाज आल्सो पैटर्न ऑफ लिटरेचर ओडिया लिटरेचर संस्कृत लिटरेचर ताकू प्रोत्साहन देथिले तार पृष्ठपोषकता करथिले ओडिया संस्कृत एंड तेलुगु लिटरेचर। तांका परे आसिले कामारनव ही आर द सन ऑफ चोड़गंग देव को पुओ थिले कामारनव। द नेक्स्ट रूलर ही फोकस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट विथ द कालाचोरीज ऑफ संबलपुर सोनपुर रीजन एंड ही परफॉर्म द तुलाभरम सेरेमनी। तुलाभरम सेरेमनी कोन एटा क्वेश्चन तुलाभरम सेरेमनी कामारनव देव द व्हिच गंगा रूलर ही परफॉर्म द तुलाभरम सेरेमनी। तुलाभरम सेरेमनी ऊपर कोन क्वेश्चन आसले कोन लिखिबो तुलाभरम माने कोन माने ए जो ता कोन ए जो निकिति बा पला जो कहते निकिति ओजन करिया पई गोटे पटे राजा बसिबे गोटे पटे सुना रखा जिवो हैला जेति कि ओजन रो तांका ओजन 60 के जीवन कर हैला से 60 के ओजन रो सुना से मंदिर को डोनेट करिवे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेंपल दैट इज तुलाभरम। ए तुलाभरम टाको से परफॉर्म करथिले से होजन कामारनव। ही परफॉर्म द तुलाभरम सेरेमनी ड्यूरिंग द गंगा डायनेस्टी। तांका परे आसिले राघव ही वाज द ब्रदर ऑफ कामारनव का भाई थिले जादव। पोएट जयदेव ऑथर ऑफ गीत गोविंद समटाइम्स एसोसिएटेड विथ हिज एरा एंड दैट इज हिज सक्सेसर। तेनु कामारनव बा राघव का समय रे गीत गोविंद जयदेव ताको रचना करथिले। तांका परे आसिले राजा राजा सेकंड से गंगा डायनेस्टी रो से ब्रदर ऑफ राघव। तापरे अनंग भीमदेव सेकंड राजा राजा थर्ड अनंग भीमदेव थर्ड कौन मंदिर तैयारी करछन्ती अनंग भीमदेव थर्ड हु कंस्ट्रक्टेड लॉर्ड जगन्नाथ टेंपल एट पुरी चोड़गंग देव। ही स्टार्टेड इनिशिएटेड बट हु कंप्लीटेड ही वाज अनंग भीमदेव थर्ड। भुवनेश्वर जो विष्णु मंदिर अछि अनंत वासुदेव मंदिर तो कि तैयारी करछन्ती द डॉटर ऑफ अनंग भीमदेव थर्ड तृतीय अनंग भीमदेवकर कन्या से होचन्ती के ता ना कोन चंद्रिका देवी। तांका परे आसिले अनंग भीमदेव थर्ड का परे आसिले नरसिंह देव फर्स्ट पॉपुलरली ही इज नोन एज लांगुडा नरसिंह देव। व्हाट इज हिज अचीवमेंट कोणार्क टेंपल ही आर द बिल्डर ऑफ कोणार्क टेंपल सन टेंपल आर बिल्डर ऑफ द मैग्निफिसेंट सन टेंपल ऑफ कोणार्क एंड अनंग नरसिंह देव ही आर द फर्स्ट रूलर टू डिक्लेयर इट आर क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट रूलर टू डिक्लेयर हिमसेल्फ आज गजपति। एटा केही भी सब 100% पिलांगर भूल हबो ये गजपति डायनेस्टी कथा कहूनी। गजपति डायनेस्टी तो अछि कपिलेन्द्र देव पुरुषोत्तम देव प्रताप देव किंतु मोर क्वेश्चन होची हु वाज द फर्स्ट रूलर टू डिक्लेयर हिमसेल्फ आज गजपति निजको गजपति घोषणा करिवारे प्रथम शासक किए थिले। ही वाज अनंग भीमदेव थर्ड एक नरसिंह देव फर्स्ट
he declared himself assumed the title Gajapati. नरसिंह देव प्रथम होचुती प्रथम शासक से गंगा डायनेस्टी रो गजपति डायनेस्टी से नुह बट ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज गजपति कहीं इट इज बिकॉज ऑफ हिज लार्ज एलिफेंट्री ताकर विशाल हस्ती बाहिनी थिले सामरिक बाहिनी रे ए लार्ज एलिफेंट्री ही वाज बैक्ड बाय ए लार्ज एलिफेंट्री एक विशाल हस्ती बाहिनी थिबार निजको से गजपति गजपति अर्थ से राजांकर जो गजपति माने हस्ती बाहिनी युद्ध सामरिक क्षेत्र में व्यवहार करथिले किंतु नरसिंह देवकर एक विशाल हस्ती बाहिनी थिबारु से निजको हिज द फर्स्ट रूलर टू डिक्लेयर हिमसेल्फ एज गजपति हैला एटा टी मन रखथिबो एटा क्वेश्चन माने प्रीलिम्स कथा कहूची ही अज्यूम्ड द टाइटल गजपति बिल्डर मैग्निफिसेंट सन टेम्पल तयारी करथिले एंड ही आल्सो ए फॉलोअर ऑफ शैविज्म एंड वैष्णविज्म शैव धर्म वैष्णव धर्म मध्ये से प्रोत्साहन करथिले तांका पर आसिले भानुदेव ही द सन ऑफ नरसिंह देव भानुदेव का परे नरसिंह देव सेकंड तापरे भानुदेव सेकंड द डिक्लाइन ऑफ द गंगा पावर इज स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ डिक्लाइन स्टार्ट हो गला भानुदेव सेकंड को ठारू तापरे आसिले नरसिंह देव थर्ड भानुदेव थर्ड तापरे नरसिंह देव फोर्थ एथि सहित गंगा साम्राज्यर पतन घटी थिला तापरे जो स्पॉटलाइट को देखौची जो कोन कोन मेन रोल से मानकर थिला द अनंग भीम देव बा अनंत वर्मा चोडगंग देव हाउ ही वाज कंसीडर्ड as an empire builder as a great administrator and a patron of culture एठी तुम्हारा आंसर टा पूरा एठी रही जाईछि हैला एस्टिमेट द प्लेस ऑफ चोडगंग देव अनंत वर्मन चोडगंग देव इन द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एटा पूरा ए तीनटा होछि मेन पॉइंट मिलिटरी पावर कंक्वेस्ट ऑफ उत्कल थिला एक्सपेंशन ऑफ साउथ एंड नॉर्थ फोर्टिफिकेशन दुर्ग निर्माण करथिले दुर्ग को निर्माण करथिले सेवरल फोर्स फोर्ट को दुर्ग बोली कटक बोली कहता कटक माने दुर्ग कोडी इंक्लूडिंग सारंगगढ़ नियर कटक हैला सेकेंडरी पॉलिटिकल सेंटर टू कलिंगा नगर मुखलिंगम तापर एडमिनिस्ट्रेटिव अक्यूमेंट ये द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज फॉलोड बाय चोडगंगा देव पैट्रोनेज ऑफ कल्चर विभिन्न भाषा रा प्रसार करथिले ओडिया संस्कृत तेलुगु लिटरेचर तापरे ताको राज्यसभा रे की थिले स्कॉलर सतानंद ही कंपोज भास्वती सतानंद ही कंपोज भास्वती ए वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी ड्यूरिंग हिज टाइम सतानंद जे कि ताका राज्यसभा रे जने विशिष्ट पंडित थिले से भास्वती बोली एक ग्रंथ रचना करछन्ती जोटा कि ए वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी कोन एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी रे ओडिया कोन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ही इज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोनॉमी सेमती ताछड़ा जगन्नाथ टेंपल ही वाज ए ग्रेट जो पैटर्न ऑफ कल्चर एंड रिलीजन रहला सेतिरे जगन्नाथ टेंपल कथा लिखि परिबो दो ए डिवोट साइबाइट ही वर्शिप गोकर्णेश्वर येट ही वाज आल्सो ए पैटर्न ऑफ वैष्णविज्म जे गोकर्णेश्वर को पूजा करथिले साइबाइट थिले ओरिजिनली बट ही पैट्रोनाइज्ड वैष्णविज्म एंड जगन्नाथ टेंपल इट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय हिम जगन्नाथ टेंपल एट पुरी अच्छा तापर आसिल अनंग भीमदेव थर्ड सेमती तांकर मिलिटरी अचीवमेंट कोन थिला कंक्वेस्ट ऑफ कालाचुरी थिला न्यू कैपिटल चेंज कले कलिंग नगर तो अभिनव वाराणसी कटक जाका एवे कटक बोली कहउचंदी इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनंग भीमदेव थर्ड तृतीय अनंग भीमदेव से तांकर राजधानी परिवर्तन करथिले अभिनव कलिंग नगर अभिनव वाराणसी कटक जाका एवे बिडानासी कटक बोली कहउछ वाराणसी अपभ्रंश होई बिडानासी हिची सो अभिनव माने न्यू कटक मॉडर्न कटक अभिनव माने नुवा ऑन द रिवर महानदी अराउंड 1230 तापर डिवोशन टू लॉर्ड जगन्नाथ अच्छा ये होजे प्रथम शासक के अनंग भीमदेव थर्ड इन व्हाट वे ही वाज द फर्स्ट रूलर कोन तंकर अचीवमेंट थिला प्रथम शासक कोथि पई ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज राउत राउत माने कोन डेपुटी राउत सेवक जगन्नाथ नाम सेवक तो सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ राउत अनंग भीमदेव फॉर द फर्स्ट टाइम ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज राउत कोड गला देखितली गोटे ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज राउत कंक्वेस्ट ऑफ कालाचुरीज गला दिगो हां राउत ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज राउत and son of Lord Jagannath. It is important. राउत है डेपुटी
बा सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ जगन्नाथ सेवक बोली निजको से घोषणा करथिले तार प्रमाण कोन अछि जे अनंग भीमदेव थर्ड हाउ ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज राउत हिसाब से कोन से काम करथिले छेरा पहरा करथिले रथ टाणा पूर्व जो छेरा पहरा करंती दैट वाज परफॉर्म्ड बाय हिम ही परफॉर्म द छेरा पहरा रिचुअल ड्यूरिंग द रथ यात्रा अच्छा द ओरिजिन ऑफ छेरा पहरा इट स्टार्टेड बाय अनंग भीमदेव थर्ड अनंग भीमदेव तृतीय ठारू छेरा पहरा कार्य आरंभ होइतिला हैला ए छेरा पहरा रे जो गप अछि कांचीर राजा की थिले सालुव नरसिंह से समय छेरा पहरा एठी गजपति के थिले पुरुषोत्तम देव तो एटा अनंग भीमदेव थर्ड गोटे आरंभ होइछि गंगा डायनेस्टी रे तापर इट वाज फॉलोड बाय द गजपति डायनेस्टी जोटा हम एबे भी चलीछि छेरा पहरा रथ टणा पूर्व सो छेरा पहरा जो कहउछन्ती इट वाज आल्सो स्टार्टेड बाय अनंग भीमदेव थर्ड तृतीय अनंग भीमदेव निजको राउत बोली घोषणा करथिले जगन्नाथଙ୍କର सेवक बोली घोषणा करथिले एवं से ही द ओरिजिन ऑफ छेरा पहरा इट वाज आल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज टाइम तांका समय रथर छेरा पहरा कार्य आरंभ होइतिला तांका पर आसे नरसिंह देव फर्स्ट हम जो पढिले जे द गंगा पावर रीच्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नरसिंह देव फर्स्ट नरसिंह देव तांका अचीवमेंट भीतर रहला कल्चरल अचीवमेंट भीतर कोणार्क सन टेंपल रहला टाइटल ऑफ गजपति ही आर द फर्स्ट रूलर टू डिक्लेयर हिमसेल्फ एज गजपति लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स नरसिंह देव फर्स्ट पैट्रोनेज ऑफ रिलीजियस पॉलिसी कौन पैट्रोनेज थिला तांकर ही वाज द ग्रेट पैटर्न ऑफ संस्कृत लिटरेचर कोट पोएट थिले विद्याधर लिखिथिले एकावली एकावली होची अलंकार पोएटिक्स तापर डेमोन्स्ट्रेटेड रिलीजियस कैथोलिसिटी सब धर्म प्रति सहनशील थिले निजको दुर्गा पुत्र बोली घोषणा करथिले द सन ऑफ द गॉडेस निजको दुर्गा पुत्र और श्री पुरुषोत्तम पुत्र निजको सन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बा पुरुषोत्तम पुत्र बोली घोषणा करथिले से होचंती नरसिंह देव फर्स्ट अच्छा द गंगा रूलर्स दे आल्सो गॉट द टाइटल ता कोन टाइटल मिलथिला महाराजा गंगा रूलर मानको महाराजा बोली कहत द ग्रेट रूलर द ग्रेट किंग महाराजा आ कोन महाराजाधिराज महाराजाधिराज थिला द किंग ऑफ ग्रेट किंग्स परम महेश्वर थिला बिकॉज़ दे आर द डिवोटीज ऑफ शिव महेश्वर शिव तेनु महाराजा महाराजाधिराज परम महेश्वर पाइथिले परम भट्टारक माने द सुप्रीम लॉर्ड परम भट्टारक से उपाधि मत मिलथिला परम भट्टारक बोली करी आ कोन थिला त्रिकलिंगाधिपति हमें पढिला गुरु त्रिकलिंगाधिपति परम वैष्णव थिले द सुप्रीम डिवोटी ऑफ विष्णु ए सब तांकु मिलथिला चक्रवर्ती उपाधि पाइथिले आ गजपति उपाधि मत पाइथिले सो दीज आर द designations which are conferred on the Ganga rulers like these are the titles PDF अच्छा आउ कौन रहिला गंगा डायनेस्टी रो एटा तो दीज आर द अचीवमेंट दीज आर द पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द किंग गंगा एडमिनिस्ट्रेशन ताबित आसिला ताकर मेन काम करथिला डिसमिसिंग मिनिस्टर्स एंड हाई ऑफिसर्स एंड अपॉइंटिंग द हाई ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स मंत्री मंडल को नियुक्ति देउथिले बा जो माने ठीक भाबे कार्य संपादन करनुले तांको मध्ये बहिष्कार करिवा दायित्व थिला राजाकर लिविंग टैक्सेस एंड ग्रांटिंग टैक्स एग्जेम्पशन टैक्स इंपोज करथिले एवं केते क्षेत्र रे टैक्स मध्ये एग्जेम्पशन करथिले ड्यूरिंग टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज जदि कोनसी प्राकृतिक विपर्यय आस्तुला से समय से ऋण बा से जो टैक्स बा कर मध्ये छाड़ा कर देउथिले सो बेनिवोलेंट रूलर थिले से माने आ कोन थिला कमिशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स एंड पब्लिक वर्क डिक्लेयरिंग वॉर एंड नेगोशिएटिंग पीस ट्रीटीज मंदिर निर्माण करथिले आ कोन पब्लिक वर्क्स मध्ये करथिले वॉर एंड करथिले एवं पीस नेगोशिएशन भी करथिले शांति युद्ध एवं शांति उभय मध्ये संपादन करथिले ता छडा ग्रांटिंग लैंड टू ब्राह्मण्स टेंपल्स एंड डिजर्विंग इंडिविजुअल्स ब्राह्मण मान मध्ये दान करथिले लैंड भूमि दान करथिले जो अग्रहार बोली हम कहउछंती ब्रह्मदेव बोली जो कहउछंती ब्रह्मदेव बा अग्रहार दीज आर द लैंड ग्रांट्स व्हिच आर गिवन टू द ब्राह्मण्स आउ कोन थिला अंडरटेकिंग टूर्स अक्रॉस द एम्पायर टू डायरेक्टली अंडरस्टैंड द पीपल्स कंसर्न एंड एंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस निजे दे टुक द पर्सनल इंटरेस्ट इन विजिटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर टू कलेक्ट द मटेरियल्स फ्रॉम द पीपल प्रकृत रे शासन केमती चलीची जानिया पई निजर कोई त्रुटि को सुधारिया पई से निजे ही विजिटेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर ही टुक पर्सनल इंटरेस्ट ही टुक पर्सनल केयर
अच्छा तांकु सहायता करथिले जो माने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आल्सो देयर काउंसिल मिनिस्टर जे मुख्य थिले तां कोन कहउतिला द मिनिस्टरियल रोल मंत्री पात्र सामंत दिस वाज ए जनरल टर्म फॉर मिनिस्टर ड्यूरिंग द गंगा पीरियड द पात्र सामंत दैट वाज द टाइटल व्हिच वाज गिवन टू द मिनिस्टर्स मंत्री मानको पात्र सामंत बोली कहउतिला अच्छा को माने थिले मंत्री जी थिले तांकर कोन रोल थिला द जनरल टर्म फॉर मिनिस्टर और काउंसिल मंत्री कहउतिला साधारण एडवाइजर जे बा साधारण मंत्री तांको कहउतिला मंत्री बोली करी आ पुरोहित थिले कोन से रॉयल प्रीस्ट थिले राजा पुरोहित जो माने तांको पुरोहित बोली कहता दे ही वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन तबरे युवराज जो क्राउन प्रिंस राजांकर जो युवराज थिए ही हैड आल्सो ए रोल टू प्ले इन द एडमिनिस्ट्रेशन युवराजंकर मध्ये भूमिका थिला प्रशासन क्षेत्र रे तापरे संधि विग्रहिक द मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस युद्ध एवं शांति आम जो फॉरेन मिनिस्टर कहउछंती से माने युद्ध एवं शांति वार एंड पीस को से माने करथिले एंड रिस्पांसिबल फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी तापरे महापात्र माने रेवेन्यू मिनिस्टर ताको महापात्र बोली कहत दीज आर टर्म्स तापरे सेनापति कमांडर ऑफ चीफ ऑफ आर्मी तापरे दोवारिक कोन दे द चीफ ऑफ द पैलेस गार्ड जे जो पैलेस को माने सुरक्षा दायित्व थिले ताको दोवारिक बोली कह जाउथिला आमे द्वारिक बोली कहउछे ना ताको दोवारिक बोली कहउथिला दोवारिक बा द्वारिक एका कथा तापर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कोनता जो प्रोविंस थिला इट द एम्पायर इट वाज डिवाइडेड इनटू महामंडल ग्रेटर प्रोविंस बड़ बड़ जो राज्य ताको महामंडल बोली कहउथिला एंड इट वाज हेडेड बाय महामंडलिका गवर्नर इन चीफ एटा क्वेश्चन पड़े हु वाज द हेड ऑफ द महामंडल ड्यूरिंग द गंगा पीरियड महामंडलिक से चीफ थिले सेमती प्रोविंस बड़ प्रोविंस को महामंडल को कहउतिला नेक्स्ट इट ईच महामंडल वाज डिवाइडेड इनटू मंडल और प्रोविंस ए महामंडल वाज सब डिवाइडेड इनटू मंडल ईच एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मंडलिक बा गवर्नर एटा टेक्निकल टर्म टिके खाली मन रखिबो पढिले मन रे बहिरे त अछि देखिबो होई मंडलिक तापरे विषय ईच प्रोविंस आर डिवाइडेड इनटू विषय भोग बा तको डिस्ट्रिक्ट बोली कहतला प्रत्येक प्रदेश को केते डिस्ट्रिक्ट बा भोग बा विषय रे विभक्त कराइतला मंडल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू विषय और भोग मैनेज बाय विषयपति और भौगिक विषयपति जेथले विषय रे जे मुख्य ताको विषयपति बोली कहतला बा जे भोग रे जे मुख्य ताको भौगिक बोली मध्ये कह जाउतला एंड विलेज और ग्राम दैट इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट it was known as the village or grama it was headed by ग्रामिक केते जगह देखो ग्रामिक और ग्रामणी अछि वेदिक एज ग्रामणी थिला आ एठी देखो ग्रामिक अछि एटा इज डिफरेंस से हेड ऑफ द विलेज बट ड्यूरिंग द गंगा पीरियड ही वाज नोन एज ग्रामिक और द विलेज हेडमैन तापरे मिलिटरी स्ट्रेंथ गंगा शासक मानकर कोन थिला गंगा वार मशीन द रॉयल लीडरशिप गंगा किंग्स आर ऑफन अकम्प्लिश्ड वॉरियर्स हु पर्सनली लेड देयर आर्मीज इन द बैटल कमांड स्ट्रक्चर सकट बातपति थिले तांको कहतला द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस सेमती सेनाध्यक्ष थिले कमांडर इन चीफ सो फॉर द मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गंगा रूलर इज कंसर्न द दे वर द सकट बातपति तबरे सेनाध्यक्ष थिले कमांडर इन चीफ तांको तळु थिले सेनापति बा दलपति और बाहिनीपति अदर रैंक्स ऑफ द मिलिटरी कमांडर्स और जो रिक्रूटमेंट थिला सोल्जर मान का रिक्रूटमेंट दे आर रिक्रूटेड फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ऑल द कास्ट ऑल द वर्णस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्ते सैन्य बाहिनी जोगदी करथिले नॉट ओनली द क्षत्रियज आर इंक्लूडेड बट फ्रॉम ऑल वर्णस दे आर रिक्रूटेड टू द मिलिटरी फोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होता मिलिटरी फोर्सेस रजांकर अच्छा कंपोजिशन कोन थिला रजांकर जो मिलिटरी फोर्स थिला को मान थिले एलिफेंट्री थिले गजपति एलिफेंट्री होचदी हस्ती बाहिनी तबर कैवलरी हस्त माने अश्वारोही तांको कैवलरी बोली कहउतिला और इन्फेंट्री पदातिक बाहिनी सो गजब एलिफेंट्री कैवलरी एंड इन्फेंट्री दे आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द मिलिटरी फोर्सेस आउ कोन थिला वेपनरी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थिले द सोल्जर्स आर इक्विप्ड विथ वेराइटी ऑफ वेपन्स इंक्लूडिंग स्वॉर्ड डैगर शील्ड स्पीयर ये सब थिला तांकर अस्त्र शस्त्र तबरे रेवेन्यू सिस्टम कोन थिला रेवेन्यू सिस्टम साउंड रेवेन्यू सिस्टम फॉर गंगा एडमिनिस्ट्रेशन लैंड रेवेन्यू आर द चीफ सोर्स ऑफ इनकम आयर मुख्य पंथा थिला भू राजस्व मेजॉरिटी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन सो लैंड रेवेन्यू इज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम द स्टैंडर्ड शेयर इज 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस जमीन जति उत्पन्न शस्य उत्पन्न होतिला तार 6 भाग रे गोटे भाग 1/6 इट इज कलेक्टेड एज लैंड रेवेन्यू
अच्छा लैंड सेटलमेंट केमती करथिले से एग्रीकल्चर पढिसे 1/6 अनेक समय पढिसे 1/5 पढिचंती सब जगह रे प्राय एठी किंतु 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इट इज कलेक्टेड एज रेवेन्यू लैंड सेटलमेंट पे अनंग भीमा देव माधव पंजी तू जणा पड़छि जे लैंड सेटलमेंट ताका समय रे करा हैतिला दैट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तबरे अदर टैक्सेस कोन थिला अदर टैक्सेस आउट सोर्स ऑफ इनकम कोन थिला वेरियस लेवीज मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शंस सच एज भेट प्रेजेंट्स और ट्रिब्यूट्स घोड़ा और पाइक ये सब अदर मीन्स ऑफ इनकम थिला भेट माने कोन राजा को जने साक्षात करथिले भेट दउथिले उपहार दउथिले दैट वाज आल्सो अनदर सोर्स ऑफ इनकम भेट थिला ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कस्टम्स ड्यूटी जो जिनिस बाहर को जाउथिला बा जोडा बाहर आमदानी करा होथिला रप्तानी आमदानी ता पर मध्ये शुल्क अदा करा होथिला आ कोन थिला रेवेन्यू फ्रॉम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स दैट इज आल्सो अनदर सोर्स ऑफ इनकम तापरे फाइन्स इम्पोज्ड बाय कोर्ट्स कोर्ट फी और सॉल्ट टैक्स लो अपोजिट टैक्स एवडा मध्ये सोर्स ऑफ इनकम थिला सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सोशल हायरार्की वर्ण सिस्टम थिला हमरा पढिले वर्ण सिस्टम थिला रिलीजियस सेवा थिले वैष्णवाइट थिले किंतु दे आर आल्सो टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल अदर रिलीजियंस और कोन आसला important is the decline of the Gangas, Muslim invasion, legacy of the Ganga dynasty, political unification, legacy of the Ganga dynasty. कौन Ganga dynasty रो अवदान कौन थिला? What are the legacy of the Ganga dynasty so far as the history of Odisha is concerned? They brought about the political unification, they brought about the stability of the empire. तेनु सेमाने राजनीतिक एकता आनी थिले and they brought about the स्थिरता आनी थिले. Our military strength, they are much more powerful. A well organized military force is also backed by the Ganga rulers. आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर से माने जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्षेत्र में माने कला स्थापत्य क्षेत्र में से मानकर विशेष अवदान था द लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी दैट इज द बेस्ट एग्जांपल एंड सन टेम्पल एट कोणार्क और कल्चरल डेवलपमेंट कोन थिला संस्कृत लिटरेचर थिला पैट्रोनाइज संस्कृत लिटरेचर ओडिया लिटरेचर प्रमोटिंग वेरियस रिलीजियस ट्रेडिशन दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ द सो फार एज द कल्चरल डेवलपमेंट इज कंसर्न our administrative system they established well organized administration that influenced the Odishan kingdom well organized administrative system और सुसंगठित प्रशासनिक पद्धति it is also followed by the Ganga rulers तापरे आसिला कोर्ट ऑफ जगन्नाथ ये पढिथि तुम क्लास रे बुझे कोर्ट ऑफ जगन्नाथ भितर आसिला हां cult of Jagannath संस्कृति so far as the cult of Jagannath is concerned we cannot limit Lord Jagannath within a particular religion आमे कोनोसी गोटे धर्म भितरे ताकू संपूर्ण करि परिबा नाही he is beyond all religions assimilation of all religions Vaishnavism Shaivism Shaktism they are all assimilated with cult of Lord Jagannath होचोदी सब धर्म रो गोटे समन्वय so far as the cult of Jagannath is concerned we can discuss we can know how what are the tribal origin of Lord Jagannath the Lord Jagannath का गोटे characteristics होची ट्राइबल origin ट्राइबल रूट्स सबर कनेक्शन सबर की पूजा करथिला जारा सबर ता पूजा करथिला विश्व सबर पूजा करथिला ठीक है तो विश्व जारा सबर ताको तो मारी देथिला जारा सबर माने भूल भाबिग्री किंतु विश्व पूजा करथिला जो सबर ट्रेडिशन से ट्रेडिशन ता एबी भी अछि जो माने विश्व वंशधर कोन कहता से मानबो से दैत्यपति बोली कह जाउची एबी भी मंदिर रे पूजा करन दैत्यपति द ट्रेडिशन स्टिल कंटिन्यूज इन टिल नाउ सो सबर ट्रेडिशन अछि सबर ट्रेडिशन ने कोन अछि सरला महाभारत ना पड़छि जो जारा सबर जगन्नाथ को जेते विष्णु सोइचंदी गोटे सियाली लटारे ताको जारा सबर तीर मारी देला एवं सेतिर जगन्नाथकर प्राण बा श्री कृष्णकर प्राणवायु चली गला ताको पोडी देबा भयर कि धरा पड़े भता नहीं पोडी देला बट ही वाज द परम ब्रह्म ही वाज नॉट कंप्लीटली बर्न्ड इनटू एसेस पोडी हेलानी आधा पोडी हेला ताको कोन करनी समुद्र रे फोपाडी देला he threw the half burnt body of Sri Krishna into the sea and after in the dream came Indradumna he was the ruler he was the king ताको स्वप्न रे आसला कोन जे सेई जो गोटे दारू भासी आसी लागिची बांकी मोहनर बा पुरी पाखरे एवं सेतिरे मूर्ति तयारी करा जियो बोली करी तो देखले दारू लागी काठ कणी लागिची ताको आनी तीन खंड काठ ताको आनी रखिले मंदिर रे विश्वास को डाकिले बासी जो विश्वकर्मा को डाकिले से मूर्ति तयारी करले किंतु विश्वकर्मा कंडीशन थिला कोन नॉट टू ओपन द डोर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द deities but after 15 days no sounders came out of that room then गुंडीचा रानी कहले से द्वार खोली दियो द्वार खोला बेलको nobody is there half built the deities are also there they are still now
जो अधा गढ़ा दियो हम जो कहउचंती ए जो जिंसटा सो दैट इज द शबर ट्रेडिशन तो शबर मान शबर ओरिजिन बा ट्राइबल ओरिजिन लिजेंड ऑफ फोकलोर बा ट्राइबल शबर ओरिजिन बोली जगन्नाथ को विश्वास करा जाउची। अच्छा ता छडा स्कंद पुराण रे कोन बना रहिची स्कंद पुराण रहिची कोन तांको पूजा करथला के नीलमाधव को पूजा करथला कि विश्ववसु शबर पूजा करथला नीलमाधव को तार कन्या थला ललिता विद्यापति आसिले जगन्नाथ का संधान रे किंतु जेते बेले विश्ववसु आट नीलशैल बा सेठी पूजा करथिले जेते बेले सी आसिले संधान रे कोन विद्यापति हु मैरिज विश्ववसु डॉक्टर ललिता विद्यापति इवेंचुअली लोकेटेड द डेटी बट फाइंड्स इट हैज वैनिश्ड जेते विद्यापति गले देखले सेठी प्रकृति रे माने केही ठाकुर ना सेठी उभा हेई जैछंती तेनु विद्यापति और ललिता तांको परवर्ती संतान जो माने आसिले से माने दैतापति भाव में परिचित जो माने कि एबे भी जगन्नाथ पूजक से माने अछंती तेनु जगन्नाथ जो संस्कृति एते प्राचीन और एते महान। अच्छा ये जो दैतापति कथा कहूची से माने एबे भी से मंदिर रे पूजक भाव में अछंती। बनजाग यात्रा कोन इन सर्च ऑफ दारू संधान रे से माने प्रति 12 वर्ष रे बा जेते बेले दुईटा आषाढ़ मास पड़े से माने जान दारू संधान रे तार केते चिन्ह से निम गछ थिबो शंखचक्र गदा पद्म चिन्ह सब थिबो साप से ता मूल रे थिबो बा कोन पक्षी बसा करनी तो दिजा कंडीशंस जहा पुराण रो जाना पड़ची से कंडीशन जोटी फुलफिल होची सेही थ्रू से काठ आसी कि जगन्नाथ के मूर्ति तैयारी होची सो बनजाग यात्रा मध्य एबे भी सेरा अछि। अच्छा वैदिक ओरिजिन ऋग्वेद सेथिरे मध्य दारू ब्रह्म को मध्य से पूजा करथि द कॉन्सेप्ट ऑफ जगन्नाथ। अच्छा आउ कोन अछि जैन एफिनिटीज सिंबल ऑफ कॉन्सेप्ट जैन माने ताकर जैन गुरु मान को रथ रे बसै कि नियंती गोटे स्थान आ गोटे स्थान को जगन्नाथ भी रथ रे जाति प्रति वर्ष रथ यात्रा रे तो जैन कनेक्शन अछि तांका सहित। कल्पवट कल्प बा कैबल्य होची कोन मुख्य प्राप्ति मुक्ति प्राप्ति हम जगन्नाथ प्रसाद कैबल्य बोली मध्ये कहउचंती केवलिन महावीर को केवलिन बोली कहउतला तेनु जगन्नाथ सहित जैन धर्म मध्ये संपर्क रहिछि कैबल्य बा केवलिन ज्ञान प्राप्ति ए जो जिनसटा कैबल्य मुक्ति बा मुख्य प्राप्ति हि जीव जदि हमें कैबल्य प्रसाद जदि हमें पाइबा सो दैट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन कल्ट ऑफ जगन्नाथ एंड जैनिज्म कल्ट ऑफ जगन्नाथ एवं बुद्धिज्म राइट नॉलेज राइट बिलीफ राइट एक्शन बा बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि धर्मं शरणम गच्छामि बुद्ध धर्म एवं संघ दैट ट्रिनिटी दे आर द थ्री डेटीज ऑफ बलभद्र सुभद्रा एंड जगन्नाथ ताको मध्ये बौद्ध धर्म सहित तुलना करा जायछि बौद्ध धर्म मध्ये सामंजस्य रहिछि जगन्नाथ मूर्ति सहित। ए जो कल्पवट कहली कल्पवट विश फुलफिलिंग बानियंटी जोटा अछि मंदिर भितरे महाप्रसाद कैबल्य से खाउचंती हम समस्त पावंती मुख्य प्राप्ति पाया पई। अच्छा बुद्धिस्ट कनेक्शन तो कहली आइकोनोग्राफी ऑफ रिचुअल्स सब रहिला तापर द ट्रिनिटी जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र से माने हे गले बुद्ध धर्म और संघ टूथ रेलिक थ्योरी गौतम बुद्धकर दांत बोधि ताकर ब्रह्मा भितर अछि जो परिवर्तन करा जाय सो ही इज द कांसेप्ट ऑफ लॉर्ड बुद्ध दैट इज इनसाइड लॉर्ड जगन्नाथ। नाइन्थ इनकार्नेशन बुद्ध अवतार निजे जगन्नाथ नवम अवतार होउचंती बा बुद्ध अवतार सो दैट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन बुद्धिज्म एंड कल्ट ऑफ जगन्नाथ तो नवम अवतार भारे ताको मध्ये जगन्नाथ को मध्ये तुलना करा जायछि। अच्छा पुरी आज शाक्त पीठ आ गोटे हला कोन शैव तांत्रिक इन्फ्लुएंस भैरव एंड शक्ति पुरी रा होछि गोटे शाक्त पीठ शाक्त माने कोन शक्ति विमला जगन्नाथ मध्ये विमला जो पूजा पाउचंती दुर्गा विमला जेते महाप्रसाद होछि दैट इज आल्सो ऑफर टू विमला जगन्नाथ मध्ये पूजा लागिला पर सेठी पूजा होचंती विमला का पाखरे सो दैट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन शक्तिज्म एंड वैष्णविज्म वैष्णव धर्म और शाक्त धर्म ता भितर जो सामंजस्य जो संपर्क दैट इज आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय द कल्ट ऑफ जगन्नाथ। शाक्त पीठ बोली पुरी को शाक्त पीठ बोली कह तांत्रिक शाक्त पीठ तंत्र रे गोटे मुख्य केंद्र होची पुरी आ कोन होची सुभद्रा शक्ति उत्कल खंड स्कंद पुराण रे सुभद्रा को शक्ति भाव में वर्णना करा जायछि जगन्नाथकर शक्ति होचंती निजे सुभद्रा दुई भाई मझिरे भौणी। अच्छा पुरुषोत्तम आज विष्णु जगन्नाथ मध्ये विष्णु बोली कहउछि पैट्रोनिज ऑफ डायनेस्टीज एत गला कृष्ण सेंट्रिक फेस्टिवल जेते बेले कृष्ण को रिलेट करी जेते गुडी फेस्टिवल अछि सब तक जगन्नाथ के पाखे सेलिब्रेट करा जाय कृष्ण जन्म जन्माष्टमी से पालन करा जाउछि कालिया दलन एकादशी कालिया दलन जो कृष्ण कालिया को दलन करथिल जो नाग सेटा मध्ये जगन्नाथ मंदिर रे सेलिब्रेट करा जाउछि इटी कालिया दलन चंदन यात्रा चंदन फेस्टिवल एबे भी करा होछि खरा दिने सो द कृष्ण सेंट्रिक फेस्टिवल इन्फ्लुएंस ऑफ श्री चैतन्य आसी कौन कहले इट इज ओनली थ्रू संकीर्तन इट इज ओनली थ्रू द
reputation of the bhakti cult jora kohu Sri Chaitanya, it is due to or it is only through the chanting of the name of Krishna that one can attain salvation. तेणु श्री चैतन्य का जो प्रभाव रे प्रतापरुद्र देव जे कि थिले गजपति राजवंशर शासक थिले, he left his warfare, युद्ध छाड़ी देले, he followed Sri Chaitanya, he came to Puri in 1510, he also died at Puri in 1529. 19 वर्ष पहले पुरी रे मध्य से जगन्नाथ सहित लीन होइछि मिल विश्वास करा जे चैतन्य he was merged within Lord जगन्नाथ, तांकर मध्य मृत्यु हेतिला पुरी रे. तेणु एही सब दृष्टि विचार कले सर्वधर्मर समन्वय, द एसिमिलेशन ऑफ ऑल रिलीजियंस, इट इज फाउंड इन लॉर्ड जगन्नाथ. ता छडा सिखिज्म एंड इस्लाम, इट इज आल्सो बिलीव्ड दैट गुरु नानक ही आल्सो पेड ए विजिट टू पुरी. पुरी को मध्य गुरु नानक जे कि सिख धर्मर प्रतिष्ठाता गुरु नानक से मध्य जगन्नाथ को पाखे आछंती. गणपति भट्ट, he came from महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जे भक्त गणेशंकर जे भक्त थिले गणपति भट्ट, he also paid a visit to Puri during the स्नान यात्रा. And to commemorate that event, that Lord Jagannath, he also take the shape of elephant. हाथी वेश हुअंती कना गणपति गणेशंकर जो हाथी वेश जोटा जे गणपति भट्ट आसीथिले, he was a devout follower of Ganesha or Ganapati. He did not believe on Lord Jagannath. He said that if I see your Lord Jagannath in the form of Ganesha, then I will believe that your God is true. And on that day, he found that Lord Jagannath, he was having the वेश ऑफ गणेश एवं से बेठारु से गणेश वेश होचंदी हाथी वेश होचंदी. सो गणपति भट्ट बा गणपति कल्ट सहित बा गणेश कल्ट सहित तार मध्ये एसिमिलेशन अछि, जगन्नाथ कल्ट एंड द गणपति कल्ट. अच्छा, गुरु नानक त आस्तिले रहिला. आ इस्लाम भक्त सालबेग, ही आर द ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. से वृंदावन फेरुचंदी बट रथ तांका पे अटकी जाइतिला. सो दैट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन लॉर्ड जगन्नाथ एंड इस्लामिक फेथ, इस्लाम धर्म एवं Jagannath Dharma, cult of Jagannath, it has also a great relationship in between both the religions, both the concepts. तो ये सब दृष्टि विचार कले जे cult of Jagannath, it is very wide, it is very broad, we cannot limit him within a particular religion. कौन सी गोटिए धर्म को नहीं कि आमे ताको रखी परिबा नाही. तेनु से सर्व धर्मर समन्वय, the assimilation of all the religions are there with Lord Jagannath. एवं तापरे आसिला सूर्यवंशी गजपति. सूर्यवंशी गजपति तार कपिलेन्द्र देव द फर्स्ट रूलर, ही ऑक्युपाइड द थ्रोन इन 1435. ताकू ताकर करोनेशन हेतिला कोठी भुवनेश्वर रे, जानछ कि नहीं, भुवनेश्वर रे हेतिला. हिज करोनेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन भुवनेश्वर, व्हिच इज नोन एज कृतिवास कटक. कपिलेन्द्र देव द फाउंडर ऑफ द गजपति डायनेस्टी, हिज करोनेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन 1435 and it is in कृतिवास कटक which is identified with भुवनेश्वर. कृतिवास कटक सेता ना तो कहता जोटा कि भुवनेश्वर बोल तो कह जाउची. So far as his conquest is concerned, गौड़ थिला ताकर एक्सपीडिशन से कोन उपाधि पाइथिले, एई उपाधि पाइथिले कपिलेन्द्र देव. गजपति, गौड़ेश्वर, नवकोटी, कर्नाटक, कलवर्गेश्वर. गजपति kana he was backed by a well organized military forces, हस्ती बाहिनी थिले एलिफेंट्री. गौड़ेश्वर, गौड़ कोन, गौड़ हैला बेंगल, बंगाल को गौड़ कहउतला. तेनु गौड़ेश्वर, गौड़र ईश्वर, गौड़र माने गौड़र अधिपति, गौड़ निजे अधीन रखिले से गौड़ेश्वर. नवकोटी, नवकोटी माने there are two views so far as नवकोटी is concerned. नवकोटी means 9 कोटी लोकन को से जय करथिले. नवकोटी आउ केते कहंती नवकोटी माने that is 9 forts, not a fort, दुर्ग. कर्नाटक, नवकोटी कर्नाटक, कर्नाटकर 9 कोटी लोकन को से जय करथिले एवं कर्नाटकर 9टी दुर्ग से अधिकार करथिले. ताछड़ा कलावर्गेश्वर जाका में गुलबर्गा बोली बे कहउचंती, गुलबर्गा साउथ रे कलावर्गेश्वर. सो से दिस द टाइटल. तेनु जा पड़ले कि माने गजपति साम्राज्यर सीमा उत्तर रे गंगा ठारे दक्षिण रे गोदावरी पर्यंत विस्तारित होइता, कावेरी पर्यंत विस्तारित होइता, फ्रॉम गंगा टू कावेरी. जा पई ताकू पाइथिले गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्नाटक कलावर्गेश्वर उपाधि रे ताकू घोषित कराइतिला. से कोन ग्रंथ बही लिखिचंती, ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर. कपिलेन्द्र देव, ही वाज आल्सो ए ग्रेट स्कॉलर. ए बुक वाज रिटन बाय हिम, ए टेक्स्ट कोन ताना एटा क्वेश्चन आसी पारे. एपटे रूलर्स थिबो बा ऑथर्स थिबो, एपटे बुक्स थिबो, यू हैव टू मैच. एमती क्वेश्चन आसी पारे. परशुराम विजय,
he was a great scholar परशुराम विजय से निजे लिखिछंती it was written by गजपति कपिलेन्द्र देव तांका परे आसिले पुरुषोत्तम देव ये जो छेरा पहरा रिचुअल हम कहउछंती जो कहली आगुर आरंभ होइतिला अनंग नरसिंह देवଙ୍କ समयरु पुरुषोत्तम देव फॉलो करथिले कांची कावेरी लीजेंड कोन सालुवा नरसिंह पुरुषोत्तम देव कांची अभियान जाइतिले सालुवा नरसिंह रूलर ऑफ कांची ही वाज सालुवा नरसिंह तांका ना सेते बेले एक गोटे ट्रीटी तांका भितर हेतिला पुरुषोत्तम देव और सालुवा नरसिंह देव कोन ट्रीटी हेतिला संधि कोन हेतिला सालुवा नरसिंह देव कहले मु पछे मो कन्या को आउ का हाथ रे विवाह करिबी किंतु तुम हाथ रे विवाह करिबी नाही हां छेरा पहरा समय रे से मंत्री जी से कहले देखो आपण तो गोटे चंडाल काम करछंती कहले मु चंडाल हाथ रे पछे झियो को विवाह करिबी किंतु तुम को राजा को देबी नाही बट दैट से एटा को कांची कावेरी लीजेंड बोली कहउची से विवाह करथिले पद्मावती को विवाह करथिले द डॉटर ऑफ सालुवा नरसिंह अच्छा ए स्किल डिप्लोमेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ही रेस्टोर्ड पीस संस्कृत स्कॉलर थिले अभिनव गीत गोविंद पुरुषोत्तम देव से लिखिछंती अभिनव गीत गोविंद ही पैट्रोनाइज ओडिया पोएट लाइक अर्जुन दास आउ कोन एंड बिल्डर ऑफ सुंदर माधव टेंपल पुरुषोत्तमपुर एते गुडी रहिछि पुरुषोत्तम देवकर अचीवमेंट्स तांका परे आसिले प्रतापरुद्र देव लास्ट ऑफ द गजपति रूलर्स प्रतापरुद्र देव बट प्रतापरुद्र देव ही वाज नॉट ए ग्रेट so far as his conquest is concerned प्रतापरुद्र देव he was a follower of श्री चैतन्य से खूब प्रभावित हो गले so he discarded war से युद्ध परित्याग कर देले युद्ध करि नथिले no other expansion of his empire was there during his time the rulers governed deputy बा निजको डेपुटी बा जगन्नाथ राउत भाबरे से घोषणा करथिले निजको जगन्नाथ सेवक भाबरे घोषणा करथिले महाराजाधिराज गजपति गौडेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलवर्गेश्वर ये सब उपाधि तो थिला किंतु he did not expand his own territory because he was influenced by श्री चैतन्य को द्वारा एते भाबरे प्रभावित होइतिले जे से अधिक साम्राज्य विस्तार पई कोनसी गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नै नथिले जाफल कि इट वाज आफ्टर द गजपति डायनास्टी ड्यूरिंग हिज टाइम इट बिकेम पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली वीक से माने पॉलिटिकली मिलिटरीली वीक हे गले से माने तांका जो सामरिक बाहिनी थिले तेनु से माने परवर्ती आक्रमण को प्रतिरोध करि पारले नाही आज रिजल्ट ऑफ हिज द गजपति डायनास्टी इट वाज आल्सो डिक्लाइन तेनु गजपति साम्राज्य रो पतन घटितिला प्रतापरुद्र देवक समय रे तापरे मुकुंद देव शेष हिंदू राजा किए थे हु आर द लास्ट हिंदू रूलर किए मुकुंद देव ये भाव में आसिले एंशिएंट आरंभ करी गजपति डायनेस्टी पर्यंत मुझे मॉडर्न पार्ट टा खाली टिके दुखौची मॉडर्न पार्ट रे किछि भक्ति मूवमेंट कवि नानक चैतन्य ये सब तो अच्छी आउ कौन गला पंचसखा को माने थिले तांकर बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ी पारे माने मैच द बुक्स विथ द ऑथर्स पंचसखा किए रिवाइवल ऑफ ओडिया रिलीजन रिवाइवल ऑफ ओडिया लिटरेचर अनंत दास बलराम दास जगन्नाथ दास अनंत दास अच्युत दास जसवंत दास से मानकर कौन सब बुक्स सब कौन थिला एमती गोटे क्वेश्चन आसी परिबो को माने सब से माने थिले पंचसखा बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतान दास जसवंत दास शिशु आनंद दास तांका भितर गोटे ना अलगा देइथो सारला दास हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड विद इन द पंचसखा तो मु सब लागिबो एका भली सारला दास एमती नाटे अछि गोटे क्वेश्चन टे आसीची
माने एई मान के भीतर कौन सी ना गोटे छाड़ दीची ता भीतर ऐड कर दीची सारला दास बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युत दास जसवंत दास एंड सारला दास समस्ते पिला लिखिथे जसवंत दास एरा के लाग जणा पणी जसवंत दास थिला भलिया तेनु सारला दास होची ऑड मैन आउट एमती गोटे कोडी पड़ी पारे वर्नाकुलर लैंग्वेज ओडिया लिटरेचर ओडिया साहित्य यथेष्ट प्रसार करथिला से समय तापरे पंचसखा से माने दे आर इन्फ्लुएंस बाय श्री चैतन्य को द्वारा से माने प्रभावित होइतिले राधा एवं कृष्ण से भाव से माने प्रभावित होइतिले तेनु से माने को रचना माध्यम कोन लिखि बलराम दास कोन लिखचंदी बलराम दास कोन लिखचंदी दांडी रामायण आ कोन लिखचंदी बिलंक रामायण दांडी रामायण लक्ष्मी पुराण बलराम दास जगमोहन रामायण लक्ष्मी पुराण ये सब लिखचंदी ताकू मत बलराम दास बोली कहउतला से जगन्नाथ को बाया पागल होइतिले जगन्नाथ दास कोन लिखिले ओडिया भागवत लिखिले तापर लिखिले तुला भीणा दारु ब्रह्म गीता गुप्त भागवत ए सब तापर अच्युतानंद दास शून्य संहिता लिखचंदी अच्युतानंद मालिका लिखिचंदी अच्युतानंद का मालिका सब टीवी खोलले बाहर अच्युतानंद का मालिका तापर जसवंत दास टीका गोविंद चंद्र लिखि जसवंत दास सेमती अनंत दास भक्ति मुक्ति दया गीता शून्य नाम भेद हेतु उदय भागवत मालिका ये सब लिखि सब सेमानकर पंचसखा साहित्य ओडिया साहित्य यथेष्ट भाव प्रभावित करथिले एई पंचसखा आउ पंचसखा की अछंती आउ पंचसखा की अछंती एमान त गले मेडिएवल ओडिसा रो मॉडर्न ओडिसा रो पंचसखा की अछंती हां सत्यवादी युग रो पंचसखा हां सत्यवादी युग पंचसखा किए अछंती गोपबंधु दास आउ ओके गोपबंधु दास पंडित नीलकंठ दास आचार्य हरिहर दास तापरे गोदावरी मिश्र आउ कृपा सिंधु मिश्र सो दे आर द पंचसखा से सत्यवादी पंचसखा बोली कह दउतिला मु सेही पद जाउची सेही सत्यवादी पंचसखा को जाउची जे एगुड़ा को किसी क्वेश्चन आसी नाही ए पर्यंत जो मेडिएवल मुस्लिम रूल ए पर्यंत आसीनी कोनसी क्वेश्चन आसीनी तो क्वेश्चन माने बुक सथरस्ट के देखिबो हाँ इटे से कौन कहला पेज मारले पड़े बोली की कुआडे गला से मॉडर्न पार्ट रे किछ गोटे क्वेश्चन आसे परीक्षा रे मराठा किसी क्वेश्चन आसे केबे अनिल मराठा प्रैक्टिस कंक्विस्ट ऑफ ओडिशा आओ कौन वाला
गोटे मॉडर्न पार्टा खोजुची एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल ब्रिटिश ऑक्युपेशन ऑफ ओडिशा एटा तो समस्त कहि दे परिबे तापरे ओडिशा रा जो फ्रीडम मूवमेंट सेटा गोटे मेन पार्टा सेति तो निहाती क्वेश्चन आसीबो yes. हाँ तबरे ब्रिटिश दे ऑक्युपाइड ओडिशा इन 1803 then the first revolt against the British it was started in 1804 that is known as the खोर्धा अपराइजिंग 1803 रे इंग्लिश माने ओडिशा अधिकार करले किंतु 1804 मसिया रे खोर्धा रे अपराइजिंग प्रथमे देखा हैतिला who took the leadership of the खोर्धा rebellion in 1804 ना जय राजगुरु he took the leadership कौन तार कारण थिला ब्रिटिश ब्रीच ऑफ एक्सपेक्टेशन डिस्प्यूटेड पेमेंट जय राजगुरु डिप्लोमेटिक एफर्ट तबरे फियर ऑफ ब्रिटिश डिजाइन सेमानकर थिला असंतोष थिला मेन होची रेवेन्यू तापर आसुची हां खोर्धा रिबेलियन तार कोन कारण थिला मुख्यतः थिला राजस्व जय राजगुरु ही टू द लीडरशिप कॉन्फिस्केशन ऑफ खोर्धा तापर आसी पाइका रिबेलियन रो कारण होची एक्सप्लॉइटेटिव ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पाइका रिबेलियन हां खोर्धा रिबेलियन हुआ द फर्स्ट मार्टिर ऑफ ओडिशा प्रथम शहीद किए हितले ओडिशा रे प्रथम शहीद किए हितले अगेंस्ट द ब्रिटिश मान के विरुद्ध लड़ी प्रथम शहीद किए हितले हु बिकेम द फर्स्ट मार्टिर जय राजगुरु he was executed जय राजगुरु को फांसी पाइथिले से ताको चिरी देथिले दुई से होची 1805 मसिया रे 1804 जो खोर्धा रिबेलियन अच्छा तांका ता परे आसिला पाइका रिबेलियन केबे हितला 1817 पाइका मन का असंतोष का भी थिला द पाइकर्स व्हाई दे आर सैटिस्फाइड एक्सप्लॉइटेटिव ब्रिटिश पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश पॉलिसी जो थिला ब्रिटिश प्रशासन थिला तार विरुद्ध रे पाइका मन एकत्रित हितले कौन थिला alien administration the people of Odisha found the new British administration system alien and incomprehensible regulations are often translated into Bengali and Persian languages inaccessible to the general Odia populace corruption government officers they are largely staffed by non Odias particularly Bengalis they were very much corrupted then corrupt officer मान का विरुद्ध रे ताकर थिला आंदोलन alien administration प्रशासक माने मध्ये थिले अजଣା लोक से माने इंग्रजी रे कहउथिले ताका भाषागत कम्युनिकेशन लिंक ताका भीतर हेई पर नथिला कम्युनिकेशन गैप थिला ए सिग्निफिकेंट गल्फ एक्जिस्टेड बिटवीन द ब्रिटिश रूलर एंड द रूल्ड प्रिवेंटिंग द इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस सो एगुडा हसी गोटे कारण जोथि पई कि पाइका माने एकत्रित हेतिले पाइका माने कोन से माने युद्ध समय युद्ध करथिले और शांति समय कोन करथिले एग्रीकल्चर कृषि थिला सेमानकर मुख्य जीविका से कृषि करथिले युद्ध को डाकरा आसला युद्ध करथिले वार एंड पीस ऑपरेसिव सॉल्ट और कोन कारण थिला डिजास्टर्स लैंड रेवेन्यू पॉलिसी द शॉर्ट टर्म लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वेयर रियूनियन बोथ जमींदार एंड द रायर्स फेलियर टू पे ड्यूज ऑफन ड्यू टू क्रॉप फेलियर फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज फॉर व्हिच द ब्रिटिश रियली ग्रांटेड रिमिशन सेमानकर जो राजस्व आदाय करथिले इफ देयर इज एनी
नेचुरल कैलामिटी फसल उत्पादन ही नहीं तथापि तांका ऊपर इंपोज करके से माने इंग्लिश माने दे कलेक्टेड द रेवेन्यू जो परमानेंट सेटलमेंट कथा में पढुथिले 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस से परमानेंट सेटलमेंट से थिला इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन द रेवेन्यू अमाउंट इज सेम एंड इवन देयर इज मोर प्रोडक्शन द अमाउंट इज सेम total amount. Similarly, it was during the time of natural calamities when there is the loss of crops. सेतेबेले भी सेमानकु राजस्व देबक बाध्य करा होतला. So their disaster or their dissatisfaction grew day by day towards the British. इंग्लिश मानक प्रति सेमानक असंतोष दिन दिन वृद्धि पाइला. आ कोन थिला ऑपरेसिव सॉल्ट मोनोपोली. सॉल्ट मोनोपोली कोन जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरर से माने कोन कहतला मालांगीज बोली कहतला. तो ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ सॉल्ट मोनोपोली सिवियरली इंपैक्टेड द कॉमन पीपल एंड ट्रेडिशनल सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स. तेनु लुण मारिबाटा गोटे एक्सट्रा व्यवसाय से माने परिणत करथिले. The common people in areas like Khurda who relied on smuggled or illicit manufactured salt faced harsh punishments including imprisonment which carried a social stigma for violating salt law. तेणु केही लुण मारी परिबे नाही. लुण मारिबाटा को गोटे बैन करथिले. लुण मारिबा पर से माने एक्चटे अधिकार साब्यस्त करथिले. एठाला गोटे जिंस आ कोन थिला इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू करेंसी सिस्टम. सेते से कोन करेंसी यूज करथिले कौडी कौडी यूज करथिले एज ए करेंसी. किंतु ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द सिक्का रूपी as the standard currency replacing the widely used कौडी करेंसी फॉर रेवेन्यू पेमेंट. से माने रेवेन्यू राजस्व आकार रे कौडी को से ग्रहण करले नाही. से सिक्का बा कॉइन से माने इंट्रोड्यूस करथिले. It also brought about a sense of dissatisfaction among the Paikers. तेनु पाइकर रिबेलियन रा इथला आगोटे कारण. आ कोन थिला political grievances in Khurda, the execution of Joy Rajguru. That was another dissatisfaction among the people. And the deposition of Raja Mukundadeva II. The direct British management of Khurda under Major Fletcher since 1805 had deeply angered the people of Khurda. मेजर फ्लेचर को निजस्व तत्वावधान को चली गला प्रशासन को चली गला खुर्दार प्रशासन दायित्व 1805 मसीहा रे. इट आल्सो क्रिएटेड ए सिचुएशन अमंग द पीपल टू अपोज द ब्रिटिश रूल. तापरे इमीडिएट कॉज कोन थिला इमीडिएट कॉज होची बक्सी जगबंधु. बक्स ताकर इमीडिएट कॉज कोन थिला वाज हेरिडिटरी कमांडर इन चीफ ऑफ द फोर्सेस ऑफ द राजा ऑफ खुर्दा, ए पोजीशन ऑफ ग्रेट honor and influence. He had substantial jagir lands. ताको rent free lands दिया होता for his service under the Raja of Khurda, under the king of Khurda. ताको होते दिया होता rent free service including the estate of Roro, the four Praganas Rahanga, Lembai, Sarai and Chabiskud known as Baksibari. ताको ये सब मिली थिला as a mark of his honor or a mark of his duties towards the king of Khurda. Under Major Fletcher administration, Bexar dispossessed of Roram. ताकि से जो छड़ी निया गला से जगह पर अधिकार सब दिया साब्यस्त करा गला नहीं जोड़ा का ताकि मिली थिला अधिकार सूत्र रे. Bexar appealed to the commissioner Richardson. His claims are dismissed. Bexar जते भी ताकु कमिशन का आगे गुहारी करिथिले से तापति कर्णपात करि नथिले. Adding insult to injury, Charan Patnaik, the Sarbarakar revenue collector of Khurda, falsely accused Bexar of having secret link with the Pindaris, leading to an attempt to the local daroga to arrest him. तेनु Bexar जगबंधु को अरेस्ट करिया पई बा पिंडारी ए जो to attempt by the local daroga to arrest him. This series of injustice pushed Bexar जगबंधु against the British. तने ए जो Bexar जगबंधु ना विरुद्ध रे एते गुडी एलिगेशन थिला ता Bexar जगबंधु को ए रिबेलियस हवा पई प्रवर्तित थिला. So the pike किए पिंडारी हाँ पिंडारी वार हाँ सही पिंडारी मराठा मान को वार जो माने सहयोग करथिले पिंडारीज. तापरे एई गुडा का डिससैटिस्फैक्शन थिला Bexar जगबंधु. सो ही टुक द लीडरशिप. द पाइक रिबेलियन इग्निटेड Bexar जगबंधु's leadership quickly spread across Khurda and neighboring regions. तर आउटब्रेक हला कोठी. The rebellion began on 29th March 1817. It आरंभ होला when a group of around 400 Kandhas from Ghumsar entered Khurda and are joined by the Paikers and Dalabehra. तेनु पाइक रिबेलियन आरंभ होला 1817 ख्रीष्टाब्द रे. तापर ए जो पाइक रिबेलियन Bexar जगबंधु नेतृत्व रे ओडिसा रा विभिन्न स्थान को व्यापी थिला. मेनली इट वाज लिमिटेड विदिन Khurda, बाणपुर एंड सम पोर्शंस ऑफ पुरी डिस्ट्रिक्ट. Khurda, बाणपुर और पुरी डिस्ट्रिक्ट रो केतोडे अंचल को एटा व्यापी थिला. ए पाइक रिबेलियन को नेकरी जो थिला द्वंद्व गोटे अच्छी वर्तमान जे पाइक रिबेलियन को हमें पूरी रिबेल्स ऑफ पुरी एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ द राजा. पाइक रिबेलियन को हमें वर्तमान जो गोटे आसी द्वंद्व गोटे जे पाइक रिबेलियन को हमें कहवा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस की
सिपाही विद्रोह फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस आमे एबे डिमांड करछन जे पाइक रिबेलियन को आमे कहिया बोली फर्स्ट वार ऑफ इंडिया's इंडिपेंडेंस किंतु सेटा हबो नहीं काहेकि इट वाज ड्यूरिंग 1817 the concept of independence it was not in the minds of the people आमे इंडिपेंडेंट पाइबा इंग्लिश मान अधिक रु सेटा आसी नथिला किंतु 1857 बेलकु ए सेंस ऑफ नेशनलिज्म ए सेंस ऑफ अवेयरनेस ए सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंटर्ड इनटू देयर माइंड्स ना का मन को आसी हेतिला जे आमे एकत्रित भाबरे ब्रिटिश प्रशासन विरुद्ध लढिबा दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टॉलरेट ब्रिटिश रूल एनीमोर ब्रिटिश मान को सही परिबे नाही बोली से माने सिद्ध होइतिले किंतु से माने दे अरोज अगेंस्ट द ब्रिटिश किंतु पाइक रिबेलियन बेलकु से माने केवल जमीदार मान को अत्याचार थिला आ एटा एक लोकलाइज्ड मूवमेंट थिला खोर्धा बाणपुर एवं पुरी जिल्ला रे केतक अंचल एटा ऑल इंडिया बैकग्राउंड नथिला पाइक रिबेलियन नो तेन तो कमी कहि परिबा नै द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया's इंडिपेंडेंस बट इट द फर्स्ट रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश ताको कहि परिबा इंग्लिश मान के विरुद्ध रे प्रथम विद्रोह होछि पाइक रिबेलियन बट इट वाज नॉट द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ताको एभला बारे जस्टिफाई करि परिबो जदि क्वेश्चन ता पडिला एमती पाइक रिबेलियन नो एटा होछि कैरेक्टरिस्टिक्स आ 18 रिवोल्ट रो 1857 नो ए होछि कैरेक्टरिस्टिक्स तो ताको डिफरेंस यदि मार्क करलो ता जानि परिबो काहेकि व्हाई it is the first war of independence and it is not the first war of independence ताको तो जस्टिफाई करिवो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस माने स्वाधीनता पई संग्राम 1857 को से स्वाधीनता पई चिंता करलेनी बिकॉज़ दे आर oppressed they were exploited by the british for last 100 years 1757 1857 से oppressed होई सालेनी तो सेमान चाहउछंती आउ ब्रिटिश अत्याचार को सहीबे नाही तो ताको विरुद्ध संग्राम किंतु 1817 बेलकु से केवल जमीदार मान को अत्याचार शिकार हेतिले सेमानकर पर्सनल डिससैटिस्फैक्शन थिला इंग्लिश मान के विरुद्ध रे बट इट वाज नॉट ए यूनिवर्सल कॉज बिहाइंड टू प्रूव इट एट द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया's इंडिपेंडेंस तिन प्रथम भारतीय शांति संग्राम कहि परिबा नै किंतु प्रथम रिबेलियन प्रथम विद्रोह थिला इंग्लिश मान के विरुद्ध रे बोली हम कहि परिबा आणि बक्सी जगबंधु ही ए जो गरिला वारफेयर एथिरे बक्सी जगबंधु थिले सिद्धहस्त गरिला वारफेयर माने कोन ए जो सर्जिकल स्ट्राइक हम आजकल कहउछंती गरिला वारफेयर लुचि की अटैक करिवा दैट इज गरिला वारफेयर एथिरे से एक्सपर्ट थिले बक्सी जगबंधु he was captured he was kept in Cuttack and he also died in Cuttack in January 24 1829 जो बक्सी बाजार जो अंचल हेजी ताका नाम अनुसार हेजी सेठी तां कटक रे बंदी करा हेतिला एवं 1829 ख्रीष्टाब्द रे ताकर मृत्यु घटिथिला बक्सी जगबंधुकर The Paika rebellion occurred in 1817, 40 years before the revolt of 1857. Paika rebellion directly against the British policies. Policies कौन? Land confiscation, revenue imposition, loss of traditional privilege. किंतु सिपाही म्यूटिन जो थिला एटा केवल लैंड रेवेन्यू को रिलेट करके नथिला दैट इट इज ओनली इंसिडेंट दैट रिलेटेड टू द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और इंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू कि सेतिर पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन सोशल डिससैटिस्फैक्शन रिलीजियस डिससैटिस्फैक्शन ए सबुडा थिला तांका भितरे ता पई से माने यूनाइटेड हेतिले अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल मिलिटरी डिससैटिस्फैक्शन ए जो ग्रीस कैटरीज दैट इज आल्सो अनदर फैक्टर किंतु एभली सेभली कॉज नथिला जाको हमें फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोली प्रूव करि परिबा एटा रीजनल नेचर थिला पाइका रिबेलियन तापर रिवोल्ट ऑफ 1857 ओडिसा रे के जोग देथिले ओडिसा रे के हु प्लेड द मेन रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन ओडिसा सुरेंद्र साय आउ के थिले हां सुरेंद्र साय आउ के थिले चाखी खुंटिया ही इज फ्रॉम पुरी चाखी खुंटिया ए जो रिवोल्ट ओडिसा रे थिला तार कोन कारण कोन थिला एटा सेम रीजन ता सेम ए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स थिला सुरेंद्र साय तो से रिवोल्ट करथिले संबलपुर doctrine of lapse that all India background we see doctrine of lapse that is one of the most important factor economic exploitation British policy drain of wealth that is also another factor social और religious cause थिला जो थिला social custom tradition ताकु से बंद करथिले they interfered on the social customs and traditions of people सती system but सती system सर बैन कर दिथिले it is a tradition it is a custom among the people of India तो ताकु से बैन करथिले एटा उठ थिला आगोट थिला कोन सेमान को जबरदस्त करथिले टू ट्रैवल इन द सी
and they had a belief that they had to lose their caste if they sail in the sea ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ଗଲେ ଯା ଚାଲିଯିବ ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସେମାନେ ଆଘାତ କରୁଥିଲେ so they were united against the British imperialism ତେଣୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଚାକି ଖୁଣ୍ଟିଆ he was from ପୁରୀ ତାପରେ ଘୁମସା ରିବେଲିୟନ ରେ କୋମାନେ ଥିଲେ ଲିଡରशिप ନେଇଥିଲେ ଡୋରା ବିଷୋଇ ଆଉ ଚକ୍ରା ବିଷୋଇ କମଲ ଲୋଚନ ଡୋରା ଆଉ ଚକ୍ରା ବିଷୋଇ and ଚକ୍ରା ବିଷୋଇ ଘୁମସା ରିବେଲିୟନ এটা হচ্ছে কন্ধ ট্রাইব ମାନଙ୍କ ভিতরে ଥିଲା হুইচ ট্রাইব এমতি ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସିପାରେ तार कारण कौन थिला सप्रेशन ऑफ आदिवासी मानकर जो थिला ताका ट्रेडिशन मेरिया सैक्रिफाइस इट हैज कंप्लीटली बैन मेरिया सैक्रिफाइस को बैन करथिले से माने इंग्लिश माने डिलाउसी के समय रे तेनु मेरिया सैक्रिफाइस आपण कोन मेरिया कोन ह्यूमन सैक्रिफाइस बलि दबा ह्यूमन सैक्रिफाइस मेरिया सैक्रिफाइस दे हैड गॉट अ बिलीफ दैट इफ द ह्यूमन ब्लड विल बी गिवन टू द टर्मेरिक फील्ड देन मोर प्रोडक्शन विल बी देयर मनुष्य को मारी रक्त यदि हलदी केरे दे दो रक्त माने हलदी पूरा लाल हबो एवं बहुत हलदी फळिबो सो ए जो ह्यूमन सैक्रिफाइस थिला मनुष्य को मारी हत्या करी ताको रक्त को दबा ता विरुद्ध रे लॉर्ड डेलहाउसी ही आल्सो रेज्ड हिज वॉइस इट वाज कंप्लीटली बैन ता विरुद्ध रे तो सेटा दैट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ द कंधज तो ट्राइबल मानकर जो विश्वास थिला ता विश्वास अगेंस्ट से माने रिवोल्ट करथिले दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर behind the Kandha rebellion, Chakra Visay and Dora Visay. In fact, got a na padi pare khali Chakra Visay, Dora Visay, in which revolt they were involved. एमती करे और तापर हेतिला ट्राइबल रिबेलियन भितरे गोटे थिला चक्रा विषय डोरा विषय सेला कंधा रिबेलियन और होतिला भुइया रिबेलियन इन केउंझर यार के लीडरशिप नहीं थिले हु आर द लीडर्स ऑफ द भुइया रिबेलियन एमती गोटे क्वेश्चन आसी पारे माने प्रीलिम्स कथा कहूची पढिले तमे डिटेल पढिबा किंतु हु टू द लीडरशिप से रत्ना नायक आउ जने के थिले जने रत्ना नायक आउ जने धरणीधर नायक रत्ना नायक जहाँ नारे डीडी कॉलेज केउंझर हिची धरणीधर कॉलेज केउंझर सो दे टुक द लीडरशिप रत्ना नायक आउ धरणीधर नायक तापरे हमें जीवा भूमसा रिबेलियन तो आसिला में पढ़िले मेरिया सैक्रिफाइस अगेंस्ट रे चक्रा विषय डोरा विषय गला तापरे केउंझर रिबेलियन रत्ना नायक आसिला तापरे धरणीधर नायक कार लिगेसी कौन रहिला से जो ट्राइबल रिवोल्ट रो द ट्राइबल अपराइजिंग though ultimately unsuccessful in overthrowing the British rule, were significant expression of resistance against the colonial injustice. They stemmed from a deep-seated desire to protect traditional rights, socio-religious customs, economic stability. तांकर demand सेटा थिला. Leaders like Dora Visay, Chakra Visay, Ratna Naik and Dharanidhar Naik emerged as symbols of this struggle. सेमानका जो रिलीजियस सिस्टम जो कस्टम जो ट्रेडिशन थिला ताकू सेमाने छाड़िबे नाही ता विरुद्ध रे सेमानका संग्राम थिला अगेंस्ट द ब्रिटिश. तापरे आसिला इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन भितरे लॉर्ड मैकले इन 1835 मैकले गोटे प्रपोजल देथिले कोन अर्ली इंग्लिश एजुकेशन पय लॉर्ड मैकले इन्फ्लुएंस माइन्यूट एडवोकेटेड फॉर इंग्लिश एजुकेशन गोटे हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया लॉर्ड मैकले इन 1835 एंड इंग्लिश लैंग्वेज इट गॉट इट्स ऑफिशियल स्टेटस गोटे सरकारी भाषा रा मान्यता दिया गला 1835 रे इंग्लिश लैंग्वेज को लॉर्ड मैकले माइन्यूट in 1835. The first government school was opened at Puri in 1836. The first government English school it was opened at Puri in 1836. तापर आउट अछि कटक इंग्लिश स्कूल established by missionaries in 1823-24 was taken over by government in 1836. 1853 English school was opened in Baleshwar. And Puri school was revived. तापर आसिले Wood's Dispatch, that is the Magna Carta of Indian education. Magna Carta कौन? A revolutionary change in the field of education. कोटे वैप्लविक परिवर्तन आसिला शिक्षा क्षेत्र रे भारतीय शिक्षा क्षेत्र रे Wood's Dispatch. ताका रिकमेंडेशन कौन थिला? Systematic education from primary to university level,
वुड्स रिकमेंडेशन थिला एनकरेजिंग वर्नाकुलर एजुकेशन एलोंगसाइड इंग्लिश वर्नाकुलर एजुकेशन माने रीजनल एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज और प्रमोटिंग ग्रांट्स इन एड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और टीचर ट्रेनिंग और कौन थिला यूनिवर्सिटी इट इज टू कंडक्ट द एग्जाम ओनली यूनिवर्सिटी केवल एग्जाम कंडक्ट करिवो सो दीज आर द प्रोविजंस स्प्रेड ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन वुड्स डिस्कस आल्सो बूस्टेड वर्नाकुलर एजुकेशन देशीय भाषा प्रादेशिक भाषा पर से यथेष्ट गुरुत्व आरोप करथिले तापर आसला हंटर कमिशन सो फार एज एजुकेशन इज कंसर्न इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन Hunter Commission reviewed the progress of education since Woods dispatch, particularly focusing on primary and secondary education. Hunter Commission it pays most emphasis in 1882 on primary and secondary education. How kon thila? It recommended greater encouragement for private school and college. Private school और college ପାଇଁ educational field रे encouragement ପାଇଁ recommend करिथिला Hunter Commission in 1882. अच्छा सही समय रे कोन हेची इन 1909 मसिहा रे जो वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले इट वाज ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोपागेट द स्वदेशी एजुकेशन वर्नाकुलर एजुकेशन देशीय भाषा देशीय साहित्य देशीय पाठ पढ़ा ताकू प्रसार करिया पई से बकुड़ वन विद्यालय सत्यवादी बकुड़ वन विद्यालय ताकू प्रतिष्ठा करथिले इन 1909 मसिहा रे रेवेन्सा कॉलेज हैला 1868 the Cuttack Jilla school it was converted it was upgraded to Revensa college in 1868 प्रथम से Cuttack Jilla school थिला in 1868 रे it became Revensa college तापरे तो खलिकोट कॉलेज महाराज कॉलेज सळवाला वुमेन्स कॉलेज इशू चलला एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ओडिशा रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स प्रिंटिंग प्रेस हाँ फास्ट प्रिंटिंग प्रेस है इन 1837 ता ना है कटक मिशन प्रेस द फास्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1837 इट इज नोन एज द कटक मिशन प्रेस कटक प्रिंटिंग कंपनी इन 1866 बालेश्वर उत्कल प्रिंटिंग कंपनी नेक्स्ट इन 1868 उत्कल हितैषिणी प्रेस 1873 इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बालेश्वर उत्कल प्रिंटिंग कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय फकीरमोहन सेनापति कटक प्रिंटिंग कंपनी फाउंडेड बाय विचित्रानंद दास एस्टैब्लिश्ड बाय फकीरमोहन सेनापति उत्कल हितैषिणी प्रेस आल्सो इन बालेश्वर पुरी भक्तिदायिनी प्रेस एटा पुरी 1874 these are the press these are the newspapers तापर अछि गंजाम प्रेस 1875 तापर मयूरभंज प्रेस 1879 सपोर्टेड बाय महाराजा ऑफ मयूरभंज तापर विक्टोरिया प्रेस इन 1885 so it is through the establishment of press and publication of various newspapers that gradually a sense of nationalism a sense of national consciousness a sense of political awareness entered into the minds of the people of Odisha ओडिसा लोक मानक भितरे गोटे जागरण जातीयता भाव सृष्टि करिया पई जातीय जागरण सृष्टि करिया पई ए जो न्यूज़पेपर आउ थिला इंग्लिश एजुकेशन और जो क्रिश्चियन मिशनरीज सेमानकर भी यथेष्ट रोल थिला ता छडा पब्लिकेशन ऑफ वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स it is through the pages of the newspapers and magazines that the people they became politically conscious they became politically aware ki anchal re ki घटना घटुची how the people are exploited by the British administration they came to know about it so they are all united against British imperialism एगला सब प्रेस सब हितिला तापर पायोनियरिंग पब्लिक कुजीबार पत्रिका होची प्रथम पत्रिका तार पब्लिशर थिले साधु सुंदर दास दिस आर द अर्लीएस्ट रिकॉर्डेड ओडिया न्यूज़पेपर सर्वप्रथम ओडिया न्यूज़पेपर ना कोन कुजीबर पत्रिका ताको जो मैचिंग करे भी क्वेश्चन पडिछि प्रीवियस क्वेश्चन देखिबो ए क्वेश्चन पडिछि तार आंसर मुटा करि पार नथिली कुजीबर पत्रिका ना सुन नथिली केबे मु देथिली दैनिक आशा गोटी थिला शशिभूषण रथ आ गोटे गौरीशंकर रायंकर कोन थिला उत्कल दीपिका मु उत्कल दीपिका मार देथिली किंतु कुजीबर पत्रिका एटा मु जान नथिली Pioneering public Kujibar patrika published by Sadhu Sundar Das these are the earliest recorded Odia newspaper tapare Bodhodayini asila 1861 Bodhodayini the first Odia magazine published from Baleshwar
aim to promote Odia literature and highlight administrative lapse. It marked the beginning of vernacular journalism focused on social reform. बोधो डायरीटा केवल सोशल रिफॉर्म पर बेस करला वर्नाकुलर जर्नलिज्म. तापर आसला उत्कल दीपिका इन 1866 गौरी शंकर राय, launched on August 14 by गौरी शंकर राय and विचित्रानंद दास from कटक प्रिंटिंग कंपनी. तार कौन थिला उत्कल दीपिकार मेन रोल कौन थिला? It played pivotal role in advocating for unification of Odia speaking regions under a single administration, promoting Odia language, Odia भाषा और साहित्य लिटरेचर भाषार और साहित्यर प्रसार करिबा, advocating unification of Odia speaking regions under a single administration. जो माने ओडिया भाषाभाषी अंचल अछंती कथा कहउचंती तांको गोटिया एडमिनिस्ट्रेशन अंडर को आनिबा आ कोन एड्रेसिंग पब्लिक इश्यूज स्पेशली ड्यूरिंग द 1866 फेमिन. एगुरा सब तार मेन इश्यू थिला. अदर पीरियडिकल्स ज्ञान ऋण गोटे बाहर थिला 1849. तापर आसला अरुणोदय, प्रबोध चंद्रिका इन 1856, उत्कल शुभकरी 1869, उत्कल दर्पण संवाद वाहिका 1873, तापर संबलपुर हितश्रेणी 1889, मयूरभंज पाक्षिक पत्रिका 1879. So these are the newspapers. Utkala Prabha 1891. So these are the newspapers and magazines which played a very predominant role in creating a sense of consciousness among the people of Odisha. तापर आसला ओडिया जर्नलिज्म, गौरी शंकर राय एडिटर ऑफ उत्कल दीपिका. तापर आसले फकीरमोहन सेनापति नोन एज फादर ऑफ ओडिया प्रोज, ओडिया भाषार जनक जे होचनी फकीरमोहन सेनापति. सी बाहर कले कोन उत्कल दर्पण और संवाद वाहिका. His work laid the foundation for modern Odia literature and journalism. तांका पर आसले विचित्रानंद दास. विचित्रानंद दास से कोन कटक प्रिंटिंग कंपनी एस्टाब्लिशिंग कटक प्रिंटिंग कंपनी, लॉन्चिंग उत्कल दीपिका तांका से मिसिकरी उत्कल दीपिका से भी पब्लिश करथिले गौरी शंकर राय का सहित. तापर आसले नीलमणि विद्यारत्न एडिटर ऑफ संबलपुर हितैषिणी, नीलमणि विद्यारत्न संबलपुर हितैषिणी न्यूज़पेपर. He played a significant role in addressing regional issues and supporting the Odia language movement in Western Odisha. पश्चिम ओडिशा रे संबलपुर अंचल रे ओडिया भाषार जो आंदोलन थिला ताकू त्वरान्वित करथिले कि ना नीलमणि विद्यारत्न. तांका परे आउ जण थिले साधु सुंदर दास. ही पब्लिश द कुजीवर पत्रिका जो कहली ओडिया न्यूज़पेपर कुजीवर पत्रिका मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ ओडिया जर्नलिज्म. रोल ऑफ प्रेस से बेले संवाद पत्र छडा छापाखाना गुड़ाकर यथेष्ट भूमिका थिला. फेमिन कवरेज करथिले 1866 रो इंपैक्ट कोन थिला. लैंग्वेज मूवमेंट भाषा आंदोलन को से त्वरान्वित करथिले. सोशियो पॉलिटिकल एसोसिएशन सब बढ़ाइथिला. उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा 1867, उत्कल उल्लासिनी सभा 1868 तारि माध्यम रे लोक मानक भितर भाषागत सचेतनता से सृष्टि करथिले. इट इज थ्रू द पब्लिकेशन ऑफ वेरियस न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स that they brought about a sense of nationalism, a sense of unity or consciousness among the people. तेनो पॉलिटिकल कल्चरल रेनेसांस आनिथिले, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आनिथिले, एजुकेशनल डेवलपमेंट हिथिला, फाउंडेशन फॉर मॉडर्न जर्नलिज्म एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ओडिया आइडेंटिटी. हम जाको आजिकली हम ओडिया अस्मिता बोली कहउछंदी, ओडिया आइडेंटिटी सेते बेले भी थिला. देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश द ओडिया आइडेंटिटी, ओडिया अस्मिता जोटा हम वर्तमान सर्वोत्तोलन करछंती. तबर ग्रेट फेमिन इन व्हिच ईयर 1866 ताको 9 अंक बोली व्हाई इट इज नोन एज 9 अंक. 9 अंक काई कहउची, व्हाई इट इज नोन एज 9 अंक. गजपति दिव्य सिंह देवकर अंक, अंक माने कोन ईयर, अंक माने ईयर माने वर्ष. ताका राजत्वर नवम वर्ष रे 9 अंक रे हिथिला. गजपति दिव्य सिंह देव 9 अंक दुर्भिक्ष बोली लिखुची. गजपति दिव्य सिंह देव द टिटुलर किंग ऑफ पुरी occurred in the 9th regnal year of the Gajapati Divya Singh Dev. एबे तो दिव्य सिंह देव असेंसी नो. दिव्य सिंह देव it is not his name, it is his title. राजा का ना कोन पुरी राजा जो अछन दिव्य सिंह देव ना सुनजो तो पुरी रे गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ताका ओरिजिनल नेम कोन दिव्य सिंह देव. देखो सेते बेले दिव्य सिंह देव थिले 9 को दिव्य बेले पुरी रे राजा पुर लिखिची टिटुलर किंग ऑफ पुरी 1866 और ये भी तो दिव्य सिंह देव अछंती. So Divya Singh Dev is not the name, it is the title, designation. Name ए राजा का नाम है कमर नवदेव. तांकर ओरिजिनल नेम कमर नवदेव, पर दिव्य सिंह देव इट इज टाइटल. तांकर जे अभिषेक हैला सेते तांकर नाम परिवर्तन करा हिस दिव्य सिंह देव. सिमिलरली सो दिव्य सिंह देव तांकर राजत्वर नवम वर्ष तेणु 9 अंक बोली कहउथला.
नौकर कौन कारण थिला सिक्स डिजास्टर क्लाइमेटिक प्रिकर्सर द ड्राउट ऑफ 1865 दुर्भिक्ष देखा देथिला 1865 66 मसिया रे जो हेला आ कौन थिला एनवायरमेंटल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर दैट लेड टू द ड्राउट ऑफ 1866 1866 केते लोक मरथिले कहि परिबो से समय रे 1866 रे ए जो नौका दुर्भिक्ष रे से समय 1866 रे केते लोक प्राय मरथिबे ये कोन 9 अंक दुर्भिक्ष बोली लिखि दिसिन पूरा केते लोक मरथिबे 10 लाख सेते बेले 10 लाख लोक आउ कौन इम्पोर्टेंट रहिला क्वेश्चन उत्कल ब्रह्म समाज हाँ ये जो हरनाथ भट्ट एमती पढ़े हरनाथ भट्टाचार्य 1869 फॉर्म द उत्कल ब्रह्म समाज इन कटक उत्कल ब्रह्म समाज के प्रतिष्ठा करथिले एटा एक क्वेश्चन आसी पारे उत्कल ब्रह्म समाज ओरिजिनली फाउंडेड बाय राजा राममोहन राय इन 1828 देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज अच्छा फकीरमोहन सेनापति कौन थिला जो साहित्यिक कृति सब कौन थिला 6-8 गुण थिला आ कौन थिला मामू थिला प्रायश्चित लक्ष्मण सब थिला हां मामूला राधानाथ राय एथि किछि गोटे क्वेश्चन आसी पारे एमती भी क्वेश्चन आसी पारे राधानाथ राय हां राधानाथ राय कौन कौन लिखचंती चिलिका तारे महायात्रा चंद्रभागा केदार गौरी हैला एमती भी क्वेश्चन आसी पारे महिमा धर्म किए प्रचार करथिले महिमा धर्म किए प्रचार करथिले महिमा धर्म रो मुख्य स्थान कोठी ओडिसा रे हां जोरंदा 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 ढेंकानाल जिला महिमा धर्म प्रतिष्ठाता किए हां ना भीम भाई तो भूल ही गला भीम भाई महिमा धर्म प्रतिष्ठा करनथिले फॉलोअर थिले महिमा गोसाई एटी को लिखि थी जे महिमा धर्म महिमा गोसाई भीम भाई तार थिले ही एक्सेप्टेड हे फाउंडर महिमा गोसाई द फाउंडर ऑफ महिमा धर्म महिमा गोसाई एटा गोटे क्वेश्चन की पढ़ी कि को देखि कि एमती महिमा गोसाई ऊपर क्वेश्चन टा महिमा गोसाई ताकर कोन मेन प्रिंसिपल कोन थिला जो महिमा धर्म से शून्य को पूजा करथिले शून्य संहिता आमे गोटे मूर्ति को पूजा करछंती दे डिड नॉट बिलीव ऑन आइडल वर्शिप हैला शून्य पूजा सेटा महाशून्य गॉड इज एवरीवेयर आमे ताको गोटे मूर्ति रखे हम ताको लिमिट कर दो विद इन ए स्टैच्यू और विद इन एन आइडल एसो महिमा धर्म रे विश्वास थिला challenging existing orthodoxies from within Odia cultural landscape. भीम भाई तार फॉलोअर थिले से लिखिचंती स्तुति चिंतामणि लिखिचंती ब्रह्म निरूपण गीता लिखिचंती निर्वेद साधना लिखिचंती चौतीसा मधुचक्र लिखिचंती आद्यंत गीता अष्ट बिहारी गीता ना अष्टक बिहारी गीता बाय भीम भाई लिखिचंती ए सब गुडाको हिज मेजर क्रिएशंस महिमा धर्म मेन प्रिंसिपल होची मोनोथेइज्म बिलीफ इन वन गॉड और पॉलीथेइज्म बिलीफ इन डिफरेंट गॉड्स तेन मोनोथेइज्म रे माने विश्वास करथिले निराकार गॉड इज फॉर्मलेस गॉड इज अनादि ताकर कोनोसी ना बिगिनिंग अछि ना एंड अछि गॉड इज एवरीवेयर भगवान एठु आरंभ इट शेष के सेमते नाही अनादि तंको होतला
आ परम ब्रह्म इनडिस्क्राइबेबल अलेख अलेख माने आम वर्णना करिपरिबा नहीं भगवान को अवर्णनीय ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर सबुठी से प्रेजेंट अछंती निराकार ताकर किसी फॉर्म नहीं फॉर्मलेस और नॉन डुअलिज्म अद्वैत गॉड इज वन ओमनिसेंट ओमनीपोसेंट एंड ओमनीप्रेजेंट सर्वव्यापी सर्वज्ञ सनातन सबुआडे भगवान अछंती एई जो विश्वास नॉन डुअलिज्म अद्वैत थ्योरी ऑफ क्रिएशन द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय द अलेख प्रभु अलेख ही प्रभु ही ताकि तैयारी करछंती अच्छा रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप रे सनक विश्वास नथिला which religious faith did not believe on idol worship which of the following religious faith एम तीन चार ना देथिबो जैनिज्म बुद्धिज्म महिमा धर्म गोटे श्री चैतन्य एम लिखथिबो तेनु रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप बा थ्योरी ऑफ क्रिएशन रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा ताकर विश्वास नथिला ऑपोजिशन टू कास्ट सिस्टम इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड जेंडर समस्ते दे आर डोर इज ओपन समस्ते सितिर अंशग्रहण करि परिबे तेणु जाति धर्म जाति प्रथा कौन सी सब नथिला यूनिवर्सल ब्रदरहुड वसुधैव कुटुंबकम ए जो कांसेप्ट भूमि भई लिखिले प्राणी को आरत दुख अपरमित देखु देखु केबा सहु मो जीवन पछन अर्के पड़ते जगत उद्धार हेउ लेट माय लाइफ रॉट इन हेल बट लेट द वर्ल्ड बी रिडीम्ड एटा कोड लिखाई छी मते कहलो या आपटे क्वेश्चन अछि an epithet it is there on the UN General Assembly in the building of UN General Assembly यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो बिल्डिंग अच्छी कोठी अछि यूएन जनरल असेंबली हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क ना कोठी अछि यूएन हेडक्वार्टर यूएन जनरल असेंबली जो मेन बिल्डिंग से बिल्डिंग रे इनस्क्राइब करा हिची ना इंग्लिश रे लेट माय लाइफ रॉट इन हेल से लिखा हिची लेट माय लाइफ go to hell but the whole world be redeemed से लेखाटा कहार बोली अछि मु पचारली सेठी ना प्रश्नटा होची आको रिलेट करि करी जे हु इज इंडियन राइटर उनको लेखा सेठी अछि इनस्क्राइब करा हिची क्यों भारतीय लेखकंकर लेखाटे कोटेशन टे सब कंट्री रा जो 193 मेंबर कंट्रीज यूएन मेंबरशिप सब कंट्री रा गोटे कोटेशन अछि आ गोटे कोटेशन इंडिया रा भी अछि से इंडिया रा से लोक किए समस्त आखि बुझी कहिबे रविन्द्रनाथ टैगोर ताकर कोटेशन टाइ थिबो प्रकृति रे भीम भयंकर जोटा प्राणी कार तो दुख प्रमित देखु देखु केबा सब मो जीवन वचन अर्के पर जगत उद्धार हेउ लेट माय लाइफ गो टू हेल बट द होल वर्ल्ड में सर्वाइव एटा तापरे सत्संग एंड कॉमन मेला एटा तो अछि महिमा गोसाईंकर फिलोसफी ऑफ वसुधैव कोन अद्वैत ब्रह्मवाद सेथिरे इंपोर्टेंस ऑफ गुरुंकर थिला स्पिरिचुअल टीचर महिमा धर्म तापरे आसिला ओडिशा यूनिफिकेशन ओडिशा जे ओडिशा यूनिफिकेशन में को ऑर्गेनाइजेशन रो मेन रोल थिला उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा कोठी हेतिला एवं तार मेन काम कोन थिला उत्कल भाषा उद्दीपनी समाज हेतिला तार मेन अचीवमेंट कोन थिला देन उत्कल सम्मेलनी हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्कल सम्मेलनी के प्रतिष्ठा करथिले के गोपबंधु गौरीशंकर मधुसूदन दास when it was constituted in 1903 उत्कल सम्मेलनी 1903 1903 मसीहा रे एगुड़ा टिके टिके मन रखिबो खाली आ उत्कल सम्मेलनी गोटे पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन एलंग विथ इंडियन नेशनल असेंबली जेमति जातीय स्तर रे थिला भारतीय जातीय कांग्रेस सेमति उत्कल सम्मेलनी ओडिसा रे थिला तार रोल थिला कोन टू मेक ओडिशा ए सेपरेट प्रोविंस ओडिशा को गोटे स्वतंत्र प्रदेश मान्यता दिया जिवो ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेश मान्यता पाई दाबी उपस्थापन कराइथिला कोठी किस दाबी उपस्थापन करथिले टू मेक ओडिशा ए सेपरेट प्रोविंस हु पुट फॉर द डिमांड फॉर मेकिंग ओडिशा ए सेपरेट प्रोविंस एंड वेयर कृष्णचंद्र गजपति कोठी सेकंड ना फर्स्ट केबे हिला 1930
1930 मसीहा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेतिला लंडन रे सेठी ओडिशा को गोटे स्वतंत्र प्रदेश मान्यता दिया जाऊ ए दाबीटा उपस्थापन करथिले महाराजा कृष्णचंद्र गजपति। कोडिकार महाराजा से पारलाखी मुंडी गंजाम कोठी आ गोटे कोन कोन क्वेश्चन खाली देखुची हंटर कमिशन तो आसिले 1882 वाला तापरे उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस 1903 उत्कल सम्मेलन जाके हमें कहउछंती 1903 मसिया रे गठन हेतिला। द फर्स्ट सेशन ऑफ द उत्कल सम्मेलन इट वाज हेल्ड वेयर उत्कल सम्मेलन केबे हेतिला प्रथम अधिवेशन 1903 मसिया रे हेतिला कटक रे हेतिला कटक रो ईदगा पडिया रे हेतिला। तापर हमें आसीबा ओडिसा रो फ्रीडम मूवमेंट को सो फार एज द फ्रीडम मूवमेंट इज कंसर्न गांधीयन एरा मेनली 1919 टू 1947 गांधी फर्स्ट टाइम केबे आसिले ओडिसा को हैं सो फार एज फ्रीडम मूवमेंट इज कंसर्न in Odisha Gandhian role Gandhian movement that is the non cooperation movement then the salt satyagraha and finally is the Kudna movement non cooperation movement Odisha रे केबे हितिला 1919 जोरा आरंभ हितिला 1920 रे 22 non cooperation movement it is due to the impact of the Rowlatt Act आ गोटे कोन थिला जालियानवाला बाग मैसेकर रावलाट आईन और जालियानवाला बाग हत्याकांड तारी विरुद्ध रे असहयोग आंदोलन आरंभ होइतिला नॉट टू कोऑपरेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली राजनीतिक असहयोग और अर्थनैतिक असहयोग बोली गांधी डाकर देथिले आह्वान देथिले। राजनीतिक असहयोग कोन नॉट टू जॉइन द ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बॉयकॉट द ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस नॉट टू जॉइन द ब्रिटिश कोर्ट्स एंड ऑफिसेस नॉट टू बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स ब्रिटिश जिनस के किनिबा नाही कोर्ट कचे वजन करिवा स्कूल कॉलेज जिबा नाही then they will be forced to leave our country immediately political non cooperation economic non cooperation and when the movement it is going on throughout the country तार impact मध्ये ओडिसा रे पडिथिला ओडिसा रे भी non cooperation movement it also reached its highest point of development with the directions of Mahatma Gandhi in different parts of the state the people they also did not join the educational institutions the students they did not join the educational institutions the people they also did not join the offices they boycotted the courts they boycotted the offices and where the British goods are sold जोडी विदेशी जिनिस बिक्री होतिला ता सम्मुख रे गण धारणा दउतिले प्रोटेस्ट करतिले विक्षोभ करतिले बट इन ए वेरी पीसफुल एंड नॉन वायलेंट वे किंतु हठात कोन हैला ना फेब्रुवारी 5 1922 मसिया रे से माने चोरी चोरा रे गोटे इंसिडेंट हैला जोथरे कि 22 पीपल दे आर किल्ड चोरी चोरा police station it is completely burnt and inside the police station 11 police personnel not 22 11 police personnel they are completely burnt and Gandhi he suspended the movement तो गांधी से आंदोलन को स्थगित रखिथिले सेही भली आंदोलन ओडिसा रे मध्ये चलिथिला तार नेतृत्व नेथिले उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास तार नेतृत्व नेथिले गोपबंधु दास जोग देथिले जो नागपुर सेशन ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी नागपुर सेशन जोग देथिले गोपबंधु दास ओडिसा रो बहुत देथिले भागीरथी महापात्र जगबंधु सिंह जदुमणि मंगराज मुकुंद प्रसाद दास निरंजन पटनायक ए सब जॉइन करते हरिकृष्ण महताब दे पार्टिसिपेटेड द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस व्हिच फॉर्मली अडॉप्टेड द नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन तेनु ओडिसा रे जो उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी गठन होइतला से समय नागपुर कांग्रेस परे तारा प्रेसिडेंट थिले गोपबंधु दास और वाइस प्रेसिडेंट थिले एकराम रसूल तापर सेक्रेटरी थिले भागीरथी महापात्र जॉइंट सेक्रेटरी थिले ब्रजबंधु दास तो तांकर नेतृत्व रे ओडिसा रे आरंभ होइतला एई असहयोग आंदोलन उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस गठन कराइतला। गांधीजी's first visit to Odisha in March 1921 on 23rd March 1921 मार्च 23 1921 रे ए असहयोग आंदोलन समय रे ओडिसा रे असहयोग आंदोलन को कार्यकारी करिया पे महात्मा गांधी प्रथम थर पे ओडिसा भ्रमण रे आस्ते प्रथम थर पे टोटल आछन से 8 टाइम्स 8 थर आछन कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही केम ऑन 23rd March 1921 he addressed the people on the sands of काठजोड़ी रिवर काठजोड़ी नदी वाली रे गोटे सभा आयोजन कराइतला सेठी महात्मा गांधी भाषण देथिले सेते ताक सहित कस्तूरबा थिले उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास थिले आ ओडिसा रो रमादेवी मध्ये जोग देथिले ताक सहित कस्तूरबा रमादेवी आन उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास महात्मा गांधी दउथिले गुजराती भाषा रे भाषण ताको ओडिया रे ट्रांसलेट करथिले उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास एट दैट टाइम ऑन द shore on the sands of काठजोड़ी रिवर काठजोड़ी नदी वाली रे 50,000 लोक सेही समय जोग देथिले 1921 मसिया रे गांधी करथिला फर्स्ट विजिट
गांधी टार्गेट कौन थिला 1 लाख कांग्रेस मेंबर को जोगाड़ करा जीवो लक्षे कांग्रेस कर्मी जोग देबे डिस्ट्रीब्यूट 1 लाख चरखा आम यदि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आम यदि कोऑपरेट करबा नै इंग्लिश मानक सहित आम निजे सूता काटिबा निजे लुगा तैयारी करी पिंधिबा आम कहीं ब्रिटिश डिपेंड करबा सेति गांधी कहते कौन ना 1 लाख चरखा स्पिनिंग व्हील्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कलेक्ट 3 लाख फॉर द तिलक स्वराज फंड आंदोलन कार्यकारी करबा अर्थर आवश्यकता अछि तेणु तिलक स्वराज फंड इट वाज आल्सो कन्स्टिट्यूटेड तिलक स्वराज फंड गठन कराइथिला गांधीकर उद्देश्य थिला जे 3 लाख टंका कलेक्शन करा जिवो तिलक स्वराज फंड पई 1 लाख कांग्रेस मेंबर को जोगाड़ करा जिवो टार्गेट फॉर ओडिशा ओडिशा रे लाख लोक जोग देबे कांग्रेस मूवमेंट रे बा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रे आ कोन डिस्ट्रीब्यूट 1 लाख चरखा लाख चरखा से मानको प्रदान करा जिवो आ हरिकृष्ण महताब नित्यानंद कानून नवकृष्ण चौधरी और राजकृष्ण बोस दे टुक द लीडरशिप एमाने नेतृत्व नैथिले ए आंदोलन को परिचालना करिया पई गोपबंधु दास गोपबंधु चौधरी से कोन करथिले ही रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर से डेप्यूटी कलेक्टर विदेशी जिंस वर्जन करिया विदेशी चाकरी छाडी देबा से भी डेप्यूटी कलेक्टर पोस्ट छाडी देथिले भागीरथी महापात्र महेंद्रनाथ वर्मा और अच्युतानंद पुरोहित से माने लीगल प्रैक्टिस जो वकिलाती से वकिलाती छाडी देथिले पुलिस चाकरी छाड़ी देथिले माने रिजाइन करले सुरेंद्रनाथ दे और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हनीफ से माने दे आल्सो रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब्स स्कूल कॉलेज से वर्जन करा हेतिला कनिका पिजेंट एजुकेशन से समय 1922 मसीह रे ए असहयोग आंदोलन फल रे तापर गांधी अनेक समय ओडिशा भ्रमण आसे टोटल 8 थर पुन परे आसे 1925 और 27 मसीह रे किंतु इन द मीन टाइम गोपबंधु दास ही डाइड इन 1928 तेणु कार्यकारी करने ओडिशा को गोटे स्वतंत्र प्रदेश को दबा भारतीय स्वाधीनता संग्राम को ओडिशा रे कार्यकारी करने आ गोपबंधु नथिले से एक्सपायर करिगले 17 जून 1928 मसीह रे एट द एज ऑफ ओनली 52 तांका तापर आरंभ होला ओडिशा रे सिविल डिसोबीडियंस जाका हम कहू लवण सत्याग्रह गांधी लवण सत्याग्रह आरंभ करथिले ऑन 5th ऑफ ऑन 12th ऑफ मार्च 12 तारिख रे साबरमती रु दांडी पर्यंत 240 माइल एलंग 78 डेलीगेट्स 78 जन प्रतिनिधि को संगे नहीं गांधी बाहर लवण सत्याग्रह कहीं लवण सत्याग्रह आरंभ करथिले सिविल डिसोबीडियंस टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन ए वेरी पीसफुल एंड नॉन वायलेंट वे बिकॉज सॉल्ट वाज मोनोपोलाइज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट इट इज मोनोपोलाइज्ड बाय द ब्रिटिश इंग्लिश मानक द्वारा लूण मारिवा को एक एकचाटे व्यवसाय रे परिणत करा गला भारतीय मानक इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया कोस्टल रीजन्स वेस्ट बेंगल आरंभ करी एपटे गुजरात बॉम्बे पर्यंत समुद्र उपकूलवर्ती अंचल से लोक लूण मारी जीविका निर्वाह करथिले बट मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट इट वाज मोनोपोलाइज्ड बाय द ब्रिटिश ता विरुद्ध रे गांधी आरंभ करथिले सिविल डिसोबीडियंस बा आईन अमान आंदोलन टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ 78 प्रतिनिधि को नहीं गांधी आरंभ करथिले मार्च 12 तारिख रु मार्च 12 रु एप्रिल 6 टोटल 20 दिन तक यात्रा थिला ना 24 दिन तक यात्रा 241 माइल दे कवर्ड विद इन 24 डेज फ्रॉम 12th ऑफ मार्च टू 5th ऑफ अप्रैल 6th ऑफ अप्रैल से माने दांडी रे समुद्र पानी लुण मारिथिले सेमती ओडिसा रे से 6th अप्रैल आरंभ होइतिला सॉल्ट सत्याग्रह तार नेतृत्व नैथिले गोपबंधु चौधरी और गोपबंधु चौधरी ही वाज अरेस्टेड नियर केंद्रापड़ा एट चांदोल ओडिसा रे सॉल्ट सत्याग्रह मुख्य जगह थिला कोठी ना इंचुड़ी इन बालेश्वर से माने बाहरी थिले कटक रु बालेश्वर जिया पई किंतु अधा बाटरे गोपबंधु उनको अरेस्ट कर निया गला एंड इट वाज लेड बाय आचार्य हरिहर गोपबंधु को अरेस्ट करा पर आचार्य हरिहर ही टुक द लीडरशिप इंचुड़ी बालेश्वर दैट आर द प्लेस वेयर द सॉल्ट सत्याग्रह इट वाज स्टार्टेड बाय आचार्य हरिहर गोपबंधु चौधरी आरंभ करथिले ऑन 6th अप्रैल गोपबंधु चौधरी तापर आचार्य हरिहर 21 सत्याग्रह बिगन देयर मार्च फ्रॉम स्वराज आश्रम टू कटक गोपबंधु चौधरी अरेस्टेड ऑन 8th अप्रैल एट चांदोल आचार्य हरिहर टुक द लीडरशिप ऑन 12th अप्रैल 12 अप्रैल ले से माने सत्याग्रही माने इंचुड़ी रे पहुंचिले एवं दे मैन्युफैक्चर सॉल्ट ऑन 14th अप्रैल सेठी आचार्य हरिहर सुरेंद्रनाथ दास वर अरेस्टेड इंचुड़ी सत्याग्रह ताको हमें कहउछोंती द्वितीय दांडी बोल द सेकंड दांडी इट इज नोन एज इंचुड़ी इन बालेश्वर जिला रे इंचुड़ी को द्वितीय दांडी बोली कहउछि दांडी कोन जोटी महात्मा गांधी लुण मारिथिले गुजरात उपकूल रे साबरमती रु दांडी पर्यंत यात्रा थिला 241 माइल से को कहा जाउछि द्वितीय दांडी बोली कहा जाउछि ए जो इंचुड़ी इट इज नोन एज सेकंड दांडी सेथिरे मध्ये वुमेन लीडर मानक भीतर रमा देवी मालती देवी दे आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह एट इंचुड़ी गोपबंधु चौधरी सहित रमा देवी और मालती चौधरी
बा रमादेवी चौधरी से जोग देते। सल्ट सत्याग्रह पुणी अलग जगह ओडिशार आउ कोठी होइतिला, बालेश्वर सार्थर होइतिला, कुजंग होइतिला, कटक पुरी डिस्ट्रिक्ट कुहुडी, सिंहेश्वरी लाट्रा, गंजाम हुमा, these are the places where the salt satyagraha also took a different form. कौन नेतृत्व नहीं थे? बालेश्वर नेतृत्व नहीं थे मथुरा मोहन बेहरा, करुणाकर पाणिग्राही, नीलांबर दास, सेमती कुजंग रे रानी भाग्यवती पट्टमहादी ऑफ कुजंग, सेमती पुरी जिले रे ऑर्गेनाइजर नीलकंठ दास एंड जगन्नाथ रथ, सेमती गंजाम जिले रे विश्वनाथ दास, निरंजन पट्टनायक एंड सरला देवी, दे टुक द लीडरशिप ऑफ द सल्ट सत्याग्रह। तापरे सल्ट सत्याग्रह पर परवर्ती थिला हमर जो आंदोलन सी होची क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 इंचुडी डे जो 13 अप्रैल सन सेलिब्रेट करछंती। आउ थिला तापर असला क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ आंदोलन, भारत छोड़ आंदोलन जोटा आरंभ होता अगस्त मास 8 तारिख, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन इट वाज पास्ड इन बॉम्बे, अकॉर्डिंगली द क्विट इंडिया मूवमेंट इट वाज स्टार्टेड ऑन 9 अगस्त। 8 अगस्त रे भारत छोड़ आंदोलन प्रस्ताव ग्रहण कराइथिला एवं 9 अगस्त रे भारत छोड़ आंदोलन आरंभ होइतिला। सेतिरे ओडिसा रो के जोग दैथिले? हरिकृष्ण महताब और द सोल लीडर हु प्रेजेंट एट द बॉम्बे एआईसीसी सेशन। बॉम्बे रो जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी सेशन बॉम्बे अधिवेशन होइतिला और ओडिसा रो दैथिले हरिकृष्ण महताब जोग दैथिले। ताका सहित मते थिले सुरेंद्रनाथ द्विवेदी, किंतु हरिकृष्ण महताब ही वाज अरेस्टेड, ही वाज केप्ट इनसाइड द अहमदनगर फोर्ट। किंतु ओडिसा रे ताको कार्यकारी करथिले जो माने गुप्त रे रही की कार्यकारी कले, सेमानक भितर थिले सुरेंद्रनाथ द्विवेदी मुख्य थिले। सेही भली हिज मेन रोल वाज इन कटक, गुप्त रे लुचि रही सब आंदोलन को परिचालना करथिले। एई जो भारत छोड़ आंदोलन ओडिसा रा कोरापुट जिल्ला रे मध्य एक भीषण रूप ग्रहण करथिला। कोरापुट रे आदिवासी मान नेतृत्व नेति लक्ष्मण नायक, ही वाज अरेस्टेड ऑन ए फॉल्स केस। ताको गोटे मिथ्या माने आरोप करा हितिला, दोषारोप करा हितिला जे गोटे फॉरेस्ट गार्ड को रामैया बोली ताको मारि दैछन बोली कि, बट ही वाज नॉट इन्वॉल्वड इन दैट केस। हाउएवर ही वाज केप्ट इनसाइड द कोरापुट जेल एंड ही वाज फाइनली एग्जीक्यूटेड इन बरहमपुर। तेनु बरहमपुर जेल ले लक्ष्मण नायक को फांसी दिया जायतिला। सेटा होची 1943 मसिया मार्च 29। जी रामैया ता ना होची जी रामैया। ता छडा आदिवासी अधिष्ठित पापड़ाहांडी अंचल जोटा मालकानगिरी जिलार पापड़ाहांडी नवरंगपुर से अंचल रे मध्य एहा एक भयंकर रूप ग्रहण करथिला। क्विट इंडिया मूवमेंट। भंडारी पोखरी गोटे पुलिस गुली चालना हेतिला, इरम रे गोटे फायरिंग हेतिला एंड इरम मासाकर को रक्त तीर्थ बोली कहउचंती। खैराडीही रे फायरिंग हेतिला, धामनगर फायरिंग हेतिला, भंडारी पोखरी इंसिडेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। रक्त तीर्थ इरम बोली कहउछ। ऑन 28 September 28 people are killed in that incident. Immediately firing are resorted to, जते लोक माने सभा समिति करउचंती लोक मान ऊपर इमीडिएटली गोली चालना कराइतिला। जालियानवाला बाग रे जेमती हितिला से भली घटना घटितिला इरम ठारे। तेन ताको कहउची सेकंड जालियानवाला बाग, द्वितीय जालियानवाला बाग बोली कहजबा रक्त तीर्थ इरम बोली कह जाउची। तेन ए सब थिला 1942 मसियार भारत छोड़ आंदोलन। ओडिसा रे विभिन्न स्थान रे ए आंदोलन कार्यकारी हेतिला। तापर असला प्रजामंडल मूवमेंट। प्रजामंडल मूवमेंट होची जो सब थिला गजरात राज्य ताको ओडिसा सहित मिश्रण करा जिवो। 26 टा गजरात राज्य थिला ताको ओडिसा सहित मिश्रण करा हितिला। प्रथम राज्य की थिला? को गजरात राज्य प्रथमे मिसी थिला ओडिसा सहित? नीलगिरी। गजरात राज्य मिश्रण एमती गोटे थोड़ी गोटे क्वेश्चन भी आसी पारे, हम तो पढ़िबा डिटेल। कैटेगरी ए रे थिला 11 टा राज्य, कैटेगरी बी रे 12 टा, कैटेगरी 3 रे थिला 3 टा, टोटल 26 गजरात स्टेट्स। जो ढेंकानाल में जो गजरात आंदोलन थिला, ढेंकानाल एथिरे के शहीद हितिले कहला? ढेंकानाल 1938 हु वाज द यंगेस्ट मार्टिर ऑफ ओडिशा। ओडिसा रो सबठारु कम बयस रे शहीद किए हितिले? बाजीराव इन 1938। बाजीराव ही बिकेम द शहीद, ही बिकेम द मार्टिर इन पुलिस फायरिंग, ही डाइड। तो ढेंकानाल नीलगिरी 1938 प्रजामंडल मर्ज हेता। फास्ट होची नीलगिरी, इट वाज मर्ज विद इन ओडिशा। को राज्य मिसी पारला नहीं ओडिशा सहित? कैटेगरी ए रे थिला ए सब राज्य
ढेंकानाल केउंझर मयूरभंज बामंडा बौद्ध ये सब गला कैटेगरी 2 रे आठगढ़ बड़म्बा नरसिंहपुर आठमल्लिक ये सब गला कैटेगरी 3 रे पालहड़ा रणपुर तिगिरिया किंतु ओडिशा सहित कोटा मिसी पाला नहीं जोटा बिहार को चली गला कि कहि परिबो सढ़ई कला और खरसुआ सढ़ई कला और खरसुआ दे आर नॉट मर्ज्ड विद इन ओडिशा अच्छा आ गोटे कौन इंपोर्टेंट जिनस थिला मेजर बेजल गेट हत्याकांड गोटे रणपुर थिला 5 जनवरी 1933 बेजल गेट हत्याकांड केबे हितिला एमती गोटे क्वेश्चन आसी पारे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स सरी कला खर्चुआ एटा रही गला ओडिशा सहित मिसी पारला नहीं अच्छा एते तो बही क्वेश्चन अछि ना एमती ए जो मॉडल क्वेश्चन अछि कि लास्ट को देखिलो नहीं अच्छा हो এদিকে খাওয়া জিও ଆଉ କଣ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ आर्ट आर्किटेक्चर आर्ट एंड आर्किटेक्चर এটা তো টেম্পল আর্কিটেক্টর জানিছে পড়াইছি ওথর ओडिशान टेम्पल आर्किटेक्चर कलिंगन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहूची तार मेन सब अच्छी स्टेजेस कौन नगर स्टाइल अच्छी नॉर्थ इंडियन स्टाइल अच्छी द्राविड स्टाइल साउथ इंडियन स्टाइल आ गोटे है कौन बेसर जोटा कि बोथ नॉर्थ इंडियन स्टाइल एंड साउथ इंडियन स्टाइल तो मिसिक बेसर स्टाइल मंदिर सब मेनली ओडिशा रे देखा जाउची नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आउ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द टेम्पल कौन से अच्छी प्रथम अच्छी भोग मंडप तब नाट मंडप देन जगमोहन देन गर्भगृह है तो कखर देउलटा कौन पीढ़ा देउल कौन रेखा देउल शिखर गोटे अच्छी कैरेक्टराइज्ड बाय ए टॉल कर्विलियस स्टाइल शिखर पीढ़ा देउल कौन पिरामिडिकल स्टाइल आ खकर देउल कौन ए जो माने आम जो कहते कखारू बोली कहते ओडिशा ओडिया टिपिकल ओडिया टर्म कखारू बोली से खखर स्टाइल कौन टेम्पल गोटे कहला एग्जांपल कौन अच्छी तुम पाखे बैताल देउल इन भुवनेश्वर दैट इज द एग्जांपल ऑफ खखर देउल खखर टेम्पल खखर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर तापर त्रिरथ पंचरथ सप्तरथ ये जान लो तार बेस थी त्रिरथ माने ता बेसटा से बेला त्रिरथ स्टाइल में तीनोटी माने साइड्स ऑफ द टेम्पल पंचरथ हां त्रिरथ पंचरथ सप्तरथ से बेला सातटा स्टाइल टेम्पल आ पंचायतन हैला जो चारिपटी चारटा मंदिर मझिरे गोटे टेम्पल राजारानी टेम्पल दैट द बेस्ट एग्जांपल जगन्नाथ टेम्पल ये तो गला सन टेम्पल पिरामिड स्टाइल पढ़िले तो कौन कौन बही सब लिखुं किए किए ओडिया लिटरेचर संस्कृत लिटरेचर बलराम दास जगन्नाथ दास सब लिटरेरी क्रिएशंस से बुक्स एंड ऑथर्स भितर टिके मैचिंग पड़ी जाई पारे को ऑथर कौन कौन बही लिखिसंती
तापरे ओडिशार पेंटिंग भितर आसीबो ए जो पट्टचित्र ऊपर एक क्वेश्चन आसी पारे व्हिच इज नोन एज द शिल्पी ग्राम व्हिच प्लेस इन ओडिशा एटा पट्टचित्र शिल्पी ग्राम कोटा रघुराजपुर गोटीपुआ डांस कौन ओडिसी डांस कौन एमती गोटीपुआ भी पले दैट रघुराजपुर इट इज आल्सो फेमस फॉर गोटीपुआ डांस पुनी गोटीपुआ डांस टा कौन द मेल दे इन द फॉर्म ऑफ वुमेन दे परफॉर्म द ओडिसी सेठी गोटीपुआ रे पुओ पिला माने सीधे डांस करती गोटीपुआ नृत्य को जगह रे कौन कौन ए जो पेंटिंग सौरा पेंटिंग गोटे आसी पारे सांताल पेंटिंग ओडिशा टेम्पल आर्किटेक्चर पाम लीफ पेंटिंग जोटा कि कहते पट्टचित्र बोलिकी तालपत्र रे और कौन रहा त्रिभंगी कौन चौका कौन डिटेल लिखी फोक डांस ऑफ ओडिशा गोटे छौ डांस है फोक डांस आउ कौन फोक डांस अच्छी संबलपुरी संबलपुरी फोक डांस अच्छा आउ कौन अच्छी घुमुरा नाच कोटिकार को जगार ओरिजिनेटेड इन कलाहांडी रणपा मेनली इन गंजाम डालखाई संबलपुरी ट्राइबल डांस ढेमसा अच्छी कोरापुट सौरा डांस अच्छी तापर कंध डांस अच्छी बंडा डांस अच्छी ये सब ट्राइबल डांस ये गोटीपुआ डांस आसला अदर डांस कौन प्रिकर्सर ऑफ ओडिसी डांस दंडनाट मेनली इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट तापर फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स ओडिशा जो फेस्टिवल्स फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ ओडिशा पाला और दासकाठिया एप्लिक वर्क पिपिली इज फेमस फॉर एप्लिक वर्क तार मेटल वर्क पई कोन ए जो मेटल जो कहउछ हमें ब्रास रो जो माछो से कोई जगह फेमस ओडिशा रो कोई जगह ब्रास बेल मेटल वर्क ब्रास एंड बेल मेटल वर्क ए ओडिशा रो कोई जगह फेमस कहलो ओडिशा रो कोई जगह बेलगुंठा नहीं ये पित्तल माछ एमती थी बिक्री होतो सब एग्जिबिशन रे बेलगुंठा इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट मेटल फिश जो कहती कांस्य मेटल पित्तल माछ जो कहते सिल्वर फिलिग्री वर्क पई कोटा फेमस कटक एटा तो समस्त कह दी परिवे एमती अच्छी सब फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ओडिशा रा रथयात्रा दुर्गा पूजा काली पूजा बहुत चीज लिखि दी परिवो चंदन यात्रा केबे हुए कोणार्क कोन जो पुरी रो बीच फेस्टिवल्स ट्राइबल फेस्टिवल्स भी अच्छी शीतल षष्ठी केबे हुए शीतल षष्ठी को जगह को रिलेट करी गोटे क्वेश्चन सेमती भी आसी पारे होली दोल महाशिवरात्रि एगुड़ा सब आसबनी ठीक अच्छे आज ये थाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स आगु को जो परीक्षा आसुची आ रहा सप्ताहे कुआडे गला सरला तो सो थैंक यू ऑल अरे इथे जो पिला माने थिले मु कहा को देखि पाले नहीं मजे को इठी चाहिए मूल पिला माने कहबे आमको किछि चाहिलेनी किछि कहलेनी
Somebody do that. Next year. ठीक ଅଛି ସମସ୍ତେ ମତ ଧର ଏଇ ଆସିବା ତ ମୁଁ କାହାକୁ ପଢିଥାଏ ମୁଁ ଏତେ ଚାପ୍ଟର ନାହିଁ ପଢି ଆସିବ ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ସମାଗେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଥିଲା ବୋଧେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ଆସିଲେ ଟିକେ ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଲେ